looking. But I'm really worried about their bowling. I just am worried about their bowling. Shivran Dubey bowling the last over the other night, and I think I said it, Jerry, I fancy myself getting 20 off him in the last over, and that's not a good sign. You shouldn't be saying that about a team closing out. You mentioned Simon Kadich. He said that he wants more intensity in the field, and you've spoken about the crowd and lack of atmosphere and whether that's playing a part. That's definitely been a focus for RCB. Another focus, Super V, where are you? It's the question on every RCB fan's mind, because their superhero has been missing in action in the UAE. He's at 18 balls without a boundary. They are desperate for the strike, and that's what makes them so good. 2 dismissals against left-arm pace. That is a huge moment in this match. And perhaps most surprisingly, 2 drop catches. Kohli hasn't got hold of it. Another drop, and it's Kohli again. Super V hasn't been super so far this season, and he knows it. Couple of important chances of a set batter. 35-40 runs in the game makes a massive difference. And I know these things look small, but I would like to take my example tonight and make all of us understand, and myself, how important these things can be when we are looking to push forward as a team. It really doesn't help when you drop a guy who's set twice in 2 overs. But superheroes know how to make a grand entrance and time it to perfection. With 7 losses to MI in the last 8 games, he certainly got plenty of motivation. And if performances in the past 2 seasons against MI are any indication, he's got the opposition inside that gets him charged up the most. In terms of practice and preparation, Super V's left no stone unturned. He's ready and raring to go, bristling with determination. The call to arms has been made. Get ready for a fight. Because there's no better time for Super V to shine than against MI tonight. Some breaking news here. It looks like Adam Zampa is going to get a run with RCB, just receiving his cap here. Speaking to Simon Kadich in the build-up to this tournament, and he said, you know what, we lost Kane Richardson because he's going to be there for the birth of his baby, but we gained a spinner, and perhaps in the UAE that is actually more handy, and he thought that he and Yuzi Chahal could possibly go hand in hand. So the Aussie spinner, he's in form, he was brilliant in the UK, he gets his chance, and he's dismissed Virat Kohli many, many times in international cricket, so Virat Kohli has a very good idea of just how handy Adam Zampa can be. He'll be glad he's in his team and not against him. But back on Virat Kohli, guys, a really quiet start to the tournament, a couple of drop catches as well. What do we need to see from him tonight, Sonny? Well, clearly, I think the fact that he's coming into bat, towards the second half of the innings doesn't let him even settle down. Even the best of batsmen need a couple of deliveries to get their eye in, just to feel the ball in the middle of the bat. You can't start going bang, bang straight away. And I think that's been the issue as far as Virat is concerned, because he has both Padikkal and Finch have given the team a good start. Yes, the other day Padikkal got out pretty quickly, but that time they were facing a huge total to chase, so therefore there was no time even to play themselves with. But I mean, look, a world-class player like him, you can't expect him to score runs every single time. There will be the odd failure, and the successes are going to be in this tournament are going to be more than the single-digit numbers. There'll be more 40s, 50s, 80s, maybe even 100 than the single-digit figures by the time the tournament finishes. KP, he's been dismissed twice by left-arm bases. You don't think there's much of an issue with that, but he's facing another one tonight, and a world-class one in Trent Boult. When you start to get stuck and we start to talk about it, it does start to play in your mind. And you would like to think that having faced all these guys and faced them so much and be so prolific a run scorer throughout his career, that's not really his biggest issue. His biggest issue in this competition, I'll keep going back to it, there's no crowds. He is a showman, and he plays with his heart on the sleeve, and he feeds off the energy of the crowd. There is no crowd, and there won't be for the next 6 weeks. So that's going to be his biggest battle. His biggest battle isn't facing Trent Boult or facing any bowler. His battle is internal. Can he get himself up when there's no crowds?
Well, he's got another battle on his hands. Trent Boult at one end, Jasprit Bumrah at the other. It will certainly be a key battle tonight. Virat Kohli, the run machine, is yet to show up this season. He couldn't convert a start against Sunrisers, and he scored just one run against Kings 11. Straight up in the air. Out. A huge one goes down. Jasprit Bumrah had an off night against the Super Kings, going for 43 in 4 overs. But against the Knight Riders, Boom was back to his lethal best, conceding just 5 runs in his first 3 overs and getting rid of danger men Andre Russell and Owen Morgan. Tonight, it's their toughest test because both of them are the best, a bout that promises to be nothing short of epic. It's a battle between the best in the business, a rivalry that began a long time ago. Back in 2013, it was Virat who landed the first punch, leaving Bumrah shaken at his first brush with the big time. Interesting bowling action first. Lovely shot from Kohli next. And another. Got to be another boundary. And another. But just as Bumrah looked out for the count on IPL debut, he delivered the knockout blow. Right here, impact outside the offside. No! The finger goes up, just what he needed. A wicket. He gets some self-belief. Since then, Boom Boom has become a name that strikes fear in the hearts of batsmen. Not for Super V though. Kohli counter-attacks when he faces Bumrah. Oh, yeah, that sounded so good as well. Bumrah taken to a little bit in this last over. Super V's strike rate of over 150 is one of the highest among batsmen who have played over 10 games against Jasprit Bumrah. And after dismissing Kohli in his very first IPL game, Bumrah had to wait until 2019 to get Kohli again. Bumrah to Kohli, best versus the best. The script was similar to their first battle, Kohli landing punch after punch. 3 in a row. And just when Bumrah looked down and out, he landed the knockout blow. That is the bouncer. He falls for it again. Wonderfully bowled. Really quick off the pitch. He's put a lot of effort into that. Perfectly set up. So which of these two greats will remain standing when Super V takes on Boom Boom? Boom Boom Bumrah, he's a dangerous customer on his worst day. So Bing, I've got to ask you, is he the biggest threat standing in the way of Virat Kohli who's still searching for his footing? Oh, he's definitely a threat, that's for sure. I think that, you know, with his length, his line he bowls, with his pace, and especially the way that Kohli's been getting out, I think it's a great option if he bangs a few in. He's got that nicking length as well, so I think that if he gets a couple in and then bangs one in, he might be a really, really good chance to get him out. And what about you, Scotty? What do you think? Virat Kohli not at his best form. Should he be a little bit worried tonight? He should be a little bit worried. That battle with Bumrah is intriguing because I think he tries to impose himself on Bumrah. He realises it's the best batsman in the world versus the best bowler in the world. And he's probably a little looser than we've seen him for a long time when he plays against Bumrah. He's struggled for form this time around in this tournament so far. It's only 2 games, so I'm not too worried about Kohli, but I also believe that he will be a little more circumspect against Bumrah, just trying to get himself into this tournament and find some form and some runs. And being on the other side, you've got Rohit Sharma, who's shown us glimpses of his brilliance. Do you think that that's the key for RCB tonight? If they can take out the hitman, they have the win. Look, the hitman's the key, definitely. We all know that if he bats through that period of time, they're going to win a lot of games. But to me, it comes down to length. And I'm going to do a bit of a demonstration after the break. But the length to Rohit Sharma, it's got to be short. It's got to be short. You pitch up to Rohit Sharma, you get met. Well, we've got a very special battle on our hands today. We've got Rohit Sharma taking on his captain, Virat Kohli. And a special battle requires a special song, right, guys? Check this out. Four trophies. Check. Understanding, check. Monster 6. Check. Positive attitude, check. Elegance, check. Preparation, check. Lack of coming back, check. बोलिए अब जवाब मिलेगा खेल से
Vamos, let's get it. That is huge. He's got that magnificently. Man, तैयार है. Rohit, Kohli, Rohit, Kohli, Rohit, Kohli. What a play. Rohit, Kohli, Rohit, Kohli, Rohit, Kohli. We know it's going to be a tough game. Well, Udana also getting his cap here tonight, so a couple of changes for RCB after they were beaten by 97 runs. Those two will be super important tonight. Spinners combined and Virat Kohli in between them. There is Udana there getting his cap, so we'll wait and see who misses out for RCB. Now, in the opening match for RCB, they managed to recoup and pull off a very important win, but they struggled in the second match, as KP and Sunny have alluded to. So will the Mumbai Indians get the better of them with their batting outfit? We'll have to wait and see. For starters, the Reds have got to find a way to stop the hitman. Top shot. Really good shot. Rohit was in full flow against the Knights and he'd be raring to go again. In both their matches, RCB bowlers have failed to take a single wicket in the power play, not counting the fortunate wicket of David Warner. While Navdeep Saini and Dale Steyn have been okay, Umesh Yadav has conceded almost 10 runs and over in the first 6 overs. Against an informed Rohit and a formidable MI lineup, RCB's frontline pacers have their work cut out. Kohli, though, has an ace up his sleeve. Yuzvendra Chahal has been the pick of his bowlers and he will be key for RCB. Almost the entire MI batting unit has struggled against India's premier leg spinner. But the defending champions will know that if they see out the Chahal threat, they could score big, really big. And that's because RCB have been woeful at the death. And launched. That is out of a cannon. Against Kings 11, RCB conceded 49 runs in the last 2 overs. Since 2019, Kohli's bowlers have conceded over 11 runs and over at the death. In Rohit, Hardik, Pollard, the Mumbai Indians have a lot of firepower to make RCB pay. This is Super B's toughest challenge. Can Captain Kohli mastermind the downfall of mighty MI? So guys, we've seen a couple of caps handed out. We'll wait and see for the final teams, but Zampa and Udana seem to be coming in, handed their RCB caps. You've spoken a lot about the bowling unit. What do you want to see from them tonight? Well, clearly to take wickets and put a break on the scoring, and that's their job. And Udana is a specialist T20 player. On the other hand, Zampa is also plays 50 overs cricket. So I would imagine that these are two very good changes for the simple reason that it will be taking the pressure of Dale Steyn. Dale Steyn's been taken for runs, and who is the other overseas player that they will drop then? No, Philippi may not play. Okay. There's Finch, there's Finch, there's AB Dewar. So De Villiers is definitely going to play. Yeah, so De Villiers may keep. Yeah. They may drop Philippi, and then they bring in the other two. Yeah, so Dale Steyn, none for 57 here in his last game. Yes. So we'll have to wait and see. What do you think, KP? As far as the bowling unit, what are you after? Yeah, they definitely go searching. I don't know. They've been given caps. We'll have to wait and see for the toss before we find out exactly who's in their starting 11. But they're going to have to try something. We keep talking about their bowlers. Is it too early to make changes in the tournament? Because I'm one for thinking about consistency and letting guys play for an extended period so that they're comfortable and they know that they've got an extended period to play, to either do well or to fail. So I don't know if they'll make those changes. If they have made those changes, then, I mean, they obviously know that their bowling is struggling. Yeah, so it's very difficult to talk about, players if you don't know who they're replacing. Yeah, and exactly. So till the toss is done, till the teams are exchanged, we have no idea who's playing. But yes, I think I can understand RCB because bowling is their problem. If they're going to make these changes, it's only because bowling is their problem. Yeah. And after a big loss, it's completely understandable, I guess, that they might make a couple of changes. All right, it is time for Baiju's expert view. So let's head to Brett Lee and Ashish Nehra.
Well, here with Ashish Nera, I thought we should try to have a look at the RCB team where it's all going wrong, in particular their fast bowlers. Now, Dale Steyn had a bit of a tough time so far. Your synopsis on how he's going? See, Dale Steyn is a gun bowler, everybody knows. I mean, he has been a fantastic bowler over the years, great outswinger. For me, the thing which is missing for Dale Steyn, he's trying to do things which he's not known for, like bowling up front too many slow ones, keeping deep mid-wicket. I think he should stick to his fourth stump line and try to bowl test match. You know, in his mind, he should think it's a test match and bowl test match line. I know ball is not swinging because you cannot put split. Earlier, maybe it would swing for 2-3 overs, but I'm talking about here up front first 8-9 balls. You know, people like Deepak Chahar, people like Dale Steyn, people like Umesh Yadav, they should try to swing the ball, not short from up. Rather go for a 6 at mid-off rather than going for a 6 square. What about another option at the death, the Sri Lankan bowler Adana? He's a left arm, he gets some real good shape, got a lovely Yorker, might be another good inclusion. Yeah, I mean, he's again a good option, but I still feel early days. You know, Dale Steyn has only played 2 games. You cannot judge anyone in first 2 games. So you have Navdeep Saini, who can bowl at death. You know, he's a great youngster. Last game we have seen even Shivam Dube bowled over number 20th. So you can manage the sea. You have to take the best out of your bowler. And Dale Steyn can bowl up front 3 overs. In the end, 4 bowlers can bowl 1 over each. Even Yuzvendra Chahal I have seen so many times bowling 17th over. So Udana is a great option. Going forward, yes, definitely RCB will look at him. But right now, I will rather go with Dale Steyn or Adam Zampa. All right, so you're saying hold the players that they have currently, but what would they do differently? Or what could they do potentially differently at the death? See, again, Dale Steyn, again trying to bowl too many slow ones, right? There, he can bowl back of length. You know, you have to see as a bowler that what I'm going to do at what stage of the game. You know, yes, you definitely bowl slower ones, but Dale Steyn is looking to bowl too many slower ones and going for plenty in mid-wicket and mid-on regions because that's not his strength. Same like Navdeep Saini. He's a 145 bowler. His strength is back of length, especially on a Dubai wicket, big ground. There is something definitely for bowlers in Dubai wicket. I'm sure when you're playing at Sharjah, it's a completely different ball game. We have seen that. But Navdeep Saini can bowl back of length, and his changer, when he's bowling back of length, his changer can be a little bit up. If batsman again hits you over mid-off, is fine. But again, Navdeep Saini is not known for bowling too many slower ones and Yorker. If those deliveries are going well in nets, yes, definitely you try to bowl in the game, but I have not seen so far because whenever Navdeep Saini try to bowl slow one, they're right up slot because even slow one has to have a length. You know, you cannot bowl, you cannot just roll your fingers over and you say, okay, job is done. Sure. Slow one also has to have a good length. Well, there we have it. So Ashish Nera has solved the problems for RCB. Keep the same team, still back them, get their confidence up, and hopefully they'll get a few more wins shortly. An epic title. We're expecting an epic game here tonight. That is the King Super V, Virat Kohli looking very relaxed out in the middle. It is time to get into the middle with KP and Slats for the Dream 11 pitch report. Oh, hello and welcome. Isn't it great that we shuffle from ground to ground? Last night it was Sharjah, the small ground, now Dubai International Stadium, and we've got another fresh pitch. KP, there's not as much grass on this one. No, there's not much grass at all, Slats, and you'll have seen and the viewers would have seen, and no doubt all the players would have seen as well, that when they got here a couple of weeks ago, they would have seen tufts of grass. Then when they had seen this wicket, when the game started to play, it was tufty. Mohammad Shami we saw in that first game, that early game, we saw the fact that with the grass was playing a big role in seam movement at the start. Yeah. What we see here now, there's hardly any grass. Just look at this, KP. It's rolled in. It's sort of, there's the looseness to the grass on top. There is, and if you get to the bottom of the surface, so if you actually do roll it away a little bit, you see how dry the surface is. So I don't think the seamers are going to play too much of a role this evening. I think it's going to be a great game for batting. And the other thing I've noticed is we've gone a long way on this side of the block, which means that boundary is enormous. Meters. 82 metres that way, it's 68 metres this way, and it's not going to change straight. All right, you've won the toss again? Well, last night we got back to the team chasing, won the game. Okay. As amazing as last night was. However, I'm going to go chase. I'm still chasing. Are you still going to bat? Well, I'm going to bat because we're not seeing the dew factor here. Most sides, nearly every side, have batted first and won. So I'm batting first. Okay. Thanks for that,
guys. We're looking forward to this encounter. A really, really big one coming up. And we will have the toss coming up soon too. Tenfold will have a huge role to play. So too that man, Yuki Chahal, with the ball in hand. He has been devastatingly good so far in this encounter as well. It's going to be a fascinating big role to play Virat Kohli in and the Rohit studios. Sharma, No, we've got two Dubai, absolutely because both of legendary them gentlemen in Bradley are very and keen, Brian very- Lara. Guys, in very terms of organised in- conditions here, we saw in the last encounter, DC up against CSK, posted 175. What do you think teams will come into this feeling? Obviously, MI have not played here. Two games that Bangalore played at this venue, they did not get above 163, so that's the major problem, they're batting. So I believe that the form guys, the Mumbai Indians, Rohit Sharma, I believe that that's not going to negate them from getting any runs. I think it's just a matter of lack of form from RCB. They have to get their act together, but I think it's going to be a big scoring game. Yeah, a win for MI coming into this game, but they're playing away from Abu Dhabi for the first time. Brett, first time here in Dubai. How much do you think that will play into things? Oh, we should look ahead, into the overseas fast bowling department. Well ahead. To me, this comes down to Mumbai executing their plans. They played the perfect game the other evening. I think that if they could do well in the top 6 overs with both bat and ball, then they're a chance to win tonight. It certainly are. It's going to be a great encounter. Cannot wait to watch this one going back. We've got the toss very, very shortly on the other side of a short breather. Stick around on Baiju's Cricket Live. We will be right back. मेरी टीम खेल रही है और आपकी माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ Being sophisticated is a formula thing. It's not about flaunting power. It's anything but aggressive, sophisticated power. The U.S. Cross Petrol, the refined SUV. Before you buy a new car, make sure you visit the Car Dekho app. Compare cars, check out expert reviews, get the best offer and discounts. Download the Car Dekho app today. The asking rate is phenomenally high, but no target has ever bogged this man down, has it? And there he goes. Over the covers. That's a skilled worker out there. Vimjel, what a player. अरे हाथ को तो नहीं लगी 20 रुपए दे किस बात के भाई बॉल कोने के पकड़ सकता था वो भाई बॉल उसको छुई नहीं छूती तो वो देता नहीं छुई तो तू देगा ना मुझे पता था नहीं है घर से लेके Dream level. Winning is about finding the perfect racing line with your eyes closed. Making split-second decisions based on instinct. The 2020 TVS Apache RR310 with ride modes and smart connect. Crafted to overcome, crafted to outperform. The batsman's looking confident here. Oh, that's clearly swung the match. Great discounts on match days. Swiggy Matchday Mania. More the big hits, the larger your wins. That's why size matters in your mutual fund. Invest in Sundaram Blue Chip Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. इसका खेल लंबा चलेगा पर मरीनो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा मरीनो लैमिनेट्स ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग Soros is going for the pitch review. दादा बिग फैन लेकिन पिच रिपोर्ट जो भी हो मेरी 11 कर देगी आपकी 11 को बिल्कुल फ्लैट तो आओ पिच पर खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस आपकी टीम जीतेगी या मेरी देखते हैं माई 11 सर्कल पे माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़ my11circle.com कार इंश्योरेंस के टेढ़े गेम्स में आज खेलेंगे कमीशन का अटैक तेरी अफोर्डेबल इंश्योरेंस की ओर लपक पड़े खिलाड़ी आधे नंगू चंगू मंगू
अब पूरा इंडिया खेलेगा और खाएगा with Dine Out, Predict and Win. Guess the winners and earn daily money to use at the best restaurants. It is the battle of the big boys. It is Virat Kohli up against the hitman, Rohit Sharma. It is red versus blue. And bigger, we've seen a couple of changes, a couple of caps being handed out in Usuru Udana and Adam Zampa to both for the bowling. Udana's got good pace left arm from Sri Lanka, and then Adam Zampa is a gun. Watch for his variations. They're going to be great to see how those two go. This is a side that wants to bounce back. There are the caps handed out. Adam Zampa, leggy to leggy. Good to see that as well. And let's take you down to the two skippers who are down for the all-important toss. It's Virat up against the hitman, Rohit Sharma. Game 10 of the Dream 11 IPL, and it's a high-profile clash here in this magnificent venue in Dubai. The captains alongside me, Rohit Sharma, Virat Kohli from RCB, the match referee Javagal Srinath, who's got the coin as well. Let's go, Sribai. Virat has called heads, and Rohit has won the toss. Rohit? We're going to bowl first. I didn't ask you anything. This is your first game here. What do you think of this wicket? Yeah, from whatever we saw the previous nights, the wicket looked a bit greener, but it looks a little dry. Hoping that it plays very well under the lights. That's the idea behind it. It looks a little drier, so that's the whole point of having the scoreboard in front of us. The games which have been played here, team which has bowled first, they've actually won. So yeah. But I mean, at the end of the day, you have to play good cricket. You back yourself to come out and do the job, get the job done, and that is what we are expecting to do here. I mean, yes, the past results have been in the favor of people who have batted first, but again, we just have to come here and do what. Having a very solid middle order. No, not really. See, I mean, it's early days. It's the second game of the tournament. The middle orders haven't gotten much to bat, and we need to understand none of the guys have played a lot of cricket as well. So it's important to give them some time, and that is what we are focusing on. As long as the top three batters are in, they got to make it count and make it big. And your team used to. We've got one change. Saurabh Tiwari is not fit, so we've got Ishan Kishan in place of him. Go well, Rohit. Thanks. Virat, happy to be batting first? Yeah, pretty happy. We wanted to bat first anyway. Contrary to belief, batting first has really worked in this tournament. If you put decent scores on the board, I think the fact that the wicket deteriorates quite quickly and we have a longer boundary as well, I think it's a decent shout to defend a score on the board. You played a few games here. Obviously, catching has been one issue for everyone. What are the other things which you have seen of this wicket and this ground? Well, catching, I don't think it's got anything to do with the lights, to be honest. It's just that when you're playing after a while, you're playing competitive cricket after a while, just the perception of the ball coming down, that can be pretty tricky to catch a hold of. So we've worked extra hard. We've been working extra hard in the field, just for those high balls. I think those are the ones which are a little tricky, especially in this ground. Can't quite mention the other grounds yet. But apart from that, I think the pitch has played pretty well. The first game looked like the conditions might be very different, but then they resumed to what we know of UAE. And it's a proper batting track. I think in the last game, Kings 11 also showed if you have a solid start on the board, you can score a big total here and then go on and defend it. Would you say bowling in the power play and bowling in the death overs has been a bit of a concern for your team? Well, not really. I mean, if you look at the first game, they were chasing a total of about 165 and they wanted to keep wickets in hand. I think we bowled really well in the last 4 overs in that game. Last game, look, if you don't have momentum on your side, it can get pretty tricky for the bowlers, and then we were behind the game as well a little bit. So that puts extra pressure not to take extra time at the death. So we'll try and plug all those gaps today. I think up in the power play as well, you could say we need to be a bit more attacking, which we're going to try and do today with the ball, come out here, be a bit more expressive, bowl and attacking lines and lengths, and try to get guys out. Your team for today? We got 3 changes. Josh Philippe misses out. Adam Zampa is playing his first game for RCB. Dale Steyn unfortunately misses out. Isru Udana comes in for him. Bit of an all-round preference for us. Got change of pace as well. And then Gurkirat Maan replaces Umesh Yadav. So yeah, that's the makeup of our team. We're going in with 2 leg spinners today. Go well. Have a great game. Thank you. Cheers. There you have it. MI have won the toss and will field first. Well, almost a bit of a win for Virat Kohli there, because the teams who have won the toss have actually ended up losing the game, and teams that have batted first have ended up winning. But 3
early changes, what do you make of them, KP, for RCB? Yeah, he's made those changes. They're necessary changes, and they obviously think that they cannot get into a downward spiral of losing games off the back of their bowling. So they've identified an issue, and he's made changes. And having made these changes so early in the tournament, they're going to have to back him. They're going to have to get it right, because if they don't work tonight and they don't work in their next game, what do they do then? In game 5 or game 6, do they eventually go back to who they started with? So changing is always an issue so early, but he has made the changes, and hopefully it works for RCB. For MI, Kishan's coming in. Sonny, your thoughts on that? Well, a left-hander replacing a left-hander. Ishan Kishan is a very promising player. Saurav Tiwari is unwell, injured, so that's the reason why the change has been made. It's a forced change. It's not a change that the Mumbai Indians would have wanted to make. But for the RCB, I think it looks a much stronger team. Honestly, I think it looks a much stronger team, because Udana is, as I said, is a T20 specialist. Gurkirat Maan coming in just in case, because of the batting being a little bit less strong with Philippi out of the team. I think they've really given it a lot of thought, and it looks like a very strong team. And batting first will allow them to play without any tension, without the pressure of the asking rate. Well, the Mumbai Indians are playing here in Dubai, for the first time in Dream 11 IPL 2020. Rohit Sharma needs 10 runs to make it to 5,000 IPL runs. And Star Trek, well, it was Father-Daughter Day, and Rohit Sharma had a very special bit of time. I became a lot softer since she's come into my life. Yeah, thank you. You don't want, Sammy? You want? Okay, so take it. Wear it. I would want her to fight her own battle. I mean, I want her to stand on her own. That is something which I have done personally, so I would want her to do the same, not to depend on anyone. I want her to be independent woman. She is a light in our life, basically, I just want her to enjoy. When she's around us, we are more than happy. I mean, I just want to keep it very simple. Just being with her. I mean, there is nothing specific. I mean, during this lockdown, I almost tried my hands in everything with her. Whether it was changing diapers, which I did few times, but I did. In the times we're living, it's yes, Baba. Okay, I'm coming. Sorry guys, I have to cut down this interview now. But yeah, like I said, yes, coming, bacha. Well, we enjoy watching that man on the field. He's enjoying life off the field as well, Rohit Sharma. He'll want to win tonight versus RCB. Let's take a look at the full tape playing 11 for RCB, who are batting first here. Remember, MI won the toss and they put RCB into bat. 3 changes for them. We've talked about that already with Zampa and Udana and Gurkirat coming in. But let's just focus on the batting here a little bit, Brian. That top order has to fire against a really slick MI bowling lineup. Not just the top order. I want to see Aaron Finch take the pressure off of Virat Kohli and de Villiers. If you look at the tournament so far, he's got 200s, 2 opening batsmen. He needs to get jealous and really go out there and do the job for RCB. And Sanjay, Virat Kohli coming off 2 not great knocks. He will be absolutely gunning to go this one. Obviously, it would be geared, and one thing good about him was that he accepted those drop chances, that it was his mistake, and that allowed the team to score or to chase extra 30-40 runs. So that's a good thing from a captain's point of view. So it shows that, the captain is willing to put his hand up and accept the mistake. So it's a great thing from a team point of view that he's accepting his mistake, and I'm pretty sure that he's going to come out and play an innings that we all know of what he's capable of doing. Yeah, he's got that hunger in his eyes. Virat Kohli coming into this one. Let's just take a look at the playing 11 for the Mumbai Indians. Obviously defending champions coming into this off a good win. Binger, the bowling lineup here led by Jasprit Bumrah, and Patterson has been really impressive with that new ball. Yeah, they have, and that's the key with the IPL, is to attack in the first 6 over in terms of your bowling. I guess with your batting as well, but you mentioned Jasprit Bumrah, Trent Bolt, who's a gun, Chahar there, James Patterson, I thought has been bowling very well. Kyron Pollard, that can bowl a little bit, ups and downs. Hardik Pandya hasn't had the opportunity yet, so looking forward to seeing him. Top of the order though in terms of Quinton de Kock, Rohit Sharma,
and Yadav there, brilliant, excellent. And Brian, up at the top, you've got someone like Trent Bolt who could really bring in the trouble, but also paired with Jasprit Bumrah and Pattinson. What a lineup that is. That's a great lineup for an attack in T20 cricket. So I expect them to already give the batsmen at RCB some trouble, and hopefully if they do pass that trouble, they sort of like build an innings. But RCB needs to come good today against a very special bowling attack. It is a very special bowling lineup because you've got those quicks at the top, but there could be trouble in the middle as well. ABD has been troubled by a certain Krunal Pandya, who's got him 4 out of 6 times. This is our key batter. ABD has been RCB's best batsman so far. 1 match-winning innings and a promise of more. But tonight, Mr. 360 faces a nemesis from the past. And he's walked. Such a good piece of bowling. In 6 duels against MI's left-arm spinner Krunal Pandya, de Villiers has fallen 4 times. ABD's weakness against spin is now a well-known fact. Even in his previous game, he fell to M. Ashwin's leg spin. But there's a twist in this tale, because in the past 2 years, Krunal has failed to dismiss de Villiers. And so far this season, Krunal has bowled just 5 overs in both matches, and he's conceded nearly 10 runs and over. So will MI use Krunal successfully to target ABD? Or will Mr. 360 continue to negate the left-arm threat? That is going to be one mouth-watering battle. Sanjay, someone like Mr. 360 scores all parts of the park. 4 out of 6 dismissals versus Krunal Pandya. What does he need to do to navigate that threat? I think he should be using the pace of Krunal Pandya, because whenever AB de Villiers come into bat, Krunal tends to really fire it in. He bowls over 100 kilometers an hour. If he can use his pace, because there is no spin as far as Krunal Pandya is concerned, so I guess that ABD might have already worked that out, and this could be ABD's evening. And the other part of that bromance, Virat Kohli, he's had 2 disappointing knocks, Brian, coming into this one. How does he navigate the threat of just his own demons at this point? I think first of all, if you look at it, there were 60 yards when they lost their first wicket in the first game, and he decided to come at number 3. They lost an early wicket, he moved himself to number 4. He has to pick a spot. A nice spot for him is number 3. Pressure situation or not, coming at number 3. First over, coming at number 3. So I believe that that's his spot, and that's all he has to do. Well, he's going to be hungry for runs, Virat Kohli, but how do the Mumbai Indians counter the threat of a hungry Virat Kohli? Let's find out in our Sahi Hai game plan. Hello and welcome to today's game plan, and this is a mouth-watering encounter too, because it is Virat Kohli, the captain of RCB, who I want to focus on, and the intriguing battle between Bumrah, the best bowler in the world, and Kohli, the best batsman in the world. It was one that was won by Bumrah last year. Look at the angle, and most specifically, look at the length. It is back of a length and straight. Kohli, I thought last season, tried to get the better of his Indian teammate, and it didn't work. This one, straight up in the air, and the battle was won by Bumrah. Now, if he gets past Bumrah, go to the left-armers. It's as simple as that. It's probably the one weakness that Kohli has in his game, and the numbers bear that out. I want to show you this. Look at the stats for Kohli against left-armers. 14 innings, 7 dismissals, at an average of just 12.9, and that is since IPL 29. Now, the angle. It's all about the angle. I wouldn't mind having third man up as well in a deep backward point in place. When that happens as well, he looks to move across his stumps, and that was what's already happened in this year's IPL, straight up in the air, because he goes to that favoured zone. Now, I want to demonstrate why that is. One of the areas is that Kohli doesn't have a genuine cut shot, so he doesn't use the angle of the left armour to then cut the ball away. He still wants to go back and across and look to hit the ball baseball style over mid-wicket for 4. If he gets the width, he'll run the ball down to third man. But if there's any movement, that open blade can also lead to a catch in the slip cordon. So, back of the length. I showed you that with Bumrah. Angle for the left armers, and I think he put a hold on Kohli, which not many can do, but that would be my game plan for Kohli. Good from you as always, Scotty Cyrus. Brett, where does Jasprit Bumrah bowl to Virat Kohli to contain him? Remember, he was his first Dream 11 IPL wicket.
Yeah, look, I think he contains him tight. I think what he's going to make sure he does is just get that perfect length, and that's that back of a length with the left arm potentially going across him. Jeff Boomer with a bit of angle coming back into him. So, he's got some options, but don't just pitch the ball up or don't bowl too short. It's going to be that between length. And then on the other side of things, you've got someone like Trent Bolt up at the top, swings the ball early. How much do you think he will cover the top order? He is always a class performer, and he makes the ball talk because he's got the ability to bring the ball back into the right-hander and angles the ball away as well. So the openers will have their job cut out, and it's better that they see him off in the first two and assist the wicket and take it to the opposition off the other bowlers. Yeah, Brian, the addition of Trent Bolt, someone who's got the experience, but he's got that shape with the new ball, which is such a big asset, isn't it? Big asset. Am I correct to say that he got him out in the World Cup last year, 2019? A big wicket at that time. So it's got to be able to negate what Trent Bolt brings to the wicket. And I think RCB knows what to do. It's just that they've got a great bowling attack, Mumbai Indians, and hopefully they can. How much is that reliance, do you think, still on AB de Villiers and Virat Kohli this season, Brian? It's too big. I think that, I'm not sure what goes on in the dressing room beforehand, but those are two premier batsmen, but we know they are there. I think the other batsmen have to come. That's why I call him Aaron Finch, to really set the standard. He's opening the batting. He's actually should be the one leading the team in that batting order. I think the other thing too, with RCB, and they've done it year after year after year, I've got no issue with the new guys coming in, with the change that they've made. I've got no problems with that. But the problem I've got is it's made too soon. Only a couple of games in the IPL, so it puts Philippe on the back burner straight away. So the confidence goes. The new guys coming in will get a crack, but they think, well, if I miss out game one, game two, I could be on the back burner as well. I think they've got to play their team longer and actually back who they've got. Brett, we're going to stick with you. Prediction for tonight, RCB up against the Hitman. Oh, I'm going to go Mumbai now. Brian? I think Mumbai can be too strong. Why? I just think that their batting is very full of confidence, and we get to see the likes of Pollard and Hardik Pandya scoring runs. And a lot of questions, a lot of pressure is being put on Kohli and de Villiers at the moment. So I believe the team that's batting a little bit more freedom, Mumbai Indians, can win the game. Sanjay, for you, which one? Just to be a contrarian, I'll back the team batting first, winning this game. Well, we've seen that happen. We've seen teams win the toss and chase, but we've seen all 4 games where the team batting first has won the encounter. This is going to be a huge one. It is that man, Virat Kohli, up against the hitman, Rohit Sharma. It is RCB versus the Mumbai Indians. It is one icon versus another icon of Indian cricket. What an encounter this promises to be. Both these sides with one win each. Who is going to take the spoils in this? We will have live action on the other side. That romance could come alive for RCB as well. वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट बूस्ट स्टैमिना मीटर, जहां पर हम 30 से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स और एल्गोरिथम्स से ये तय करते हैं कि किस खिलाड़ी का स्टैमिना मीटर किस लेवल पर है। ब्रॉट यू बाय बूस्ट, जो देता है 3 टाइम्स स्टैमिना। तो चलिए देखें आज के खेल में कौन से वो खिलाड़ी हैं जो इस मामले में हमें इम्प्रेस कर सकते हैं। बूस्ट स्टैमिना मीटर में आरसीबी की तरफ से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं तेज गेंदबाज नवदीप सैनी, जिनका पिछले मैच में स्टैमिना स्कोर था 76 पॉइंट्स। सैनी ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की औसत रफ्तार से बॉलिंग की, जिनमें 8 डॉट बॉल भी शामिल थे। स्टैमिना मीटर पर आरसीबी के दूसरे खिलाड़ी हैं ओपनिंग बल्लेबाज एरन फिंच, जिनका पिछले मैच में स्टैमिना स्कोर था 73 पॉइंट्स। फिंच ने किंग्स 11 के खिलाफ रनिंग करके कई सिंगल्स और डबल चुराए, जो उनके स्कोर का 40% था। उनके पिच पर रहने के दौरान आरसीबी ने कुल 46 रन जोड़े। मुंबई की तरफ से बूस्ट स्टैमिना मीटर में एंट्री कर रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा, जिनका स्टैमिना स्कोर पिछले मैच में था 92 पॉइंट्स। रोहित ने पिछले मैच में अपने और अपने साथी बल्लेबाज के लिए 53 बार विकेट्स के बीच दौड़ लगाई। हिटमैन की मौजूदगी में मुंबई ने पिछले मैच में 165 रन जोड़े। इस लिस्ट में मुंबई के दूसरे खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जिनका पिछले मैच में स्टैमिना स्कोर था 92 पॉइंट्स। पिछले मैच में बोल्ट ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 13 डॉट बॉल्स डाले थे। स्विंग पर भरोसा रखने वाले इस गेंदबाज ने
केकेआर के खिलाफ 135 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की औसत स्पीड पर गेंदबाजी की। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में बूस्ट स्टैमिना मीटर की दौड़ में कौन किसे पीछे छोड़ेगा। वो कहते हैं ना, किस्मत कभी भी पलट सकती है। नरगिस, नरगिस, मेरी वाइफ मिसिंग है। यहाँ अंदर तुम्हारी बीवी की बिगड़ती तबीयत, चारों तरफ पुलिस। तुम पुलिस की नजरों में भागे हुए मुजरिम हो। जानते नहीं तुमने किन लोगों से पंगा लिया है। बहुत खतरनाक है वो। Two star-studded franchises with contrasting IPL history taking centre stage tonight. Royal Challengers Bangalore, chasing a first title, started with a clinical win over the Sunrisers Hyderabad, but came crashing down to earth at the hands of a quite brilliant KL Rahul. And launched. That is out of a cannon. Top tier. The RCB captain had a night he'd prefer to forget. Should be the end. No, another drop. And it's Conley again. Oh, he's caught the bug. Four times champs Mumbai Indians began their title defence with defeat to CSK, but Rohit Sharma inspired a bounce-back victory over KKR last Wednesday to put his team's Middle Eastern jinx to rest. That's so they've got it. Looks good, and it's gone again from Rohit. Will the pride of Mumbai continue to ride that wave of success, or is it the turn of RCB to find their bounce-back ability? Welcome everybody, we're in the Middle East, the United Arab Emirates, hosting this IPL and doing a wonderful job. Three grounds to savour, all slightly different in their way, both in size and indeed in the pitches that the players get to work on. Tonight a big game, look at these two guys, Virat Kohli and Rohit Sharma. It's Royal Challengers Bangalore against the Mumbai Indians. The Mumbai Indians have had rather the better of things of late. There's a good advantage, 16 victories against 9 in this tournament. It's a beautiful sight, isn't it? A stadium to rank with any in the world by the National Stadium. Confirmation there of the 16 Mumbai Indians win. Very strong side, very organised, very professional and full of flair. At the moment, the Royal Challengers Bangalore not quite so organised, a bit uncertain of who they are and how they sit best. As you can see down there, second from bottom, we won't be liking the look of that. Delhi Capitals and Rajasthan Royals unbeaten. An extraordinary performance last night. We saw a run chase that reached for the stars. It matched the fielding from Nicholas Puran, who was pretty spectacular. That's gone viral. I think everybody's been talking about one of the greatest things they've seen on the cricket field. Mumbai Indians fourth on the list. Both these sides playing their third game. Kings 11 and Super Kings have both played 3. There's the pitch tonight. I think it looks pretty good. Grass is rolled into the surface and it's moved a couple of pitches from the other night, so it's nearer one side. That's created unequal boundaries. Very long one side and quite short the other side. And it does look a beauty. Much paler in colour, a little drier, I think, than the one started the other day. Confirmation of those boundaries as we go 81 metres, 68 metres, the two sides I'm talking about. Longest down the ground towards us in the commentary box, 81 metres, and shortest lengthwise going away from us. So there are clear places for the best players to target, and target they certainly will. I don't know about the decision to win the toss. More games are being won by sides batting first.
toss was won by Mumbai tonight, and Rohit Sharma chose, wait for it, to bowl first. He said he just wanted to know what he was chasing. He thought too that a bit of dew might speed the pitch up a bit, that it would come onto the bat. I don't think he was saying with much conviction. I think it's a hunch they had. I've got Sonny Gavaskar and Kevin Peterson alongside me. RCB, so it's you, Kev, to kick off. Good evening, Mark. Good evening, Sonny. Good evening, everybody. Yes, you're going to see some changes. Virat Kohli wants to test his team out. He's made a couple of changes. Singh is in, Yadav is out, Zampa is in, Steyn is out, Udana is in, Philippi is out, and AB de Villiers will keep wicket this evening. So early on in the season, not very happy with his bowling department, so he has made some changes. It's going to be key to see how Virat Kohli and his team actually go over now. Got Dubé there they like. Udana's the left-arm seamer from Sri Lanka. Saini, I've loved. But Mr. Gavaskar, you're going to bring us the Mumbai Indians. Yes, and they're looking good, the Mumbai Indians. Just one change. It's a forced change because Saurav Tiwari is injured. Ishan Kishan, another left-handed batsman, comes in the side. Quinton de Kock, Rohit Sharma will open the batting. Surya Kumar is batting well. Karen Pollard and Hardik Pandya really haven't had too many opportunities, too many overs to play. Kunal, Pattinson, Chahar, Bolt, and the one and only Bumrah will be the ones who will handle the bowling attack. And before I go, let me wish the Nightingale of India, Lata Mangeshkar ji, a very, very, very happy birthday. Nice one. Interesting from the captains this evening. Uncertainty, I think, with some of the things Virat said. Rohit seemed pretty confident. Obviously, we have proper superstars to hand tonight. Virat Kohli, Kev, one of the great players of the modern era of the game. Not a good record as captain against Mumbai Indians. 5 wins, 11 losses. Rohit Sharma, 10 wins and 3 losses in return against RCB. The two magnificent talents. Unbelievable talents. And then you get a picture of this man. What a talent he is as well. AB de Villiers, his game is travelling all over the world. And then you can go across to the blue team. And goodness, have a look at that strike rate and have a look at that average. What a player in this form of the game. Chatting to him earlier, he was talking about shapes and sizes of the boundaries. He's talking about last night's game in Sharjah. But as we had a look at that stadium there, she's big and she's beautiful. She is. We will talk about last night's game in Sharjah. We're bound to refer to certain things, not least Nicholas Puran's catch. Gorgeous sunset in this part of the world. If you're joining us for the first time, welcome. The news is that Rohit Sharma won the toss. He's put RCB into bat. There's no change in the batting order that we know of, so we think it's still Kohli 3 and AB de Villiers 4. We think it's unlikely that they'll mess with that as yet. Umpires making their way to the middle here for a game that I'm not going to say that it's crucial for RCB, but I do think they have to find a mojo, a rhythm. And I think a win here tonight against such a good side would be the best way to pull that off. Padikal, what a natural talent he is alongside Aaron Finch. We saw him in the first game. I thought he played exceptionally well. Natural time with the ball. In fact, he got out ahead of Aaron Finch. Finch couldn't catch him. We've seen a lot of good young Indian talent. You've mentioned a few times, KP, the remarkable finishing school that this is for young Indian talent. Yep. Talk about academies all over the world. This is the best of the best. For young talent, for senior players, for professionals that are finishing. It is certainly some sort of a setup. I've moved across from Sharjah and Dubai this evening, so I don't think we're going to see as many sixes. We may see a big score. There is a very, very small boundary. Sonny, I don't know if you heard Virat at the toss, but he basically made some swaps that tell us he's got a completely changed balance to his team. Adam Zampa, for example, coming in. Gurpreet Singh Mann coming in and replacing two quicks. So Umesh Yadav and Dale Steyn out. A leg spinner and a batsman are in. So he's changing his balance.
He certainly is, because he's seen what the pitch is doing over here. There's nothing much for the quicker bowlers. In fact, the quicker you come onto the bat, the quicker you go off it. And that's one of the reasons why he's gone for bowlers who will be just a little bit slower. Udana, of course, is a T20 specialist. Gave the Padikkal impressed in his first game. And in the second game, didn't quite get runs, but he's a promising player, this young man. And in the company of Aaron Finch, RCB will be hoping that they get the team off to a flyer. To me, this RCB team looks a much more balanced team than the earlier one. Dale Steyn, Umesh Yadav both went for plenty in their 2 matches. And Dale doesn't look himself. Slow it down. Doesn't look himself, does he? Let's play. Indeed we shall. Trent Bolt, fine new ball bowler. And safe, just a fingertip, or was it? Probably not quite. A flying fielder, a dramatic start, but runs on the board for RCB. Yes, runs on the board. There was a show last night in Sharjah, and first ball this evening, it's up. Bolt looking for swing. Padikkal goes for it. Goodness me, that would have been some catch. Ishan Kishan, he's just jumped into the team. It's his first game. Look at the skipper. He normally keeps wickets, Ishan Kishan. Shot by, beautiful shot. No, Sonny, go, no, love the enthusiasm. Tell us. Oh, it was a lovely shot, wasn't it? On the pads this time around. If the first one was outside the off stump, this one was angled at his pads. And not much protection. Again, in slightly area, which maybe tells you that the ball's not quite coming onto the bat. This is a pitch which does not have too much grass on it. The earlier pitches had a bit more grass on it, and therefore the ball might actually stop and come. Well, neither ball has swung. It's the most obvious thing. They've both been fairly fully pitched, and such is the impression given from just 2 balls at a big field change. Long legs come up, square legs gone back, second slips come out, mid wickets come in. Oh, got lucky there. Could easily bypass that fielder who'd just come up from long leg. Padikkal's very strong in this area. He'd enjoy a look at this pitch. It may be it, but it's dry and a little slower than the one the other night, that went through very well. You had a look at it earlier, Kev? Yeah, a little bit of dryness there for sure, Marky. Not like the previous 2 wickets where were tufts of grass. Seamers benefited in the early overs in those fixtures, and I cannot see there being a big amount of seam in the fixture this evening. I think the batters have still got to respect the wicket, still got to understand that they've got to earn the right. You've seen KL Rahul, you saw Prithvi Shaw here the other night. Give yourself a chance as we have a look again now at RCB's team. Padikkal, Finch, Kohli. There are some changes if you've just joined us. Singh is in, Yadav is out, Zampa is in, Steyn is out, Udana is in, and Phillippe's out. And De Villiers will keep wicket this evening. So quite interesting. Virat Kohli has changed his team around, changed the dynamics, changed the formation. And as Sunny Gavaskar said only a couple of minutes ago, this actually does look like a better team. Aaron Finch on strike. That did swing. That swung. He might have got some bat on it, might he? Good, lively pace. But they're not interested in the review. I think they must know he hit it. Yes, he does have a problem with the ball swinging back into him, Aaron Finch. And we've seen that. And Trent Bolt's got a terrific delivery coming into the right-hander. Aaron Finch off the mark. You wait for no.
रजत बॉलिंग कर। अरे अभी 3 बॉल बाकी है। बूम बूम, यहाँ पास नहीं चलता है। तेरा मिनी ओवर, चल कोने कट ले। ड्रीम 11। Baby, you're my TVV. I am your OTP. When we come together, love payment is easy. Download Cred. Seriously? Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. Download Cred, baby. Download Cred. Comes pounding in, strong body action that defied a lot of injuries, as indeed did Pat Cummins in the early stages of his career. Two tremendous talents in Australian cricket. Pat Cummins is the one who's since kicked on, and James Pattinson has stood still as injuries continued to plague him. The bowl to another Victorian Finch. Finch gets a lot of bat on those. He's really about strength. Have a look at that, the way he marches down to Trent Bolt. It doesn't, I don't think, at any stage come into contact with the bat, but yeah, it's bouncing over the top of the stumps. When you're that far forward, it hits the knee roll, new ball, it ain't going on to hit the stumps. A slip, 4 in the cover ring. Long legs up, by the way, square legs back. Tell you what, sometimes you just don't expect it. You think you're going to middle it, you think you're going to hit it, and this has hit Aaron Finch really, really hard. It's just that split second, isn't it, Sonny, when you actually think you have everything covered. You're watching the ball, you're tracking the ball, and yes, it is split seconds. But goodness me, that's no good. It's come back sharply as well. And that is why that thick inside edge. You never want to get hit there. It's that one that everybody else in the ground thinks it's funny, except me. The thing is, even the non-striker thinks it's funny. Your own partner, batting partner, thinks it's funny. Everybody except you. You're in such screaming agony. You couldn't even begin to understand the funny side of it. But Buddy Carl, big smile on his face. Into the 9th ball of the game, and so much already seems to have happened. Such is the pace and fascination of this IPL. I had such an interesting chat just before play with Kieran Pollard, at a distance of course, and he said, we were talking about Nicholas Pooran's catch last night, and he said, you know, each time, and he said he thought specifically this time, it just goes up a notch. He says people seem to have added things to the game with the bat. Fielders get a little more athletic. So it's a tournament that continues to excite and improve. I mean, that thing last night, you were on air, I think, KP. If you weren't, you were close by. It was just something out of another orbit, isn't it? Yeah, the game definitely just gets quicker, it gets faster, the sixes get bigger, and the fielding just produces miracles like that. And we've seen it, we've seen the Pollards, we've seen the Maxwells, we've seen De Villiers. Being sophisticated is a form of affairs. It's not about flaunting out his
anything but aggressive, sophisticated power. The new S-Cross Petrol, the refined SUV. But it's a very big boundary. Wow. 16 for no wicket. क्लोज शेव और एक क्लोज शेव मुझसे बेहतर कौन जाए। For those who want more from life, Kingfish Ultra, the smooth choice. And the other one out on the boundary. Well, we all had our hearts in our mouths for a second there. Adam Zampa's playing tonight. His first game as changes to the RCB outfit have got him back in the side. In fact, both the quicks, Stein and Umesh Yadav, have been let out of the side this evening. Trent Bolt. I don't know that we call this a drop. I think he made a sort of quarter chance simply by his speed, but it did hang in the air a long time. It did. And Kunal Pandey is a very, very good fielder. He's taken some very fine catches. No, it didn't carry. It did not carry. But what a fabulous effort from the young man. Terrific effort that. Well, a couple of close shaves for the RCB batsman. The first ball, Padikkal hitting it just wide of Ishan Kishan, and now this one again not quite going to the fielder. We've seen so much wonderful fielding, but some of the catching, we'll wind back the clock for you here, because we're trying to, where do we put that effort by Nicholas Pooran? Is it up there with that Kieran Pollard spectacular? Is it even close to a bit of A.B. de Villiers magic? And how does it rank alongside Super Trent Bolt? Oh, we dropped it. I think that would have been, what a moment that would have been on the back of those replays. That would have been a great moment. It would have just fitted with the storyline that you've been going with, Mark. It would have been something very special from Rohit Sharma. Left ankle, have a look at this, darting to his left. Bang! Oh, definitely a chance. Krunal may get off with the one in the previous over because he didn't get his hands to it, didn't get his hands underneath it, didn't get to it. But Rohit Sharma got very, very close there. Finch goes down the ground and he goes real big. It's the first un-academy cracking six of the evening. And it is the most gorgeous shot. Well, the ball was curving into him, all right, but he was waiting for it. Whoa, look at that. Sweetly off the middle of the bat. Big high back lift. It's been powered away. Really hold that blade through the line of the ball. Brilliant. Now he murders one past point. And he sprints and he makes it, because that's good cricket. Outthinking the fielder. Sucked him in, spat him out. Very good work from Aaron Finch. Yeah, and it's going to be difficult out there. That's a real big boundary. You've seen it. It's around 80 to 82 metres, depending on where on the boundary it is. So the position all night out there on the big boundary is going to be very, very, very important. Do you come in 20 yards? Do you stay back 20 yards? What do you do out there? You can see him. He's so deep out of backward point. And it's going to become more and more relevant as people later in the inning start to target the short boundary the other side. You'll have to bowl that side of the wicket. Interesting, 25 for none. हेड और टेल ही देखते रहोगे कि अपनी टीम भी बनाओ। माय 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप नाउ। पुराने जैसा आश्रम ना आइए। बाबा निराला काशीपुर वाला तो कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपदेश नहीं, संदेश देता हूँ शांति का। He's not a god man. He's con man. एक बार जो आश्रम आ गया ना तो यू टर्न तो ना आया कोई। He has 18, it's 26 for no wicket. James Pattinson, the bowler. I mentioned that their fellow Victorians
One is showing absolutely no respect to the other. Finch has looked to pound him. Yes, there is absolutely no respect in this form of the game. I think you may respect the first 3 balls to see if it's swinging. That's generally what happens. A lot of players play their way in as they're walking out to bat. But I tell you what, as a bowler, you got to just expect to get met. Finch has moved on to 20. Finch. Oh, he nearly hit a 6 to that huge boundary you're talking about. He is firing on some cylinders here. This one was halfway down the pitch, 141. He was waiting for it. Again, off the middle of the bat. Decided to not wait at all, just go bang, bang, bang. Sense that this is Aaron Finch's, well, it's a pink ticket and a dream ticket as far as he's concerned. He has license here. As we've seen, the pitches are good, scores are getting higher and higher. There's aim to game to Dordu. No slipping now. They've spread. The 2 sweepers are out at cover and square leg. We're in the Cred power play into the 4th over of it, actually, and it can be a rewarding time for both teams. It's also a time for fans to get rewarded. And we've got a Cred fan, there he is, who got rewarded in yesterday's match. You too can be featured by using the Cred app during the power play. Interesting to see Pattinson's approach here. We've had a slower ball and a fuller ball, Yorker length. And we were talking about the fielding that we've seen. Just out of interest, come and tell us, is it A, B, that catch, Bolt's catch, Pollard's extraordinary performance, or Puran last night? What do you think? On the exceptional scale, who do you pick? Safe too, just over the head of mid-off, off the splice of the bat. It's a good bit of fielding, I think, Mark. It's a real good bit of fielding. Yeah. We're talking about fielding, and we're talking about how athletic these guys are. Finch is down again. He did get hit somewhere where you don't often want to get hit, but yep, it's brilliant. Great call. Brilliant from the youngster. Great call. Great call. You see things like you see last night, there are no excuses not to dive, not to put your body on the line, and we're seeing that day in, day out in this brilliant tournament. Yeah. The Puran effect. Four overs gone, and it's 35 for Newwood. बचपन में सुना था Those who dream big, do big. पर इसमें एक प्रॉब्लम है। जब लोग इतने बड़े-बड़े सपने देखते हैं, तो कुछ ही क्यों अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं? मंजिलें सपने देखने से नहीं, कुछ नया सीखने से हासिल होती है, क्योंकि जिंदगी का उसूल है, जो सीखता है, वही आगे बढ़ता है। Log on to Great Learning and choose an online program from the world's best universities. Power ahead with Great Learning. क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? वो प्याज। प्याज या प्याज? घर पे किंगफिशर। वाह, क्या प्लान है? That's a really steady start. Chaha. Excellent economy rate.
So there will be a slip. And a long on and deep mid-wicket. Actually quite straight, that man on the fence, deep mid-wicket. Benjamin carting alongside me. Steady start, you'd have to say. Yeah, much better. Very much what the RCB camp would be hoping, wanting from these two. Yes, Padikkal hasn't really hit the ground running, but he's patiently waited for his opportunity at the other end. Aaron Finch at the other end has been making sure to using the best of the opportunities that he's got, especially after the dropped catch. Good running, always good running. Now we've been really focusing on the great catches we've seen throughout the IPLs, but this was prone just last night. The athleticism. Now, there are those out there saying, back live, as that gets whacked to the onside all the way. One bounce and it'll be a 4, so Finch is looking ominous. Got himself going a little streaky to start with, but that's full-blooded. So after that, this is Sachin Tendulkar. This is the best save I've seen in my life. Simply incredible. And that was Puran. Yes, Sachin, I agree with you, mate. Oh, he's gone too short again. Chahar hasn't started well. He's dragging them down. That's just the pressure which Aaron Finch has put on any leg spinner who's come into bowl. He has backed away as if he's going to hit over the top. The leg spinners have been forced to follow him. That happened with Bishnoi as well. And now, with just 2 fielders outside, if it's slightly short, all you need to do is take the offerings. He's going to keep going. He's got on top of this bowler in the first over, so Chahar doesn't know where to put it. This time Finch backs away to carve it through the offside. Really sensible batting, because he knows that he's got a bowler under the pump early. Look at the stumps there. He's backed away so far. Also, sometimes what happens with a leg spinner under these circumstances is if a batsman backs away, he doesn't have that in him to follow him and bowl much fuller, which a finger spinner can. Much better. Much, much better. 49 without loss. India's first and only pure platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI, यानी ETFI, जो दे 15% ज़्यादा माइलेज. Race tuned FI, यानी RTFI, जो दे better real throttle. हम बनाएं जो आपका दिल चाहे. ये मैं कर लेता हूँ. तब तक आप Dream 11 पे टीम बना लो. Dream 11, make your team now. Which you wouldn't think would be the case at this stage. Certainly the way he's been bowling for a long time. So this could be just the rustiness, the fact that they haven't played for a long time. They've spent a lot of time having centre wickets and net practice, but just trying to find a bowling rhythm. And that's called cricket fitness as well. Once you've played for a while, you can just keep repeating the rhythm. And that's what he is, a rhythm bowler. Rohit Sharma under a little bit of pressure. And RCB, against Kings 11, had lost 3 wickets in the power play. Crucial, but if you lose 3 wickets in the power play, it's going to hurt you in the long run. Good start. Really important that Bumrah gets off to a good start here and just settles things for Mumbai Indians. Padikkal hasn't got himself going just yet, but he hasn't had much of the strike. It's Finch. He's faced 23 balls. Padikkal has only faced 8. They're using him in a different way this time around, coming into bowl only the last over of the power play. Will run away. I think it was off the thigh guard, yes, given leg bias.
It'll bring up the 50 without loss. So a solid start here. RCB, they're underway. Yeah, much better 90-run stand in the first game for the RCB. That was against the Sunrisers Hyderabad. Just dwelling on the point, yes, you need a solid start. You won't worry when you've got Virat Kohli and AB de Villiers in your ranks to come later on. Beautifully played. There goes the youngster using his height. He stood up really tall. That ball was met. You need a left-hander to talk about it. Absolutely brilliant. Well said, Karthik. Yes. When the left-handers strike them, they look very, very elegant. Let me be even more precise, left-handed batsman. There isn't any. There isn't any. I look on my left, I look on my right, there aren't any. Sorry. I'll let this go to the keeper. Oh, that's a direct jibe at me. So 4-leg buys, a solid pull shot for 4. That's back-to-back boundaries here. And then a nice single. See the softness of hands. That's smart batting. It's a good ball. You're not trying to turn a good ball into a bad one, but you still get a single. And that's a very important feature in anyone's batting, especially at the top of the order. Reading somewhere that he's fancied following Gautam Gambhir, who's been prolific for Delhi, for India, captaining India. So if you've got idols like Gautam Gambhir, you tend to just model your batting on those leaders, and I think that's been a very important feature after hitting a boundary. You've seen Gautam Gambhir run around for a single, drop and run, especially with Virender Sehwag. I think that's a very, very crucial feature that Padikkal has adopted from the two of them. Beautifully struck straight to the man. How often have we seen the dot ball percentage in a T20 game? And sometimes teams consume close to 6 or 7 overs, which is 42 deliveries out of 120. You could still score a lot, but the ability to drop and run after getting a boundary, and I think it's a good man to follow because Gautam was brilliant with that. Absolutely, and he was one of those very good runners between the wickets, even at the domestic level, and a feature that he just developed and became better and better at it consistently at the international level too. It'll be a wide. I just wonder how much that's got to do with the left-right combination, the fact that he's lost that one down the leg side. There's an advantage at times if bowlers are struggling, they're rusty, there's no rhythm. Left-right combination is something that can really work and make it hard for the bowling. Yeah, the delivery which went for leg buys as well. As a seamer, you know that he's wanting to pitch it on the middle stump and move it away. You get your line slightly wrong and the ball doesn't deviate. Easy pickings on the onside. Thought of one. So it'll be 59 for no loss. Into the power play, solid. Yeah, really solid power play there, RCB. Virat Kohli, Simon Kadich, they'll all be very happy. Paul Rifle pointing to his watch. We know what that means. It's the Sept strategic timeout. कहते क्या तुझमें दिमाग नहीं है क्या भाई वन टिप वन रन का क्या मतलब होता है बे यार एक तो आउट नहीं हो रहा ऊपर से तूने तू छोड़ के आया ये तो ड्रीम 11 भेज दिया उसको हिसाब भाई खत आउट करो खाता बुक डाउनलोड करो ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे उधारी वापस लाए फटाफट खाता बुक बिजनेस हुआ इजी You need FCW. Fried chicken wings. Front collision warning. NG Gloucester. Bookings now open. True connection changes you. It inspires you to dare greatly.
To love fearlessly. To soar. Our moments. Our stories. They belong to us. For moments like no other. माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे खुद को चैंप समझते हो? प्ले विद चैंपियंस। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mivsrcb.com। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ। अब पूरा इंडिया खेलेगा और खाएगा with Dine Out, Predict and Win. Guess the winners and earn daily money to use at the best restaurants. You mean Kellogg's Muesli में क्या है? इसमें है 30 शैतानों को संभालने की एनर्जी और है बेक मल्टीग्रेन और ढेर सारे फ्रूट एंड नट्स। Kellogg's Muesli, ब्रेकफास्ट से बढ़कर। I browsed 8 sites for divorce attorneys today. I browsed 8 sites for divorce attorneys today. I love working with you. Me too. Red heart emoji. Blue heart emoji. I hate Lego. Puke emoji. Puke emoji. My home has been 1,000 feet. I've only walked 598 steps today. My login for everything is Pauline@hollyblue.com. My heart rate is 100, 101, 102, 107. She loves me not. She loves me. ये मैं कर लेता हूँ। आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Dream 11. Make your team now. She loves you not yet. I'm sure was just delivering, keep it going. That would have been the message. Put yourself into a position to allow everyone in their batting role to perform if needed. And what the openers have done is set up a fantastic foundation. Pandya, left arm orthodox. What's interesting tonight is the length of the boundaries that have been mentioned. One side really short, like Sharjah, the other the longest boundary we've had so far, about 80 metres. So really hard for the fielders on the left side of screen, we're now panning across, to know how far to come in from the rope. And the other difficulty, and this is the left-right combination advantage, Rohit Sharma can't protect one side while you've got a left and right. If you had just your right-handers and you're trying to take the short side out, you can therefore put a bowler at the other end. Make them, if they're going to hit with that bottom hand across the line, hit to the longer boundary. But with left-right, you can't do that. Bump ball. So just to give you an indication, down the ground from where Finch is facing is 80 metres. Through the offside where Finch is facing is 80 metres, and short side is to his onside. Goes in the air, he goes long, he goes in the gap. But that's how long the boundary is. That was out of the ground last night in Sharjah. One bounce, it's 4. They would have been out of the ground if he had been bowling from the other end as well. It's just that these are lopsided boundaries. Trying to do the right thing, trying to keep it slow and entice him into playing a shot, but Aaron Finch really plays these shots with a lot of authority, and that's exactly what he has done even on this occasion. Didn't try and overhit it. Again, good play, a single after. I think what he's done really well here is he's given something to think about to the spinners by backing away and dominating Rahul Chahar in the previous over. He's bowling from the same end as Krunal Pandya is at the moment. Now he's just changed his strategy around. He's very strong square of the wicket. Swing and a miss, that's the end of the 7th. 6 from it, 65 for no loss. Soros is going for the pitch. दादा बिग फैन, लेकिन पिच रिपोर्ट जो भी हो मेरी 11 कर देगी आपकी 11 को बिल्कुल फ्लैट। तो आओ पिच पर, खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी, देखते हैं माई 11 सर्कल पे। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mivsrcb.com। विराट सर, और कोई
प्लेयर नहीं मिला? मुझे सिर्फ आपका ही विकेट चाहिए। चल बॉलिंग कर। जब स्टेमिना बड़ा होगा कोई चैलेंज बड़ा नहीं होगा। बूस्ट जो में 3 गुना ज्यादा स्टेमिना। Boost is the secret of our energy. It's everywhere else, but in IPL he still wants to get those 3 figures. Yeah, this is a gutsy move from Rohit Sharma. Rahul Char is in asked to bowl from the other end, which has got a short boundary on one side and a left-hander batting alongside Aaron Finch. They'll run hard here for 2, and that's the difficulty in the man in the deep. How far in to come? Because there's nothing worse if you creep in too far and then it gets hit over your head. Then there'll be a chance that that might happen tonight. But there'll be a lot of 2s. You might even see it. Run of 3 to that long boundary. And so now the left-hander, Padikkal, has got the short side to the onside. So this is the difficulty for Rohit Sharma. Well, at every ground we've got a beautiful car to look at, and it's the Altros. It's always on display. Really is the gold standard of hatchbacks, and it's one of the safest cars in India. It's a beautiful car, and that's a beautiful shot. Finch brings up a 50. This is his 76th IPL innings. He's played for 8 franchises in 10 years. Maybe he's found his home. None better than the captain at the moment will feel happy that Aaron Finch hit a milestone. He's worked his way through. It's not been easy, it never is. He's waited for his opportunity, worked his way around. It's a single just down the ground. Yeah, he's a really good white ball cricketer, has been for a long time. He's got leadership skills as well. He's led the Australian one-day side, and he's in those senior years of his cricketing career, in that he is a man that you look up to. He becomes your mentor, and he's doing a fabulous job. That's a wide. I love his action. He keeps changing it around. Not the delivery stride, just the run-up. Easy single to finish that one, 9 from it. It'll be 74 for no loss. Before you buy a new car, make sure you visit the Car Dekho app. Compare cars, check out expert reviews, get the best offer and discounts. Download the Car Dekho app today. Some very good batsmen to follow, these two. Padikkal has been an ideal foil to Aaron Finch, who's gotten off to a very good start. 51 of 33, a few nervy moments to start off. Got hit by James Pattinson, but it's what you do with it. Trent Boult to bowl his 3rd over. Oh, great swivel. This is a team of lots of high-profile people, and one of them is with me, Zahir Khan. Zach, how's it been so far for you? It's been a
a good initiation into this IPL. Possibly not the greatest of starts at Abu Dhabi, but you guys have come back strongly. Well, it's always about just following the process, isn't it, Karthik? Like how you follow the process in the commentary box, we also have to follow the process here. So we do our best just to get everyone ready, plan, give them enough information and not too much, so that, they can be proactive in the game time and take the decisions according to the situation of the game. So what's your role? You've got Shane Bond as well as a bowling coach, and you've been yourself a fabulous bowler and somebody who's seen as a bowling mentor. So what's your role in the side? Well, basically all of us, we just look at things more from the point of view that everyone has to be inclusive. So, more good cricketing brains is going to help you have those conversations around the game of cricket and how you can prepare. Everyone has a different knack of reading the game. So we just kind of curate all those good thoughts and try and nullify the thoughts which are not really going to be good for the team and put it together. So the positions and all that doesn't really matter. It's a team end of the day. So we get all the thoughts, curate them and try and channelize them towards the winning cause. Oh, that's brilliant. Particle has looked good every time they have made a mistake. Zach, 80 without loss. Obviously, you must have had a few words to say during the timeout. What was it? Well, basically, you just have to hold your ground, and like I said, you have to go with the game. So today is one of those days where batters have put pressure on the bowlers, and these are the situations as a bowling unit you look forward to as well at times. Mind you, it's a long tournament. So you can't have your way all the time. So, at times the batters are going to put pressure on you, and your plans, whatever you planned, may not go according to what you've been discussing. So this is a match for us, I think, for a bowling unit to come together and respond to this challenge which batters are imposing on them. Yeah, it's the last ball, but I still am tempted to ask you this. Any team which has batted first here on this ground in this year's IPL has won. Was that a temptation before you guys decided on what you wanted to do? We normally look to read the conditions, so we assess the wicket and we felt that it's a bold first wicket. We feel the wicket will get better as the game goes on. It will be better to bat, even better to bat, I guess, in the second innings. So lesser runs to chase, the better. And if we get a wicket, which we got, it's good for us to come back in the game. Yeah, like you've got one here. Just as you said it, Zach, the first wicket falling for RCB in the form of Aaron Finch, holding out to Kieron Pollard. Well, just a slower delivery, so he didn't quite get pace off the pitch that he was looking for, Aaron Finch. And so there wasn't much distance over there. Simple catch to Kieron Pollard. He doesn't miss them. This is what the Mumbai Indians were looking for. A breakthrough. They've got that. Finch gone 52, 81 for 1. बचपन में सुना था those who dream big do big, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। जब लोग इतने बड़े-बड़े सपने देखते हैं तो कुछ ही क्यों अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मंजिलें सपने देखने से नहीं, कुछ नया सीखने से हासिल होती हैं, क्योंकि जिंदगी का उसूल है जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। Log on to Great Learning and choose an online program from the world's best universities. Power ahead with Great Learning. To walk into. Yeah, it's an interesting time, isn't it? It's Zaheer Khan just talking about wickets. Wickets bring down the run rates, and that's something that they need to work really hard to do at the moment. It's been a nice start. Padikkal is in 23 of 19 deliveries, but the man everybody comes to watch to bat. He's at the non-striker's end of Mr. Virat Kohli. It'll be interesting to see how he goes. Does he start off slowly? Does he just ask Padikkal to bat all the way through the innings? He's laid a foundation now. Does he ask Padikkal to go? Do they both go? One thing's for sure, he's going to make Padikkal run between the wickets. He's a terrific runner between the wickets.
steals runs from under the fielder's noses sometimes. That is Finch's dismissal. Simple catch to Karupala. Yeah, we saw him hit a similar shot early on in the innings. The slower one, looking at the toe end of that bat. And these are big boundaries, much bigger boundaries than what we saw at Sharjah yesterday. And also from a left-arm spinner's point of view, he's bowling to a left-hander with that short boundary on the onside. Yeah, brave bowling, isn't it? Kunal bowling to the youngster who's got that small boundary, and it really is a small boundary. It's Sharjah-like. Although maybe nothing can be like Sharjah. But it is short, it's about 60-odd metres. It's not a big hit at all. And that's the reason why Kunal will go out there. He'll go out there because he'll want Padikkal hitting out to the bigger boundary. Smart. You may be smart as a batsman. The bowler definitely also has that ability to outsmart you. May get a couple of wides like that, but you know exactly the process he's going through as the bowler. You need to mix it. That's something which, as a left-arm spinner to a left-hander, that's exactly what he's trying to do. Slower through the air, just trying to make sure that it's well within that tram line. Look at that. Yep, you need to do a few things which... Actually, was that an Under Armour? You've seen Kedar Jadhav do it. What on earth was this? That pressure of bowling to the small boundary. Have a look at this. Oh, I've got nothing. What is that? Got it. 85 for 1. Not easy, not easy. Aja. बाउंड्री है अरे खड़ूस के स्कूटर पे लेना आउट है ये कितनी बार बताएंगे तो फुट बैट तो मेरा है नहीं तो धोनी होगा ना घर का होगा जा ड्रीम 11 इसका खेल लंबा चलेगा पर मरीनो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा मरीनो लैमिनेट्स ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग My name is Virat Kohli and I write my success story myself. Philips Signature Series Trimmer, limited Virat Kohli edition for the self-made. He's trying to mix it up here, Rohit Sharma. Much bigger boundary now. Yep, you can toss it up because you've got a long boundary. Yeah, the Dream 11 champion fans, a group of loyal Dream 11 fantasy players. Look at them soaking in the excitement of the Dream 11 IPL from the comfort of their homes. Oh, hint of turn there. That is certainly interesting. Both the leg spinners in the RCB ranks. Adam Zampa making his debut and Chahal. This was more the googly which didn't turn. I tell you what, I think that's exactly why Virat ended up in all sorts of strife there, because when I saw that ball delivered, and I don't know, when I'm watching the leg spinner, I'm always watching the hand. I'm just trying to pick at where it's going to go. And it looked to me like it was the googly. And I think Virat may have thought it was the googly too. It just went straight on. He played for the googly. And it didn't spin. So we keep watching his hand. That's the process. The process for a batter is to watch his hand. You can't think of the end result, which is 6s and 4s. It's the process of getting to the pitch, understand the length, understand the line, and also picking what the bowler's bowling. That was the leg spinner, didn't spin. We saw Shikhar Dhawan play one of those the other night and got out and into a horrible mess. This is good bowling. Again, it looked like a googly, Murray. Yeah, 100% there, Kev. Even the ball before that, slightly tossed up, spun,
He was early on the drive, and this time he wanted to work it on the onside. Brilliant numbers, the highest run getter in the history of IPL. Everyone, a quality player. He is trying to find his groove this year. 88 for 1. For the meeting between a mountain lover and the sea. New Tiguan All-Space fits all. Volkswagen. Before you buy a new car, make sure you visit the Car Dekho app. Compare cars, check out expert reviews, get the best offer and discounts. Download the Car Dekho app today. नया डाव एंटी डैंड्रफ बालों को बनाए 100% तक डैंड्रफ फ्री और 100% स्मूथली। मेरे बाल डैंड्रफ फ्री और स्मूथली। डाव एंटी डैंड्रफ। His teammate, he's got him out twice. Oh, might knock that onto his stump. So Rohit Sharma understands the importance of the wicket of the captain of India, the captain of RCB, the leading run scorer in IPL cricket. And that's why he's gone to the #1 bowl in T20 cricket. This guy on your screen is something special, and he proves it day in, day out at the Wankhede Stadium. Any stadium he goes to, he proves it. Even Bumrah, you mentioned early on, is trying to get the right lengths, which we're accustomed to seeing him do. In the last game, he went for a few sixes, which we generally don't see with Bumrah. Yes, everybody is coming out of the lockdown, trying to find their feet. Some of them have hit the ground running. Some will take some time. We saw it last night, didn't we, with Tawadia? He took some time. He took about 20 minutes. 30 minutes when he was batting up there. Good. Oh, good diving stop there from skipper, but unfortunately lets Padago get off strike and gets Kohli back on strike. But absolutely, sometimes it just takes a little bit of time to get yourself in, but it didn't take him time tonight. He was off. That was his first six. Funnily, you would think, having seen Virat and Jasprit Bumrah over the years, wherever they go, they are the first ones to adapt. And they're taking some time, because you see Virat go to a different country. It seems as if he's rocked up there, ready to play in those conditions. Same with Bumrah. He goes to any wicket. He adapts to those conditions. I've always said, and I've said it for a little while now, that Virat's thing that he's got to worry about and he's got to get up for is the internal battle. He wears his heart on his sleeve. He's a big performer. There's no crowds to perform in front of. It's 91 for 1. Saurabh, the game's about to start. कौन होगा in और कौन होगा out? Dada, nothing much to think about. My 11 in, your 11 out.
खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी, देखते हैं माई 11 सर्किल पे। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mivsrcb.com। डाउनलोड माई 11 सर्किल ऐप नाउ। कोई खींचे बातों को तो खींचे कोई बातों, और ऐसे ही सब खींचते हैं ऐसी वैसी तार जो पहुंचा सकती है आपके घर को भारी नुकसान। माइक्रोटेक वायर्स एंड केबल्स, सही तार खींचो। ब्रो, स्टाइल दिखना चाहिए, पिंपल नहीं। Himalaya Men Pimple Clear Neem Face Wash made for men with double action of neem. Himalaya Men Pimple Clear Neem Face Wash. Take undue risk. Virat Kohli new to the wicket. Has to spend a bit of time getting used to it. Very rarely do you see Virat Kohli go hard from the off, and the Mumbai Indians have made very good use of that, the way they bowled and the fields that they've set. So yeah, a little swing back towards the Indians into the 13th, 92 for 1. First 6 overs, 59 runs. Next 6, only 32. Oh, that's out. Virat Kohli has chipped it straight to extra cover in one of the great anti-climaxes. Yeah, it's been an interesting innings this from Virat. He certainly hasn't been himself at all. Played and missed a couple. Didn't pick a couple of googlies. Chahar bowled an absolutely perfect over in the previous over. He now gets one that spins a little bit, and this is very unlike Virat Kohli. Just holds out the opposition skipper. He's not going to drop that. He understands the importance of the wicket. Virat Kohli departs for free from 11 balls. It's 92 for 2. ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Dream 11. Make your team now. Baby, you're my TV. I am your OTP. When we come together, the payment is easy. Download Cred. Seriously? Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. Download Cred, baby. Download Cred. मेडीबॉडी, करोड़ों इंडियंस का भरोसा। इंट्रोड्यूसिंग मेडीबॉडी गोल्ड। मिनटों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अनलिमिटेड कंसल्टेशन कराएं। मेडीबॉडी, आपका हेल्थ बॉडी। डाउनलोड द ऐप नाउ। Suspect that just his energy is needed as much as anything else. His brilliance, yes, of course, but they've just got to pick it up again, get moving, make it harder for Mumbai Indians, who are being allowed to dictate here without really having to stretch themselves. Some good bowling's done it, you have to say that. Slip in place, that's sensible. We've seen the ball just hold rather than really spin. That's why there's a slip in place. What good cricket this is now. What a good bowler this guy is, by the way. Well, he's worked his way through. A very extensive first over taken to the cleaners by Finch. And then comes back, gets a change of fence from his captain, comes back into his last over, gets a valuable scalp. Yeah, 14 runs from Rahul Chahar's first over, but all of that is forgiven when you get the big man out. Very uncharacteristic showing, 3 from just 11 balls today for Virat Kohli. He hasn't looked himself in the tournament at all. Rarely as well. 14 innings for Virat Kohli without a half century. Correction, 8 innings. Only 5 for 2. Little changes now on the offside. Pictures telling stories here at the Dubai International Stadium. Strong offside field. And we will see some wrong uns. Yep, well played. But again, it's a drip, drip, drip. Not an explosion, not at all. 13 gone, 96 for 2.
Before you buy a new car, make sure you visit the Car Dekho app. Compare cars, check out expert reviews, get the best offer and discounts. Download the Car Dekho app today. It's okay. You know, there's no doubt that either Padikkal has to go on or De Villiers has to play a big innings here if this is to be a serious score, sort of 180 type score. And you think that's what you need. It's a good-looking surface. Yes, RCB's got a strong spin lineup this evening. They've changed the balance of their team. No Yadav or Steyn. Spinners coming in, an extra batsman. James Pattinson now to come pounding in from the end furthest away from us. The extra man. Yeah, we talk partnerships. This is a very important partnership, and it's an important partnership. Virat Kohli, the legend that he is, has just hit a ball straight to extra cover. Hand off the bat. He wasn't as fully committed to any stroke this evening. Charles bowled beautifully, hasn't he? 4 overs, 1 for 31. Huge wicket. Unorthodox too, bowling from through and around as a leg spinner. Never seen that before. Saw it on the first night that he played. Great. It's working for him. But one legend follows another. Look at those numbers. Unbelievable numbers. And what impresses me the most there is with those numbers, that strike rate. You know he's here for a good time and a long time. Yes, he has the ability to elevate batting. He takes it to places others can't. The game of day as we rock along in this IPL. Delhi Capitals going nicely, 2 from 2 against Sunrisers Hyderabad, who are yet to get out of the blocks. David Warner and Johnny Bairstow at the top of the order. And Warner yet to fire. Bairstow fired in the first game, which they lost, actually. He'll kick himself for getting out when he did. That promises to be an interesting game of cricket. They all are. It's all very tight, hard to pick obvious standouts at the moment. Good, one of the few. This surface may just allow that ball to be more effective than it has been at other times in the tournament. The surface is just holding the ball a bit longer. I was just going to say that maybe this isn't a 200, 220 wicket. You've got to re-evaluate the conditions, and you've got to have a look at the conditions and think maybe 150 is a winning score. Well, I think 180 is a huge score, and I think 170 is probably a par score. So we'll see. I mean, that's a brilliant stroke. Really, that is a brilliant stroke. What? That's an un-academy cracker, if ever there was one. Yeah, for sure, that's an un-academy cracking 6. It's just stand and deliver for Devdutt Padikkal. Brilliant. He's been waiting and waiting for something that allows him to freeze his arm. It's outstanding. That is so difficult to do. To stand on the back foot and hit over mid-off. Trusting. Oh, now he goes straight off the front foot. 2 magnificent strokes from the most gifted player. He realized that it's a slow one that he picked earlier on. Padikkal goes for the quicker one. 141 Ks this time from Pattinson. He was ready. He knew it's going to be pitched up. It's not going to be another slow one. And deposits it beyond the boundary. If I'd not seen last night's game and watched Tawadia last night, and that game didn't exist, we saw what Padikkal did in game 1. I would have seen that 10 minutes ago to said, there's something up here. I'm not so sure he's himself. Should he just throw caution to the wind and just start slogging? Should he get himself out? But then you see last night's game and you see how a batsman earns the right, and on an occasion, one shot can change the way you play. And that one shot of Pattinson was that off-cutter that he deposited for 6, and he now looks in the zone. It's 110 for 2.
for the merger between a jazz fan and techno. You dig one, all space fits all. Volkswagen. दोनों भाई सेम शेप? सिर्फ एक फर्क है, मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। इसने अपने फोन के लिए 100% पे किया और मैंने सिर्फ 60%. With Galaxy Forever, own the Galaxy Note 20 series by paying just 60%. My name is Virat Kohli, and I write my success story myself. Philips Signature Series trimmer, limited Virat Kohli edition for the self-made. They go, don't they? They can't always be de Villiers. The Padikal matching stuff that we've seen, likes of Rahul and so many other young Indian batsmen in the tournament. Agarwal, seen some brilliant stroke play, but those two back-to-back matching anything. A couple there for AB de Villiers. Kunal's got AB de Villiers 4 times, you know. Gives you a feel for de Villiers' talent. He's a master at it. He knows exactly where the gaps are. He's already had a good knock under his belt in the first game when he batted against the Sunrisers. 51 to his name, so he definitely is in form. It's those split-second decisions that you make as a batsman. As soon as that ball was on its way down, de Villiers was thinking 4. His option was always to rotate strike. Very difficult, and that's what makes him such a great player. Very difficult to go from 1 to 4. And when you're building an innings and you're building a partnership, for him to have done what he's done there, some thought, and Tarigal goes. Has he gone big enough? He's in the gap. He goes for 4. He's played some beautiful shots. He's approaching 50. And he's not going to waste any more deliveries. Looking at what the bowlers are doing, looking at what the pitch is offering. It's in his zone. He's a free-flowing bat, this Padikkal. Wonderful. Again, very pleasing on the eye. The style, the strokes that he plays. So it was a nice replay that, to see him stay down and through the ball rather than come up and out of the shot. And he's got away with it. That's the trick. Any youngsters out there trying to hit the ball high or hard or long, don't come out of the shot, stay in it. Cruising to run a ball a moment ago, shot well ahead of that. Very rarely a ball goes by, but maybe de Villiers doesn't score off. 15 gone, 1, 2, 3 for 2. ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Dream 11. Make your team now. This is Hosh. This is Josh. For many more funny videos, get on to Josh now. 5 overs left. What's realistic in those 5 overs, but they'd hope for 50. Here's Kieran Pollard, whose real skill is taking pace off the board. He kind of ambles in, sometimes bowls at decent medium pace, other times, as I say, just cuts his fingers across it. And a good time of it in the IPL, loves playing over here, loves playing 2020 cricket, loves contributing in all areas of a match. Pull up.
इंटरेस्टिंगली ये इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गए हैं। कुणाल पंड्या को शायद ये दोबारा लाएंगे ही नहीं। कप्तान रोहित 36 गेंदों का सामना किया। एक समय लगा शायद अपनी कहीं विकेट फेंक ना दे, लेकिन मैच्योरिटी इट बिलाइज हिज एज। इतने युवा खिलाड़ी सनी भाई इतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन आज मजा आया देख के इनको। जबरदस्त मजा आ गया, क्योंकि इनके बारे में तो काफी सुना था। पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। गैप में है शॉट, मिलेगा चौका। T20 में समय थोड़ा सीमित है, लेकिन इस खिलाड़ी का टैलेंट, हुनर असीमित। देखिए, सिर्फ शॉट की बात है नहीं, शॉट दो फील्डर के बीच में मारना जहां उनको सबसे ज्यादा रन मिले, ये एक जो कला है ना, ये इस युवा खिलाड़ी में है। ये दूसरी हाफ सेंचुरी है इनकी। आज 53 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भी कुछ ओवरें बाकी है। इस ओवर के बाद में 4 ओवर्स बाकी है, तो आखिर तक टिकेंगे तो शायद 80-90 तक पहुंच सकते हैं। भारतीय बल्लेबाजी का भविष्य। अभी आप शुभमन गिल को देखते हैं, आप पृथ्वी शॉ को देखते हैं, आप देवदत्त पाडिक्कल को देखते हैं, आप संजू सैमसन को देखते हैं। ये थोड़ी स्लो गेंद थी, उसको सही जगह पे मारना जरूरी था। देवदत्त पाडिक्कल भारत का कल। और सनी भाई इस साल कुछ हो रहा है आरसीबी के साथ, अगर आप सोचें, क्योंकि 2016 तो आखिरी बार था जब उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ की। अब ये 2020 में हुआ है। 2016 में फाइनल खेले थे, आखिरी बार क्वालिफाई करे थे। ये 2016 ही था जब दोनों ओपनर ने अर्धशतक जड़े थे। 2016 अपने आप को दोहरा रहा है। एक और चौका है इस बार, एबी। दस रन आ चुके हैं इस ओवर में। आधे पिच पर गेंद, फील्डर 30 मीटर की रेखा के अंदर, तो आसान बनता है। कैरन पोलार्ड ने सीपीएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, पर पहले कुछ मैचेस में अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। इनका छठा गेंदबाज है और छठे गेंदबाज को इस 16वें ओवर में लाते हैं। अभी तक तो अच्छा काम किया था इन्होंने पिछले मुकाबले में भी। आज एबी के हत्थे चढ़े हैं। ये देखना पड़ेगा कि क्या इनको एक और ओवर मिलेगा भी, क्योंकि एक बोल्ट का बचा है, एक पैटिंसन का और बुमराह के 2। जरूरत तो नहीं है वैसे। शायद पैटिंसन को वो आखिरी ओवर्स नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी गति का इस्तेमाल करके देवदत्त पाडिक्कल ने छक्के मारे थे। एबी डिविलियर्स देखिए सीम के खिलाफ कैसे खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट देखिए। शॉट ये भी बेहतरीन है। 2 की मांग की जाएगी, क्या 2 मिलेंगे? जी नहीं। इस ओवर में आए हैं 13 रन। 136 पर 2 है आरसीबी। 4 ओवर का अभी भी बचा है खेल, जिसमें से 2 डालेंगे बुमराह, 1 बोल में भी 1 पैटिंसन। बता रहा है हमें इशारा कि समय है 2.5 मिनट के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। ये मैं कर लेता हूँ यार, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ ना। Dream 11. Make your team now. True connection changes you. It inspires you to dare greatly, to love fearlessly. Our moments, our stories, they belong to us, for moments like no other. किसी का दिल छूने के लिए उनके पास जाना जरूरी नहीं। कुछ ऐसे ही है एसबीआई कार्ड के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। अब खुशियां बांटिए बिना छुए क्रेडिट कार्ड या स्मार्टफोन से। एसबीआई कार्ड, स्टे कॉन्टैक्टलेस, स्टे हैप्पी। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे,
कौन जीतेगा और क्या जीतेगा mivsrcb.com पे आओ और खुद जानो। डाउनलोड द ऐप नाउ। अरे माही, अब रिटायर हो गया तब जाके टाइम मिला हमारे साथ खेलने का। मेरे रिटायरमेंट की बहुत फिक्र है तुम लोगों को। हर किसी को अपनी रिटायरमेंट की फिक्र होती है, मुझे शायद नहीं होगी। मैंने फिक्र नहीं, तैयारी की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। क्रिकेटर्स को पैसे दे दो तो वो कुछ भी कह देते हैं। पैसे दिए इसलिए नहीं, मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, इसलिए कह रहा हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। What are you looking at, Dad? 4WD. Four-wheel doodles? No. Four-wheel drive. MG Gloucester. Bookings now. विराट सर, और कोई प्लेयर नहीं मिला? मुझे सिर्फ आपका ही विकेट चाहिए। चल बॉलिंग कर। जब स्टेमिना बड़ा होगा कोई चैलेंज बड़ा नहीं होगा। बूस्ट जो कि 3 गुना ज्यादा स्टेमिना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। सीएटआई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहां समाप्त। 136 पे 2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 13वें ओवर में विकेट गिरी थी विराट कोहली की, लेकिन उसके बाद जिस कंफर्टेबली गेम को आगे चलाया अगले 3 ओवर्स में 40 रन बिना रिस्क किए अलोंग द ग्राउंड शॉट्स, उसके बीच में क्लास और टच दिखाया पाडिक्कल ने। मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु फैंस हमारी वर्चुअल फैन वॉल पे तैयारी करते हुए इन लास्ट 4 ओवर्स की। जो थोड़ी सी शांति देख रहे हैं, क्या वो आने वाले तूफान के पहले की है? लल बिफोर द स्टॉर्म तो आएगा। 4 ओवर्स, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की कहानी। जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद और सामने एबी डिविलियर्स, प्राइम टाइम ब्लॉकबस्टर। और अगली 4 ओवर में कितनी रन देख रहे हैं ये भी देखना होगा। 4 ओवर में 40 के बारे में सोच रहे हैं या उससे ज्यादा। उसमें से 2 ओवर होगी जसप्रीत बुमराह की। कमाल की यॉर्कर, स्लो रन वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। 4 ओवर एबी डिविलियर्स का खेलना जरूरी। स्लॉट में चौके के साथ स्वागत बुमराह का। फर्क नहीं पड़ता, ये क्लास है एबी डिविलियर्स का। अगर थोड़ी भी खराब गेंद मिलेगी, चाहे आप बुमराह हो या कोई और गेंदबाज, आपको पनिश करेंगे एबी डिविलियर्स। यॉर्कर से चूक गए, अक्सर देखा नहीं जाता, और फिर सामने एबी डिविलियर्स हो तो उसका भरपूर फायदा वो जरूर उठाएंगे। बढ़िया बल्लेबाजी। एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 209 का 16 से 20 ओवर में। इतना तो बनता है एबीडी का सुपरमैन। खुशकिस्मत रहे जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके की फील्ड की सजावट थी, थर्ड मैन अंदर, छोटा गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप। वैसे ये शॉट अगर कनेक्ट हो जाता, थर्ड मैन पीछे भी होता, तो भी आपको 6 रन मिलने के काफी चांसेस थे। और बेंगलोर में तो काफी नहीं, काफी ज्यादा हो जाते हैं चांसेस इस तरीके के, जब शॉट किसी के भी बल्ले से लगे, और अगर एबीडी के बल्ले से लगे तो क्या कहने। कितनी ऊपर कितनी दूर, एबी के बल्ले से लगी है। क्लास। हम उम्मीद कर रहे थे मैचअप बिटवीन विराट कोहली और बुमराह, लेकिन ये मैचअप भी कमाल का है। ये जो गेंद के बीच में एक और छोटी सी गेंद चल रही है, ये भी कमाल की। अभी 3 गेंद हुई है, 3 गेंदों में बना ली एबी डिविलियर्स ने 10 रन, 1 छक्का एबी डिविलियर्स के बल्ले से। कितने लगाएंगे बाकी गेंदों में? उम्मीद करूंगा जसप्रीत बुमराह कमबैक करें। एबी डिविलियर्स बिल्कुल। क्या लगता है इरफान, आपको कमबैक करने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर? उनकी सबसे बड़ी ताकत यॉर्कर, स्टंप में यॉर्कर, बाहर भी नहीं। चलिए यॉर्कर नहीं, लेकिन लाइन स्टंप में ज्यादा बेहतर। और ये गेंद आया भी काफी तेज। एबी डिविलियर्स ने जितना सोचा उससे कहीं तेज आया ये गेंद। और जिस स्ट्राइक रेट की आप चर्चा कर रहे थे, 16 से 20 ओवर, 245, ऋषभ पंत 235, आंड्रे रसल 227, और सबसे आगे एबीडी। कमाल का ये खिलाड़ी, जिस तरीके के ये स्ट्रोक लगाते हैं,
कोई गेंदबाज पढ़ नहीं पाता इनका दिमाग, कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहते हैं। वही गेंदबाज इनके खिलाफ अच्छा कर पाए हैं जो हर समय अपना कंप्यूटर चलाने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम कई बार ये उनसे जीतते हैं, कई बार आप जीतते हैं, तो मामला 50-50 रहता है। नहीं तो ये आपके ऊपर हावी हमेशा हो जाते हैं। रूम बनाने की कोशिश, सामने बुमराह थे देवदत्त पडिक्कल, याद दिलाया बुमराह ने, फॉलो किया सीधा पैड्स पे, तेज गति से डाली है पिछली 2 गेंदें। पूरी पहचान बताइए बुमराह ने यंगस्टर को। बिल्कुल, नाम याद रखिएगा, बहुत जोर से लगी है। पैड से इनर थाई, ये थाई पैड है, लेकिन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद लगती है ना, दर्द तो होता है। और जहां पर लगी है ये एक ऐसी जगह है नी के आसपास, घुटने के आसपास, ये देखिए जहां उन्होंने अभी अपना हाथ रखा हुआ था कि लेग गार्ड आपने पहने हैं, पैड्स आपने पहने हैं, फिर भी वो एक जो स्पॉट है ना वहां पर गेंद कई बार लगती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं पैड पहन के भी। 148 पे 2, 1 गेंद बची है जसप्रीत बुमराह के ओवर की। उम्मीद करते हैं ज्यादा देर ना लगे देवदत्त पडिक्कल को वापस तैयार होने के लिए। रन आ चुके हैं, ओवर की आखिरी गेंद सीधे, ओ वाओ वाओ, ये जसप्रीत बुमराह पे लगाया एबी डिविलियर्स ने शॉट, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, 154 पे 2। Saurav, which way is the match going to go? मैच मुझे पता है which way। दादा की टीम नीचे जा रही है और मेरी टीम ऊपर। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी, देखते हैं माई 11 सर्कल पे। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mywsrcb.com। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप ना। अच्छा, स्विगी शुरू? सर, करोड़ों लोगों ने कर दिया है शुरू। को पढ़ नहीं पाए। स्विगी पे करोड़ों लोग ऑर्डर कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद। स्विगी, व्हाट इज फॉर? रन बुमराह के पिछले ओवर से, फील्ड बाउंड्रीज बड़ी, कारण पोलार्ड के बड़े बड़े हाथ, देवदत्त पडिक्कल की ये बेहतरीन अच्छी पारी समाप्त होती है 54 के स्कोर पे। इन बड़े मैदानों पे वो दूर की लेंथ बुरा ऑप्शन नहीं है, आखिरी के कुछ ओवर में भी आप अच्छे से मिक्स करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे वो घुमा के डाली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचना चाहते थे लेग साइड पे, बड़ा मैदान है और उससे भी बड़े हाथ, बड़े कायरन पोलार्ड, ये आसान कैच उनके लिए छोड़ते नहीं है। ब्रेक थ्रू मिला ट्रेंट बोल्ट के द्वारा। 54 पे पडिक्कल आउट, 154 पे 3। For the high-functioning jet setter, taking a moment. New Tiguan All-Space fits all. Volkswagen. अब पूरा इंडिया खेलेगा और खाएगा with Dine Out, Predict and Win. Guess the winners and earn daily money to use at the best restaurants. Microtech, the trust of millions. Now Microtech is filling all the colors in your life with its solar products. Microtech.
देखिए हैट्रिक पे ट्रेंट बोल्ट, हैट्रिक पूरी नहीं लेकिन अपने पिछले स्पेल की जो आखिरी गेंद थी ओवर की, वहां एरन फिंच को आउट किया था, यहाँ पे पहली गेंद पे आउट किया देवदत्त पडिक्कल को। 18वें ओवर की अच्छी शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए, और ये गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए पडिक्कल। एक अच्छी पारी खेली, बड़े शॉट लगाने में आउट हुए, अच्छा कैच। 2 गेंद डाली थी स्लो रन, फिंच को स्लो रन में आउट किया, पडिक्कल को भी स्लो रन में आउट किया। हैट्रिक की गेंद भी कहा कि चलो ठीक है 2 गेंदों पे काम हुआ है, वहां पे भी स्लो रन डालूं, क्या आगे डाल सकते थे। उन्हें याद भी था कि वो हैट्रिक पे हैं, क्योंकि T20 मुकाबले में कुछ खेल जब कई बार तेज चलता है तो बतौर गेंदबाज आप भूल भी जाते हैं। आशु भाई हम याद दिलाने के लिए है। मैं भूला था बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज नहीं। ये कहानी बाद में सुनाएंगे आपको। शिवम दुबे पैड्स पे गेंद थी, अच्छा एफर्ट, फाइन लेग दायरे के अंदर थे जेम्स पैटिंसन, डाइव के साथ रन बचाए। एबी डिविलियर्स स्ट्राइक पे, पिछले ओवर में जस्ट बुमराह सामने थे। अक्सर होता नहीं कि बल्लेबाज उनकी गेंदों को गुमराह कर दे, लेकिन उस तरीके से एबी डिविलियर्स खेले। 7 मैचेस, युवा करियर, 60 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 111 की, लेकिन रेपुटेशन काफी है। शिवम दुबे वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। एबी स्ट्राइक पे, अच्छा जवाब ट्रेंट बोल्ट का। और आशु भाई आप जो बात कर रहे थे, मुझे कुछ किस्सा याद आ गया, क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। जरूर शायद 2 ही बॉल बचे, आप पूरी तरह से वो किस्सा बता ना पाए कि कौन सा बल्लेबाज था जो भूल गया था कि हैट्रिक है गेंदबाज की या नहीं। मैं था जनाब, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि नॉटिंघम में वो मुकाबला था, 2 बल्लेबाज आउट हुए, मैं नंबर 11 जल्दबाजी में तैयार हुआ, किसी से ग्लव्स मांगे, किसी से पैड, और मैं पहुंचा अंदर। पहली गेंद पे मैं आउट हुआ स्टीव हार्मिसन की। सारे खिलाड़ी, स्टीव हार्मिसन, सब पर्सन बहुत खुश, और हमने शायद 160-70 रन बनाए थे, मुकाबला हम वो हार गए थे। और मैं सोच रहा था उन्होंने सचिन तेंदुलकर को तो आउट नहीं किया, मुझे किया, इतना खुश क्यों हो रहे हैं। सिंगल ही आएगा कैरन पोलार्ड, लॉन्ग ऑन उनका रीजन है, ताकत नहीं, कोशिश पूरी की शिवम दुबे ने। कैरी ऑन मिस्टर नेरा, फिर कब मिला जवाब, कब रियलाइज हुआ। जब मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा कि वहां पे लिखा आया मुबारक हो जी, कांग्रेचुलेशन स्टीव हार्मिसन फॉर ए हैट्रिक, मैंने सोचा हैट्रिक, ये कौन सी हैट्रिक ली है। तो मेरे को आज भी याद है, पहले बालाजी आउट हुए थे, तो फिर मैं बाहर गया, मैंने बालाजी से को पूछा कि आप पहली बॉल पे आउट हुए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आप मैच नहीं देख रहे थे। अच्छा, तैयारी हो रही थी बड़ी जल्दी से, अबे पैड ला, अबे ग्लव्स ला, अबे बैट ला। और फिर बाद में जब मैदान में गए पता ही नहीं चला, हैट्रिक हो गई। कितनी दूर, स्टैंड्स में डिलीवर, अल्ट्रा सुपर स्ट्राइकर की दावेदारी, 164 पे 3। Want to learn a new skill but worried about how to get started? Udemy makes it incredibly easy. With thousands of courses taught by industry experts, Udemy offers the latest courses on all the skills you need, always at affordable prices. चाहे जॉब लेनी हो, करियर चेंज करना हो या कुछ नया सीखना हो, Udemy has everything to offer. Visit udemy.com and start learning today. ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ओवर, आखिरी बुमराह की स्पेल का दुबे स्ट्राइक पे, बेहतर एबी डिविलियर्स अब स्ट्राइक पे। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का पिछला ओवर खेला था, ट्रेंट बोल्ट के पिछले ओवर की आखिरी गेंद, उम्मीदें इसीलिए करती है आरसीबी की पूरी टीम और उनके फैंस एबी डिविलियर्स से। डिलीवर्स सही बैठते हैं वैसे एबी डिलीवर्स, कोई शक नहीं, क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल, बिल्कुल पीछे घुसे, धीरे गेंद डालने का प्रयास था ट्रेंट बोल्ट द्वारा,
और फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में कमाल के स्ट्रोक्स लगाते हैं। यॉर्कर्स के वो भी अच्छा खेलते हैं उधर अंदर घुस के। अगर आप देखें 23%, 15%, फाइन लेग की और भी कमाल का ये खिलाड़ी। यॉर्कर का अटेम्प्ट एकदम सीधी। इस बड़े कॉन्टेस्ट में एबी डिविलियर्स लीड लेते हुए इतना झुक के खड़े रहते हैं और उसके बाद वो जो यॉर्कर के आसपास की गेंद मिलती है उस पर कड़े शॉट लगाते हैं। हर बल्लेबाज के बस की बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशल है, स्पेशल प्लेयर है। क्या लो फुलटॉस को इतनी बढ़िया तरीके से शॉट मारा, काबिले तारीफ। नियर परफेक्ट यॉर्कर जो हल्का सा फुलटॉस हुआ। कोई दूसरा बल्लेबाज होता पीछे खेलने जाता, गति से बीट होता या उतनी बढ़िया तरीके से बल्ले पे गेंद नहीं आती, लेकिन क्लास एबी डिविलियर्स की है। 230.8 का स्ट्राइक रेट। पे तेज थी ये गेंद। तो जसप्रीत बुमराह की याद दिलाना चाहते हैं, देखिए जरूर आपने कमाल की बैटिंग की है, लेकिन मैं जसप्रीत बुमराह हूं। कमाल का स्ट्रोक है, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए लो फुल टॉस को मारा पर आड़ा मारने नहीं गए, सीधे बैट से। ये इस खिलाड़ी की खास बात। कई बल्लेबाज इसको अक्रॉस द लाइन खेल जाते हैं और आउट हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह की गेंद पर यहाँ पर खेले एबी डिविलियर्स बिल्कुल सीधे बल्ले से। और जतिन अभी आपने कहा कि मैं भी हूँ जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बैक ऑफ लेंथ, हार्ड लेंथ, क्योंकि आपने डाली है 145, 146, उसको मारना दिक्कत है किसी भी बल्लेबाज के लिए। उन्हीं की पेस का इस्तेमाल किया शिवम दुबे ने। बढ़िया स्ट्रोक। शिवम दुबे को जरूरत भी है कुछ इस प्रकार के स्ट्रोक्स की। अनुभव उतना नहीं पर कला इनके पास है, ताकत इनके पास है। ये डेलिकेट टच। ये रणजी ट्रॉफी में 5 छक्के लगा चुके हैं एक ही ओवर में शिवम दुबे। T20 लीग में 5 छक्के लगा चुके हैं बड़ौदा के खिलाफ हमारे एक स्पिनर के खिलाफ लगाए थे, इसीलिए याद है मुझे। चौका आया था, ये नहीं जाएगा दूर। एबी डिविलियर्स वापस स्ट्राइक पे आएंगे। लेकिन जो चीज की एक समय पे जब 16 ओवर हुए थे तो प्रोजेक्टेड स्कोर देख रहे थे 180 का था। अब उसमें कहानी थी 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के कितने इंपॉर्टेंट, लेकिन देव टेकन हिम ऑन। और यहां से आप और भी बड़े स्कोर की तरफ देखेंगे। एबी डिविलियर्स आज के 6 73 मीटर, 84 मीटर और बिट में 95 मीटर हवाई यात्रा करा रहे हैं आज गेंद की। क्या बढ़िया गेम सेट हुआ है। एक बड़ा स्कोर आरसीबी ने दर्ज किया। ओपनिंग साझेदारी कमाल की थी, उसके बाद एबी डिविलियर्स का ये टॉप क्लास देखने को मिल रहा है इन्हें। इनटू द ऑर्बिट और शतक पूरा किया इस करिश्माई शॉट्स के साथ। एबी डिलीवर्स अगेन 181 पे 3। बर्बाद होते रहोगे, जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 साल में 9 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट है। हम डरते इसीलिए दबा के रखते हैं वो। कुछ बड़ा है जी सर। एक ही लड़की की बार-बार शादी करवाते हैं। सारी सुइयां आश्रम की तरफ ही। ब्रो, स्टाइल दिखना चाहिए, पिंपल नहीं। Himalaya Men Pimple Clear Neem Face Wash made for men with double action of neem. Himalaya. पैटर्सन कहां डालेगा? स्लोअर वन बाउंस अप। ऑस्टन के बाद धीमी गति की गेंद स्ट्राइक पे डिविलियर्स को होना है, तैयार रहना है। सिर्फ बैट लगाएंगे भी तो सिंगल बनता है। पिछले ओवर का ये छक्का जो है आशीषी अद्भुत। उस गति पे इस तरीके से बॉल को पिक करना, कितनी जल्दी ये बल्लेबाज बॉल को देखता है, लेंथ को भागता है। बहुत 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 जल्दी। कमाल की इनकी फिटनेस, कमाल की इनके पास स्ट्रोक। फिटनेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी बल्लेबाजी में, क्रीज का करते हैं बहुत उम्दा इस्तेमाल और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाते हैं। शिवम दुबे, क्या उसमें दूरी है? जी हाँ है।
लंबे कद का खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है, जड़ दिया छक्का। आकर्षक स्ट्रोक। जेम्स पैटिंसन धीमे गेंद स्लॉट में गिरा, बिल्कुल आगे, उसका भरपूर फायदा उठाया शिवम दुबे ने। लाजवाब स्ट्रोक, दरकार भी, जरूरत भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक और बड़े ओवर की। तो आप अच्छे से मैच को सेट कर सकते हैं। अच्छी है बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस की, जितने ज्यादा रन बन जाएं बेहतर। पिकअप स्ट्रोक, यह भी बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक था, जड़ दिया सेकंड टियर में। 5 छक्के रणजी ट्रॉफी में। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज को इस तरीके से छक्कों में डील कर रहे हैं यह युवा भारतीय खिलाड़ी शिवम दुबे। कमाल की हिटिंग, गेंद की लेंथ अच्छी, पर कौन बना राउंड द स्टंप और जड़ दिया एक और छक्का शिवम दुबे ने। ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं। नंबर 5-6 पे जो आखिरी के 3-4 ओवर हैं उनमें बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर। जैसे जैसे इनका कैरियर आगे बढ़ेगा, मेरा ये मानना है इस तरीके के कारनामे और करेंगे। किसी भी खिलाड़ी को निश्चित समय चाहिए। पिछला साल उतना अच्छा नहीं रहा अभी तक। ये एक शुरुआत बल्लेबाजी के साथ और एक गेंदबाजी भी पिछले मुकाबलों में कोई खराब नहीं करी, झलकियां दिखाई हैं। यूटिलिटी क्रिकेटर। स्लोअर बाउंसर, एक ही रन मिलेगा अब एबी डिविलियर्स को। शायद एक डिलीवरी मिले या 2 मिले। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज को मिलती है। आज एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें बची है, 133 पे है केएल राहुल, जिन्होंने 132 नाबाद बनाया था, सबसे ऊपर है। लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने आज फिर आके 234 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया है और अपना नाम उस सूची में दर्ज कर लिया है। मध्यक्रम में आके इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो आरसीबी एक बढ़िया प्रदर्शन जरूर करेगी। चाहते हैं कि एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, शिवम दुबे और एक लिए बल्लेबाज अगर जिम्मेदारी निभा लेते हैं आशीष तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप एक बड़ा स्कोर दर्ज करना चाहते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग स्ट्रांग है मुंबई इंडियंस की भी। इस बीच चर्चा करते हैं पहले किस तरीके से आए पिछली गेंद डाली। एबी डिविलियर्स ने शायद ये सोचा नहीं, सोच कुछ और रहे थे। जेम्स पैटिंसन ने गेंद कुछ डाली और इसीलिए चकमा खा गए। और यही मजा इस खेल का। और एबी डिविलियर्स जब लय में होते हैं निखिल, तो किसी भी गेंदबाज के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। आखिरी गेंद दूर रखे बल्लेबाज से, या बाउंसर भी बढ़िया विकल्प। ऊंची तो बहुत गई है, कितना अच्छा संपर्क, आखिरी गेंद पे जड़ दिया छक्का। तीसरा इस ओवर का शिवम दुबे। शानदार बल्लेबाजी इस युवा बल्लेबाज द्वारा। मोमेंटम इस समय आरसीबी के साथ 201 जड़ दिया है बोर्ड पे। कुछ स्पेशल करना होगा मुंबई इंडियंस, दम कम है। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी, लेकिन जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है इस युवा बल्लेबाज ने, दांत देनी होगी। कमाल की बल्लेबाजी, गेंद दूर तो था पर धीमा गेंद था। और एक और बड़ा स्ट्रोक, लंबा स्ट्रोक, कप्तान विराट कोहली खुश, और होना भी चाहिए। अरे हाथ को तो नहीं लगी। 20 रुपए दे। किस बात पे? भाई बॉल को लेके पकड़ सकता था वो। भाई बॉल उसको छुई नहीं, छूटी तो वो देता, अब नहीं छुई तो तू देगा ना। मुझे पता था नहीं है घर से लेके। ड्रीम 11। Really easy, see? A sea crocodile? Adaptive cruise control. NG Gloucester. Bookings now open. Everything you can make and more. Bison panel. One bowl, infinite uses. Bison panel. आप अगर एक टीम का बैटिंग कार्ड देखना चाहें तो इस किस्म का आपको चाहिए। 3 अर्धशतक लगे और वो मोमेंटम, वो नीड जो थी वो दोनों ही सलामी बल्लेबाज के अर्धशतक से आई। उसके बाद एबी डिविलियर्स ने 24 गेंदों में 55, लेकिन जो गेम का मोमेंटम
थोड़ा सा आरसीबी की तरफ जो शिफ्ट किया है वो युवा बल्लेबाज फिनिशर के रूप में 27 रन 10 गेंदों में। बोल्ट को मिले 2 विकेट। जेम्स पैटिंसन काफी महंगे हुए साबित। राहुल चहर ने कप्तान विराट कोहली का झटका विकेट और जसप्रीत बुमराह को भी दबाव में डाला एबी डिविलियर्स ने। जी हाँ, ये अब जो चेज होगी वो होगी बहुत ही बढ़िया। 202 रन की चेज है। चलिए जुड़ते हैं बायजूस क्रिकेट लाइव के साथ। 200 का आंकड़ा पार हो ये तो आदत होगी, लेकिन ये आदत शारजाह में लगी थी। आज दुबई में भी यही किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। सुपर वी का शो नहीं आया, लेकिन आरसीबी के लिए सबसे सुपर खतोशाह यही इरफान। 3 अर्धशतक, शिवम दुबे का एक्सीलेंट कैमियो। विराट ने 3 रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद टीम में अब कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिख रहे हैं हर जगह। विराट कोहली द कप्तान, द कैप्टन विल बी वेरी हैप्पी। उनको बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि बहुत सालों से यही बात चल रही थी कि जब विराट कोहली एबी डिविलियर्स खेलते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन अब बाकी लड़के भी अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खराब गेंदबाजी थोड़ी बहुत जरूरी, लेकिन उच्च कोटि की जो बोलते हैं ना बल्लेबाजी, वो आज देखने को मिलेगी। फिंच, एबी डिविलियर्स, जिसकी भी बात करो, पार्टिकल की भी काबिल तारीफ। फैंटास्टिक स्टार्ट चाहिए थी देवदत्त पार्टिकल, दूसरा अर्धशतक इस प्रतियोगिता में, तीसरा ही तो मैच है। स्टार्ट अच्छी थी, लेकिन उसके बाद आउट हुए एडम फिंच। विराट कोहली को बहुत खूबसूरत गेंद पे आउट किया राहुल चहर ने, लेकिन अंत के 5 ओवर, अब अक्सर अंत के 5 ओवर में मुंबई के खिलाफ 78 नहीं देखते, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के हाथ में 2 ओवर्स होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवम दुबे, एबी डिविलियर्स बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी, गुमराह कर दिया गेंदों को। अमेज़न बिगेस्ट हिट्स ऑफ द डे में देखते हैं शॉट्स। जसप्रीत बुमराह जरूर सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये बैटल। ये शारजा नहीं, लेकिन कहां गिर रही थी गेंदें। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, जसप्रीत बुमराह से यॉर्कर हिट नहीं हुआ। ये बहुत रेयर है, लेकिन उसके साथ ही आपको खराब गेंदबाजी जब होती है उसका फायदा उठाना है, दूर दूर बड़े शॉट लगाने। ये आप देखिए जितने भी शॉट है, या तो बैकअप लेंथ है, जब यॉर्कर डालने गए थे लो फुल टॉस में चौका लगाया था, और अगर यहाँ पे दुबे की भी बात करें, ये अच्छे शॉट्स है जो ऑफ साइड पे अक्सर हम लेग साइड पे लगते हुए देखते हैं, लेकिन ऑफ साइड पे भी आज अपना शेप होल्ड करके लगा रहे थे, तो ये अच्छी बात है। आखिरी भी जब फिनिश किया, ये मोमेंटम साथ में अपने ड्रेसिंग रूम में लेके गए। मैं इतना सरप्राइज हूँ, कल भी हमने देखा, आज भी देखा, कहाँ है यॉर्कर, कंसिस्टेंट यॉर्कर कहाँ है, नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2 गेंदे वो यॉर्कर की कोशिश भी की है, और अब 2 गेंदे जिनमें से एक को कन्वर्ट कर दिया तो उस लो फुल टॉस में। जैसे आप पोस्ट शो में एक्चुअली बात करेंगे आज की, जैसे हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं, कितने टाइम के बाद आ रहे हैं आप रस्ती, क्या गेंदबाजों के साथ भी हो सकता है, क्या बुमराह के साथ भी हो सकता है, लेकिन रस्ती नहीं। एबी डिविलियर्स थर्स्टी नजर आते हैं उन रनों के लिए। एक बार फिर से द एबी डिविलियर्स शो। इंपॉर्टेंस और टाइमिंग इरफान, उस पारी की जो टाइमिंग है, अगर आप शायद बेस्ट गेंदबाज को ऐसे आड़े हाथों लेते हैं तो आप एक मैसेज, एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पहले 20 रन वो स्ट्राइक रेट उनका 110 ऐसा कुछ चल रहा था, ज़्यादा नहीं। फिर कैसे गियर बदला उन्होंने, जैसे ही एक ओवर आई, मुझे लगा ये पोलार्ड वाली जो ओवर है उसके बाद जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ये एक समस्या रहेगी पूरे आईपीएल में रोहित शर्मा की, कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो उन्हें 4 ओवर खत्म करवानी है कुणाल पंड्या और कायरन पोलार्ड से। लेकिन ये तो क्लास, ये किसके सामने भी छक्के लगा सकते हैं, आप खराब ने इनके सामने नहीं डाल सकते। ये जो यॉर्कर हो सकता था, दूसरा बल्लेबाज होता, शायद लो फुल टॉस पे 1 ही रन मिलता, लेकिन एबी डिविलियर्स का क्लास कुछ अलग है। बैटिंग कर रहे थे, छक्के मार रहे थे, कोई कांटेक्ट करे तो फ्री में आप अपनी सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च करा सकते हैं। इतनी ऊपर तो गए थे, बहुत ऊंचा मैदान है, रिंग ऑफ फ्लाइट जो है वो उसके भी ऊपर। 8 गेंदों पे 47 रन, 27 रन, माफ कीजिए, 8 गेंदों पे 27 रन। जसप्रीत बुमराह बस एबी डिविलियर्स का जो कॉन्टेस्ट था, बट देवदत्त पार्टिकल तीसरा मैच, पहले मैच में अर्धशतक बनाया इरफान, लेकिन आज क्या इस अर्धशतक में जो मैच्योरिटी थी, एक छोर पे खड़े रहने की, टाइमिंग बेहतर, ये ज़्यादा बेहतर वैल्यू उनके जहन में देगा, क्योंकि सामने गेंदबाजी कौन कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल खिलाड़ी, ट्रेंट बोल्ट इंटरनेशनल खिलाड़ी, पैटिंसन इंटरनेशनल खिलाड़ी, चहर भारत को रिप्रेजेंट। आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्या क्वालिटी गेंदबाजी के सामने उन्होंने बल्लेबाजी की। बैकफुट पे जो छक्का लगाया वो उच्च कोटि का छक्का था। अब अच्छी बात ये थी कि कुणाल पंड्या के सामने कवर्स पे भी खेलने की कोशिश की। ये बहुत बढ़िया, जो बैट्समैनशिप की बात करते हैं, जहनी तौर पे तैयार रहने की बात करते हैं, वो आज देखने को मिला। तो 0-50 पहली मैच में बनाया, और आज ज़्यादा सेटिस्फाइंग होंगे देवदत्त पार्टिकल।
देखिए 10वें ओवर में आए थे विराट बैटिंग करने, खूबसूरत गेंद राहुल चहर की, एक यंग स्पिनर पूरे जिगरे के साथ ऊपर गेंद डाली। हम डिसमिसल तो देख रहे हैं इरफान, लेकिन क्या विराट को ओपन करना चाहिए? क्या वो बेहतर समय है जो आते हैं, जो उनका गेम है आरसीबी के लिए, अब मिडिल ओवर में आ रहे हैं, क्या ऊपर बेहतर है विराट? मेरे हिसाब से अगर आरसीबी की टीम की लिहाज से बात करें तो नंबर 3 उनके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ओपन आरसीबी के लिए राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आपको मिलता है देवदत्त पाडिक्कल और एरन फिंच के रूप में। तो अगर पर्सनल डिलीवरी के जाएंगे तो ओपनिंग ज़्यादा टाइम मिलेगा उन्हें, लेकिन अगर आप टीम के लिहाज से जा रहे हैं, विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया है। तो यहाँ पे किस एम से आए हैं कि ये चैंपियनशिप जीतनी है, आईपीएल जीतना है, तो उस लिहाज से नंबर 3 पे आप रुके रहिए। भले ही अगर 3 मैच में रन नहीं हुए, थोड़ा इंतजार करिए, आपका वक्त आएगा, आप चैंपियन प्लेयर है। टीम कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव मैं नहीं चाहूंगा। मैं अगर आरसीबी का फैन हूँ, इसमें बदलाव देखूंगा मैं थोड़ा निराश होगा। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन नई गेंद के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है, मत छेड़िए। ओके, नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एरन फिंच एंड देवदत्त पाडिक्कल, कमाल की बैटिंग की है दोनों ने। आगे बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन की इरफान के साथ, लेकिन रोहित शर्मा, अभी तो आपने आधी पिक्चर देखी है। ब्लॉकबस्टर इंटरमिशन के बाद अक्सर क्लाइमैक्स आता है। रोहित शर्मा फॉर्म पकड़ चुके हैं, ये अबू धाबी में पारी थी केकेआर के खिलाफ। एक गेम प्लान को साफ दिख रहा है, छोटी गेंदें करिए, अपने रिस्क पे करिए, वार्निंग साइन बोर्ड बाहर टंगा हुआ है। कॉन्टेस्ट तो यही था, मुंबई इंडियंस की बैटिंग वर्सेस आरसीबी बॉलिंग। यस, क्या 202 अब भी मुंबई इंडियंस फैंसी करेगी? एंड हु कैन बी द डिफरेंस? क्या युजवेंद्र चहल कुड बी द डिफरेंस? देखिए डिफरेंस पता है क्या होगा कि जो गति नहीं मिलेगी गेंदबाजी में वो डिफरेंस होगा। उडाना के जरिए गति नहीं मिलेगी, 2 स्पिनर खेल रहे हैं उसमें गति नहीं मिलेगी आपको, और साथ ही में वॉशिंगटन सुंदर को भी मैं नई गेंद के साथ देखना चाहूंगा। बिल्कुल, स्पेशली डिकॉक के सामने और रोहित शर्मा के सामने स्पिनर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन। जरूर चहल एक ओवर जरूर डाल सकते हैं पावर प्ले में, लेकिन इनकी ओवर में आखिरी के 10 ओवर में कम से कम 2 ओवर देखना चाहूंगा कि किस तरह से विराट कोहली उन्हें संभालते हैं। तो इस पिच पे आपको ज्यादा गति मिलेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। आज जो आरसीबी की टीम खेल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो लेंथ थोड़ा पीछे रखें, गति दे लें। उडाना के पास गति नहीं है पर वेरिएशन कमाल का है। साथ ही में नवदीप सैनी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और शिवम दुबे बैकअप लाइन डालें, धीरे गति का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सारे बॉलर्स हो गए, एक का मैंने पूछा था लेकिन आपको सबके गेम प्लान पता चल गया। एक और चीज पता कर लेते हैं, बी प्रेडिक्शन। विराट कोहली आज जानते हैं डेथ में नवदीप सैनी ही एक वो बड़ा नाम है। Who's taking this, इरफान? 202 या आरसीबी के 2 पॉइंट? आरसीबी विल डिफेंड इट। मुंबई इंडियंस, उनके अलग प्लान है। ब्लॉकबस्टर प्रॉमिस किया था वही देखने को मिलेगा। सुपर वी की टीम की कहानी खत्म, अब बारी बैट के साथ हिटमैन किया। हेड और टेल ही देखते रहोगे कि अपनी टीम भी बनाओ। माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ। वैसे मैंने बहुत बार सोचा है कि तुम्हारी चाय में ना शहर मिला दूं। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बिस्काम गुगली टेस्ट विद अ ट्विस्ट। Want to learn a new skill but worried about how to get started? Udemy makes it incredibly easy. With thousands of courses taught by industry experts, Udemy offers the latest courses on all the skills you need, always at affordable prices. चाहे जॉब लेनी हो, करियर चेंज करना हो या कुछ नया सीखना हो, Udemy has everything to offer. Visit udemy.com and start learning today. रजत, बॉलिंग कर। अरे अभी 3 बॉल बाकी है। बूम बूम, यहाँ फास्ट नहीं चलता है। तेरा मिनी ओवर, चल कोने कट ले। Dream level. Power is, you only understand it when you feel it, you know? Volkswagen. ब्रो, स्टाइल दिखना चाहिए, पिंपल नहीं। हिमालय मेन पिंपल क्लियर नीम फेस वॉश, लड़कों के लिए नीम के डबल एक्शन के साथ। हिमालय मेन पिंपल क्लियर नीम फेस वॉश। ड्रीम 11 आईपीएल सीजन नंबर 13 कमाल हमने देखा।
एक तरफ कोहली, सामने है रोहित। मुंबई इंडियंस के सामने एक रॉयल चैलेंज, क्योंकि यहां पर 201 जड़ दिए हैं पहले बैटिंग करते हुए। मैदान दुबई है, लेकिन इसे शारजा में कर दिया तब्दील। इतने छक्के, इतनी पिटाई तो अभी तक हमने सिर्फ शारजा में देखी थी भाई। यहाँ काम हो गया सनी भाई। आज तो कमाल देख लिया हमने कि अगर ये मैच मान लीजिए शारजा में होता, वो छोटा सा मैदान, तो 2-3 डब्बे बॉलें मंगवानी पड़ती बाहर से। क्योंकि बड़े लंबे छक्के भी हमने देखे के बल्ले से और शिवम दुबे के बल्ले से। 202 रन क्या बना सकते हैं 202 मुंबई। अंतिम मंत्रणा, आखिरी कुछ संदेश। देखिए वो काम तो कर दिया जिस काम की इस टीम से हमेशा रहती है उम्मीद। खतरनाक, खौफनाक बल्लेबाजी, खूब पिटाई की गई। 10 छक्के लगे, 17 चौके। ए बीट डिविलियर्स या कहें ए बीट डिलीवर्स। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, उसके बावजूद 200 रन। सनी भाई ये सबसे बेहतरीन बात हुई है इस टीम के साथ। यही तो है ना कि आपका जो मोस्ट डिपेंडेबल बल्लेबाज है, अगर वो रन नहीं बनाता है, बाकी जो बल्लेबाज है वो दिखाते कि वो भी कर सकते हैं, तो फिर टीम का हौसला बढ़ता है। मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। जब विराट फॉर्म में आएंगे तो और ज़्यादा रन बन सकते हैं, 250 रन बन सकते हैं, 200 क्यों, 230, 240 आसानी से बन सकते हैं। वही बात सनी भाई कि बाकी लोग तो फॉर्म में हैं, कोहली तो पक्का फॉर्म में आएंगे, ये बात तो तय है। बहुत लंबा है टूर्नामेंट, तो ऐसे में पिंच का फॉर्म, देवदत्त पाडिक्कल का फॉर्म, एबी डिविलियर्स का क्लास और फॉर्म, शिवम दुबे ने भी अपना काम करा। विकी मान आज खेल रहे थे, मोइन अली अभी अब बाहर बैठे हैं। वॉशिंगटन सुंदर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। आज इसुरु उडाना को खिलाया गया है डेल स्टेन की जगह। ये आंकड़े देखिए, 4,990 रन, रन अवे मैच विनर। पिछले मैच में एक बैटिंग की प्रदर्शनी लगाई थी। पैट कमिंस, बॉल गोइंग वेरी 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 फार। एक तरफ से इसुरु उडाना, दूसरी तरफ से मैं वॉशिंगटन सुंदर को देखना चाहता हूं सनी भाई। इंडिया के लिए उन्होंने ये काम किया, फिर ये अपनी फ्रेंचाइज के लिए क्यों नहीं कर सकते। क्विंटन डीकॉक दूसरे छोर पर 131 का स्ट्राइक रेट। बहुत रेयर दिखता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राउंड द स्टंप से शुरुआत करे। इसुरु उडाना अच्छी एक्विजिशन है, पैसे ज्यादा खर्च किए नहीं। श्रीलंका के T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज। इस बार की जो कॉम्बिनेशन लगती है ना आरसीबी की, मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि डेल स्टेन, उमेश यादव पिछले 2-3 मैचेस में तो उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं दिए, पर एक मतलब आपने देखा कि जब फील्डिंग खत्म हो गई तो बड़ी निराश लग रही थी रॉयल चैलेंजर्स की टीम। जब कोई अच्छे बॉलर्स और खास करके एक महान बॉलर डेल स्टेन जैसे बॉलर को मार पड़ती है तो पूरी टीम निराश होती है। एडम जंपा लेग स्पिनर, गेंद धीमी आएगी, शायद घूमेगी भी इस पिच पर। ये तो दोबारा डालनी पड़ेगी।
बहुत वाइड ये गेंद। क्रिस मॉरिस को आज हमने थोड़ा वार्म अप करते हुए देखा सनी भाई, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगले मैच के लिए वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। उनको बहुत पैसे में खरीदा इस टीम ने, तो विकल्प आपके पास मौजूद है। यहाँ आप जैम्पा को खिला लीजिए, शारजा जाएं तो आप क्रिस मॉरिस की तरफ चले जाइए, फिर बीच में आप मोइन अली के बारे में सोचिए। एबी डिविलियर जैसे ही कीपिंग करते हैं इतने सारे विकल्प खुल जाते हैं। ऑफ द मार्क क्विंटन डीकॉक। एक बार फिर टॉस जीतने वाले कप्तान ने फील्डिंग की, एक बार फिर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बहुत सारे रन बनाए कल, लेकिन चेज करते हुए जीती राजस्थान। अब आज देखते हैं क्या मुंबई वैसा कर पाएगी। नहीं, ये आपकी अर्जी है, उसके बाद रोहित की मर्जी है। शॉर्ट बॉल डालोगे तो खूब पिटाई खाओगे। बहुत अच्छा फुल शॉट खेलते हैं, पर ये तो हुक शॉट है। फुल शॉट मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में होता है, वहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। देखिए ये सिर्फ हुक शॉट कह सकते हैं। फील्डर अंदर था 30 मीटर की रेखा के अंदर, और फिर लेग साइड पर अगर आप आधी पिच वाली गेंद करेंगे तो फिर यही होना है। मुझे लगा नोट्स एक्सचेंज करते होंगे फास्ट बॉलर्स। पैट कमिंस को ये पक्का बताया होगा सबको कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर मेरी पेस पे नहीं रोक पाया मैं रोहित को, तो शुरू उडाना की पेस और पैट कमिंस की पेस में काफ़ी अंतर है। रोहित शर्मा बहुत डेमोक्रेटिक अंदाज में शॉर्ट बॉलों की पिटाई करते हैं, चाहे गेंदबाज संदीप वॉरियर हो, पैट कमिंस हो, शुरू उडाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कुलदीप यादव, शॉर्ट बॉल डालोगे तो पिटाई खाओगे। तो 77 का स्ट्राइक रेट पुल करते हुए सनी भाई 277, और हमारे देश के खिलाड़ी बहुत सारे वो पुल के लिए नहीं जाने जाते। ड्राइविंग, कट, पंच सब कुछ दिखता है, पुल हुक सनी भाई एकदम ज़रूरी शॉट है ये, क्योंकि जो शॉट ऑफ लेंथ गेंद होती है उस पर आप रन बना सकते हैं। नहीं तो बॉलर आपको चुप रख सकता है शॉट ऑफ लेंथ गेंदे करके। कमर और कंधे के बीच में वो लगातार अगर गेंदें आती रहेगी तो उससे रन कैसे बने। ये भी शॉट बेहतरीन है, ये भी गैप में है और ये भी चौका है। 14 रन आए हैं पहले ओवर से। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टी बना लो। Dream 11, make your team now. What is this? Let's do a simple word, so like download credit. Download credit. Get rewards for paying your credit card bills. Credit. ये अच्छा निर्णय है, खासतौर से रोहित के सामने तो आप पेस बिल्कुल मत दीजिए, धीमा डालिए। शायद कैच का मौका था, अगर कोई लंबा खिलाड़ी होता तो शायद कैच बनता।
सनी भाई, एक सुपरमैन है जो इस लीग में भाग ले रहे हैं, लेकिन वो किंग्स 11 पंजाब के लिए हमने देखा होगा। निकोलस पूरन के नाम से जाने जाते हैं, उड़ते हुए पाए गए कल शारजा के मैदान पर। 6 रन बचाए थे उन्होंने। 2 बिंदी गेंदे, दबाव आ गया। अभी आस्किंग रेट जो है वो 10 के ऊपर की है। पारी की शुरुआत अब 14 रन बनाए। रोहित को पेस के बाद स्पिन दिखाई है तो बहुत पिटाई करते हैं। शुरू में स्पिन दिखाई तो थोड़ा सा आप इनको खामोश रखते हैं। अगर ऐसे में बड़े शॉट मारने जाए, कई बार बॉडी का शेप जाता है। इट्स अ वंडरफुल मूव। अब अगली 3 गेंदों पे क्या होता है पता चल जाएगा, लेकिन मूव के लिहाज से अच्छा है। और दूसरी तरफ लंबी बाउंड्री है। ये गेंद ऊपर तो गई है, लेकिन नीचे है। फील्डर पकड़ा है कैच। रोहित शर्मा को भेजा पेविलियन की तरफ। अति सुंदर वॉशिंगटन। उसी का जिक्र कर रहा था कि वहां की बाउंड्री बड़ी लंबी बाउंड्री है और वहीं पे वो कैच आउट हुए हैं। देखो, बल्ले के बीच में भी नहीं लग गई गेंद। और ये है पवन नेगी, सब्स्टिट्यूट फील्डर है और उन्होंने कैच पकड़ लिया। आसान सा कैच, बड़े अच्छे फील्डर है, इसलिए फील्डिंग करने आते आरसीबी के लिए। रोहित शर्मा 8 रन करके आए, 14 पर पहली विकेट। रजत, बॉलिंग कर। अरे अभी 3 बॉल बाकी है। बूम बूम, यहाँ फास्ट नहीं चलता है। तेरा मिनी ओवर, चल कोने कट ले। ड्रीम लेवल। Baby, you're my CVV, I'm your OTP. When we come together, the payment is easy. Download Trade. Seriously? Let's just do a simple voiceover like download Trade. Download Trade. Get rewards for paying your credit card bills. Trade. Download Trade, baby. Download Trade. वॉशिंगटन सुंदर। क्विंटन डीकॉक के सामने भी ऑफ स्पिन। फैंटास्टिक मूव। ये इनकी पहली विकेट है पावर प्ले में आरसीबी के लिए। वॉशिंगटन सुंदर। किसी और ग्राउंड पर ये शायद छक्का होता, पर ये तो बड़ी लंबी बाउंड्री है। अच्छा ये ड्राइव, गैप में गेंद को धकेला। 4 जितनी ताकत तो नहीं है, लेकिन 2 आसानी से। 16 पर 1 MI 2 के बाद। For the high-functioning jet setter, taking a moment. New Tiguan All-Space fits all. Volkswagen. अब पूरा इंडिया खेलेगा और खाएगा with Dine Out, Predict and Win. Guess the winners and earn daily money to use at the best restaurants. Microtech, the trust of millions. Now Microtech is filling all the colors in your life with its solar products. Microtech. बल्लेबाजी के लिए आए हैं सूर्य कुमार यादव।
3 डॉट गेंदों का दबाव था रोहित के ऊपर। वो एक विशाल का लक्ष्य का कर रहे थे सामना, इस वजह से इस गेंद को हैंड में मारना चाहते थे सनी भाई। पवन नेगी एरन फिंच की जगह सब्स्टिट्यूट। हर मैच में वो फील्डिंग करने आए हैं किसी न किसी के लिए सब्स्टिट्यूट। बड़े अच्छे फील्डर है। लगा है बाहरी किनारा और पकड़ा है कैच। एबी डिविलियर्स, इसूरू के खाते में पहली आईपीएल विकेट। सूर्य कुमार यादव खाता नहीं खोल पाए आज। ये देखिए T20 स्पेशलिस्ट इसूरू उडाना की कामयाबी। अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछल भी गई, देखिए थोड़ी सी उछल गई, ग्लव को लगकर बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया है एबी डिविलियर्स ने। और ये जो चेंज बदलाव था वो बड़ा अच्छा बदलाव था। 0 पर आउट, 16 पर 2। Being sophisticated is a form of affair. It's not about flaunting power. It's anything but aggressive, sophisticated power. The new S-Cross Petrol, a refined SUV. Before you buy a new car, make sure you visit the Car Dekho app. Compare cars, check out expert reviews, get the best offers and discounts. Download the Car Dekho app today. For those who want more from life, Kingfisher, the smooth choice. निशान कशन आते ही जड़ दिया चौका। ये तो होता है युवा खिलाड़ी का आत्मविश्वास। पहली गेंद पर चौका लगा दिया, बहुत अच्छा चौका भी लगा दिया। देखिए पोज पर खड़े होकर स्क्वायर कट मारी है, शायद थोड़ी हवा में थी पर फील्डर से दूर। बड़ी हैरानी हुई थी कि इन्होंने पहला मैच खेला नहीं था, सौरभ तिवारी खेले। क्यों आए हैं बल्लेबाजी के लिए? इसूरू उडाना T20 स्पेशलिस्ट। अतिरिक्त उछाल, पास थी गेंद, रूम नहीं था, क्रैम्प किया और हल्की सी हुई खता, नहीं खुला खाता। पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे सूर्या। कैच भी अच्छा पकड़ लिया था एबी डिविलियर्स ने। गेंद थोड़ी सी ज्यादा उछल भी गई थी। ग्रेट पावर प्ले चल रहा है, इसमें आप क्रेड ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप इनाम जीत सकते हैं। आप किस प्रकार आउट हुए रोहित, ये देखते हैं। 81 मीटर यहाँ पर है, 68 मीटर वानखेड़े में थी। यही मैच शारजा में होता तो 6 रन था। अब ये दुबई में है तो पवेलियन में बैठे हैं। एक तरफ तो 81 मीटर है सनी भाई, एक तरफ जरूर थोड़ी छोटी है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। 2 की मांग, मिल जाएंगे 2। 2-3 पर 2, 3 के बाद। Saurav, which way is the match going to go? मैच मुझे पता है which way। दादा की टीम नीचे जा रही है और मेरी टीम ऊपर। खुद को चैंप समझते हो
तो प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी? देखते हैं माई 11 सर्कल पे। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mivsrcb.com। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ वो प्याज। प्याज या प्याज? घर पे किंगफिशर। वाह क्या प्लान है। दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। वाशिंगटन सुंदर के हाथ में गेंद है। हैरानी होती है सोच के सनी भाई की मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम ने आज तक कभी 200 के ऊपर का टोटल चेज नहीं किया है सक्सेसफुली। और अभी भी ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 विकेट फटाफट चली गई है तो मुश्किल लग रहा है कि 200 आज भी करेंगे। 199 पर 2, ये 2017 की बात। पिछले साल 198 बना दिए थे। 195 2014। देखिए आरसीबी के बारे में आप कह सकते हैं कि उन्होंने 200 रन कई बार कंसीड किए हैं क्योंकि गेंदबाजी कमजोर रही है। मुंबई ने 200 चेज ना की हो, थोड़ी सी हैरानी होती है मुझे तो। जिस टीम में रोहित हो, हार्दिक हो, कुणाल हो, कैरन पोलार्ड हो, क्विंटन डी कॉक हो। बहुत अच्छी गेंदबाजी। वाशिंगटन सुंदर अपनी हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद को थोड़ी सी पुश कर रहे हैं और उनकी गति देखें 95 की गति है। बीच में वो थोड़ी और भी धीमी करते हैं। आने वाले बल्लेबाजों में पांड्या ब्रदर्स और बीच में कैरन पोलार्ड इस गेंद पे चौका ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्या शॉर्ट बॉल को वो मिड ऑन की तरफ से पुल मार पाएंगे या कदमों का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं। सनी भाई जब ये आप देखते हैं तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स वो लैक ऑफ ऑफ स्पिनर याद आती है। हरभजन सिंह नहीं है, यहाँ 2 लेफ्ट हैंडर हों और यही अगर चेन्नई के सामने हो तो कोई गेंदबाज ही नहीं जो ऑफ स्पिनर के साथ आप काम करवाएं। बड़ा मिस हुआ है। और एक लेफ्ट हैंडर भी है कुणाल पांड्या। पैटिंसन भी लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। जबरदस्त गेंद, भाग्यशाली कि आउट नहीं हुए। वेल डन वॉशिंगटन। 24 पर 2, 4 के बाद मुंबई इंडियंस। कोई प्लेयर नहीं मिला? मुझे सिर्फ आपका ही विकेट चाहिए। चल बॉलिंग कर। जब स्टेमिना बड़ा होगा कोई चैलेंज बड़ा नहीं होगा। बूस्ट तो ये 3 गुना ज्यादा स्टेमिना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। नवदीप सैनी आए गेंदबाजी करने के लिए। ये एक अच्छा मौका है आज ईशान किशन के लिए। इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं आपके प्रमुख बल्लेबाज जो है रोहित, जो आउट हो गए। लेकिन आपकी टीम किस तरीके से इस लॉन्चेस को बनाती है वो बहुत फर्क रहता है। शुरुआत में थोड़ा सा रुक रहे थे, इंतजार कर रहे थे खराब गेंद का। ये मैदान बड़े हैं, 15-18 मीटर का
अमूमन एवरेज डिफरेंस है, यही अगर वानखेड़े होता तो ये गेंद स्टैंड्स में गिरती। दुबई, अबू धाबी, ये बड़े ग्राउंड्स हैं। शॉर्ट पिच गेंद और ये जाएगी पूरी डिस्टेंस। अन अकेडमी क्रैकिंग सिक, गेंदबाज की गति का क्या इस्तेमाल। शॉर्ट पिच गेंद बहुत जल्दी घूम गए। इन बड़े मैदानों में आपको लेंथ थोड़ी सी पीछे रख सकते हैं क्योंकि आपके पास तो प्रोटेक्शन है, लेकिन ये हाफ ट्रैक है, ना तो ये बाउंसर था, ना तो ये हार्ड लेंथ जिसकी बात करते वो था। और आपने मोमेंटम का मौका दिया इस छक्के के साथ ईशान किशन को। बढ़िया शॉट, बढ़िया छक्का, कप्तान भी खुश। और लाइन भी शायद उतनी बेहतर नहीं थी। ये अगर ये थोड़ी और मिडल स्टंप की तरफ हो तो बल्लेबाज के लिए और मुश्किलें बन जाती हैं। ये राइवलरी जो है पुरानी है, ये साल 2019 का। आप स्कोर कार्ड देख लीजिए, मुंबई ने 187 बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 181। 6 रन से वो मुकाबला जीते थे मुंबई की टीम। ये राइवलरी आशीष पुरानी है। उस मुकाबले में क्या हुआ था, कुछ नो बॉल का भी सिलसिला था। जी हाँ, मुझे आज भी याद है। आखिरी बॉल पर शिवम दुबे कर रहे थे बल्लेबाजी, मलिंगा थे गेंदबाज। पर देखिए, इस तरीके की चीज़ें तो आपको आईपीएल में देखने को मिलती हैं। अंपायर्स भी जो हैं इंसान हैं, गलती हो जाती है। हम खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर्स हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती हैं, पर उनसे सीख के आप आगे बढ़ें, वो बहुत ज़रूरी। पठान साहब कुछ बोलना चाहते हैं? इंसान गलतियों का पुतला है। बिल्कुल सही। और जो जितनी जल्दी अपनी गलती को बेहतर कर ले और वो जीवन में आगे जाता है। विराट कोहली काफ़ी नाखुश थे उस निर्णय से, जो लाजमी सी बात है। विराट कोहली चाहेंगे कि उनके जो स्पिनर्स आज उन्होंने खासतौर से खिलाया, एडम ज़ैम्पा को मौका दिया है, वो बढ़िया प्रदर्शन करे, अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं नवदीप सैनी। इन विकेट्स में उछाल प्राप्त करते हैं। और युजवेंद्र चहल पिछले कुछ सालों से हर मुकाबले जो भी वो खेल रहे हैं आईपीएल में अपनी खेल में सुधार लेके आ रहे हैं। पिछले साल भी उनकी गेंदबाजी बहुत शानदार रही थी, इस साल भी उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है। और ये उस मैच के विकेट्स हैं पिछले साल के, जिसका भी हमने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था, किस तरीके से इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। जो इनकी ताकत है वही किया। ऑस्टम के भाग, धीमा गेंद पर आगे रखते हैं गेंद। तीनों के तीनों खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक लगाने गए, गेंद थोड़ी आगे। अगर यही गति तेज हो तो आगे वाली गेंद जाएगी सीमा पार। आगे ये डाल पाते हैं क्योंकि ये धीरे रखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल अलग गेंदबाज, विपरीत गेंदबाज। ये जान है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। अक्सर चर्चा करते हैं लोग एबी डिविलियर्स विराट कोहली, पर मेरा ये मानना है ये उतना ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर भी। समा बांध के रखते हैं और इस तरीके के लोग आपको चाहिए कि जब ग्राउंड पे होते हैं मेहनत पूरी, नतीजा जो मर्जी हो, हर बार आते हैं, हर रोज एक नया दिन इनके लिए। ये लीजिए, उस सूची में भी है यहाँ युजवेंद्र चहल। अभी गेंदबाजी करेंगे तो अगर विकेट्स इनकी टैली बेहतर होती है, एक तो आरसीबी का फायदा होगा और खुद भी इनका फायदा जरूर रहेगा। ये अच्छा कमबैक, नवदीप सैनी ने दूसरी गेंद पर छक्का खाया था, उसके बाद सिर्फ सिंगल। 31 पे 2। छक्का। इस बात का आउट है भाई, छत के ऊपर छक्का है, छत पे लग के अगर हाथ में आई तो आउट है गोली। ड्रीम 11। अरे credit card bill is here, need OTP to clear. Download Cred and you'll be one up there. Cred download. Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर द्वारा। तीसरा ओवर डाल रहे हैं। एक चीज आज देख के बहुत अच्छा लगा कप्तान विराट कोहली से। पहले ओवर में 11 रन गए इसरो उड़ाना के, उसके बावजूद भी उन्हें तीसरा ओवर दिया और वॉशिंगटन सुंदर आए अपना लगातार तीसरा ओवर करने। अक्सर देखा गया है गेंदबाज बदलने में बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आज ऐसा नहीं किया।
बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा प्लस मेरा मानना विराट कोहली की कप्तानी में आज। और शायद उड़ाना तो दूसरी ओवर ना देते अगर रोहित शर्मा आउट ना होते, तो वहां पे सोची समझी चाल थी उनकी कि उड़ाना जिन्हें अभी खेल लगाया था डेल स्टेन की जगह पे लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अलग एंगल है, नई गेंद के साथ हमेशा यूजफुल हो सकते हैं। पहली ओवर में थोड़े ज्यादा रन गए, फिर वापसी करवाई वॉशिंगटन सुंदर ने, उसके बाद कप्तान ने भरोसा फिर से जताया नए बल्लेबाज के सामने और उसकी विकेट भी चटकाई उड़ाना ने। बढ़िया कप्तानी, बढ़िया गेंदबाजी। और दाद देनी होगी जिस लेंथ पे ये गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, पीछे जाने का मौका नहीं मिल रहा, आगे जब बैट्समैन खेल रहा है तो घुटने की हाइट के ऊपर हो रहा है तो बड़ी हिट नहीं लगा पा रहा, और क्रीज का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करता है। कुछ गेंदें क्रीज के पास से करते हैं, जिस तरीके से रिलीज करना है, कुछ एकदम कोने से करते हैं, वो एंगल क्रिएट करते हैं। थोड़ी चोपड़ा साहब आपको अपनी याद आई कि नहीं? क्योंकि देखिए ये भी गेंद घुमाते नहीं है उतनी, आपके तरीके के गेंदबाज हैं ये जयंत यादव, ये धीमी डालते हैं। निखिल चोपड़ा भी विकेट टू विकेट बल्लेबाज के पास नहीं दूर रखते थे। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी आपसे काफी कुछ मिलती है। तारीफ के अंदर भी नहीं एक अल्फाज छुपा हुआ था, गेंद घुमाते नहीं है। तारीफ भी कर दूं और साथ ही में थोड़ी सी बुराई भी। देखिए हर गेंदबाज सुंदर की आप लेंथ देखिए, लगभग 70% गुड लेंथ। हर फिरकी गेंदबाज की गेंद घूमती नहीं है और जरूरी भी नहीं, और हर तेज गेंदबाज की गेंद स्विंग नहीं होती और कोई जरूरी भी नहीं। हर खिलाड़ी की ताकत अलग पठान साहब। स्विंग गेंदबाज की तो स्विंग होगी गेंद, तभी वो स्विंग गेंदबाज है। तेज गेंदबाज की शायद कभी स्विंग ना हो, ये समझ में आता है। लेकिन आपने जो बात बोली कि अभी जो सबसे ज्यादा क्रिकेट में बदलाव आया है कि आपको लाइन और लेंथ में नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कभी पैर पकड़ना है बल्लेबाज का, कभी ऑफ साइड के बाहर गेंद डालनी है, तो घूमने से भी ज्यादा बढ़िया लाइन लेंथ का आपके पास नियंत्रण, और वही कंट्रोल की वजह से आप पावर प्ले में इस तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। और आप जब गेंद को रीड कर पाए, देखिए किस तरीके से आज वॉशिंगटन सुंदर ने स्टंप्स को अटैक किया है, स्टंप्स के बाहर नहीं गए, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दाद देनी होगी जिस तरीके से जो ग्रुपिंग रही है गेंद की, लगभग सभी स्टंप्स के एकदम ऊपर खत्म हो रही है, दर्शाता है कि कितनी अच्छी लेंथ में उन्होंने डाली। और जैसे मिड शो में भी मैंने बात की थी कि शायद ये जो टीम खिलाई है आरसीबी ने वो ज्यादा काम कर जाए, क्योंकि गति नहीं है इनके पास। एक ही तेज गेंदबाज है जो बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, बाकी उड़ाना उनके पास बहुत ज्यादा गति नहीं है। दुबे की बात करें, बाकी 3 स्पिनर की बात करें, इसका मतलब आप बल्लेबाज को पेस नहीं देने वाले। लेकिन एक चीज बहुत क्रूशियल है, लेंथ कौन सी डालते हैं आप, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखें, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। मैदान साइड में बड़ा भी है, उसका आप फायदा उठाएं। अभी तक आरसीबी के गेंदबाजों ने बिल्कुल वैसा ही किया, बढ़िया गेंदबाजी। फिर से एक अच्छी लेंथ यहाँ आपको बैक कर रहे हैं। 35 पे 2, 6 की बात। सोशल डिस्टेंसिंग में और ज्यादा डिस्टेंसिंग क्यों? टिकट स्मेल रेडी विद एक्स टिकट, अब सिर्फ 35 रुपीज में। युजवेंद्र चहल इस टीम के ये प्रमुख सदस्य हैं, और क्विंटन डिकॉक के खिलाफ तो खास तौर से इस तरीके से ये 8 प्ले में रन बने हैं।
कुछ अच्छे शॉट्स लगे थे और उसके बाद ये बहुमूल्य विकेट मुंबई की वॉशिंगटन सुंदर ने निकाली और फिर सूर्य कुमार यादव, दो बल्लेबाज जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और उसके बाद ईशान किशन आज जिनको मौका मिला उन्होंने कुछ हाथ खोल के बड़ी बड़ी हिट्स लगाई है, लेकिन इनका स्पेल बहुत ज़रूरी होगा। चतुर गेंदबाज है क्विंटन डिकॉक के खिलाफ, गुगली अच्छा डालते हैं, पड़ते अच्छा है, फ्लाइट करते हैं गेंद। लेफ्ट हैंडर को एक ऐसा लेग स्पिनर है जिनको परेशानी नहीं होती लेफ्ट हैंडर को बॉल डालते हुए। क्विंटन डिकॉक के खिलाफ जो गुगली डालते हैं वो सही स्टंप पे लगती है, पढ़ने की बात है क्विंटन डिकॉक, और इसीलिए इसमें सफलता हासिल होती है। बिल्कुल भी घबराते नहीं है, कभी ये सोचते भी नहीं कि मैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी कर रहा हूं तो मैं बैकफुट पे हूं। और देखिए, जिस खिलाड़ी ने एक बार सक्सेस प्राप्त कर ली बेंगलोर में, तो फिर उनका दिल और बड़ा होता चला जाता है। गति परिवर्तन की अगर आप बात करें, बिल्कुल धीमा गेंद लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इनकी ताकत है। और अगर आमना सामना अगर आप देखें, 3 बार आउट कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट रहा है क्विंटन डिकॉक का 120, तो अभी तो चहल इनके ऊपर। और अगर भारत में इन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया है बेंगलोर के ग्राउंड में, बॉम्बे के ग्राउंड में, तो यहाँ तो बाउंड्रीज और ज़्यादा बड़ी हैं। तो इस खिलाड़ी का पिच से कोई लेना देना नहीं, ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने जो दिमाग में ठानी होती है, जो इनको आता है, वो लगातार बार बार करते चले जाते हैं। और एक बार फिर ऐसा ही किया, हवा दी गेंद को, काफी बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, पवन नेगी के हाथ, एक और आसान सा कैच। गति की बात करते हैं, लाइन ऑफ लेंथ में नियंत्रण की बात करते हैं, वो सब कुछ है युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी में। पहली गेंद डाली पैर पे एकदम धीरी, दूसरी भी शायद बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे तेज आएगी, लेकिन और धीमे डाली, और ज्यादा आगे डाली। वहां पे बड़ा शॉट खेलने गए क्विंटन डिकॉक, बाउंड्री लाइन के पास भी नहीं गई। फील्डर मिड विकेट का पवन नेगी बहुत अंदर की तरफ खड़ा था, इसका मतलब बल्ले पे गेंद बिल्कुल भी आई नहीं। कप्तान खुश, युजवेंद्र चहल खुश। जी हाँ, छठी इनिंग में चौथी दफा आउट किया है। अभी दिखाया था कि किस तरीके से क्विंटन डिकॉक फंसते, 14 रन बना के आउट हुए। 39 में 3 मुंबई। हेड और टेल ही देखते रहोगे कि अपनी टीम भी बनाओ। माई 11 सर्किल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्किल ऐप नाउ। पुराने जैसा आश्रम ना आइए बाबा निराला काशीपुर वाला, ये कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपदेश नहीं, संदेश देता हूँ शांति का। He's not a god man. He's con man. एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। He's got on the wrong foot here. करोड़ों लोग भी तो मंगवा रहे हैं। He's calling for a second run. स्विगी पे करोड़ों लोग ऑर्डर कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद। स्विगी, व्हाट अ स्कोर। ये एक अच्छा मौका है यहाँ पे। हार्दिक पांड्या आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और युजवेंद्र चहल के आपको ओवर संभाल के नहीं बल्कि अब रन भी बनाने हैं, क्योंकि आप एक बड़ा विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं, तो ये दमखम है भी। और हार्दिक पांड्या आए बल्लेबाजी करने, क्योंकि क्विंटन डिकॉक इस तरीके से आउट हुआ। बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे गेंद लगी, कैच तो बड़ा आसान था नेगी के लिए, पकड़ा भी। और जो ब्रेक थ्रू की बात करते हैं, लगातार आपकी टीम के पास ऐसे बॉलर होने चाहिए, वो आपकी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते रहे हर मुश्किल समय में भी। चहल वैसे गेंदबाज है, और इनके पहले तो 2 ब्रेक थ्रू मिल चुके थे टीम को, तीसरा चहल ने दिलाया। ये सामने खेल सकते थे, ज्यादा क्रॉस चले गए। ये अब अच्छा मौका है कि आपके जो प्रमुख बल्लेबाज हैं, रोहित जो वापस चले गए पवेलियन में, क्विंटन डिकॉक वापस चले गए। मध्य क्रम एक बड़ा ये स्कोर चेस अगर करती है तो टीम में विश्वास और
भरपूर आएगा। और ये ऐसे खिलाड़ी जो ये काम कर सकते हैं। 41 पे 3। Saurav is going for the pitch. दादा बिग फैन, लेकिन पिच रिपोर्ट जो भी हो मेरी 11 कर देगी आपकी 11 को बिल्कुल फ्लैट। तो आओ पिच पर, खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी, देखते हैं माई 11 सर्कल पे। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mywsrcb.com। Optimum Nutrition Gold Standard, 100% whey protein, supports muscle recovery and gets you back on track. Together, we will be better than before. जैम्पा है गेंदबाजी करने के लिए और एक स्लिप के साथ करेंगे गेंदबाजी। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है, अच्छी लय से गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत है। और जी हाँ, फैंस अभी इतना निराश ना होए। मुंबई हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन है, किरण पोलार्ड आ रहे हैं। वही आरसीबी के फैंस इस समय खुश होंगे क्योंकि जो आरसीबी के गेंदबाजों ने किया, थोड़ा सा दबाव बना के रखा। 42 पे 3 बड़ा स्कोर का पीछा कर रही है मुंबई की टीम, लेकिन मुंबई के फैंस अभी इतनी जल्दी ना निराश हुई। आपके पास अभी बड़े हिटर्स मौजूद हैं। ईशान किशन पिछले साल 6 मैचेस खेले थे, 101 का स्ट्राइक रेट था। एक स्ट्राइक रेट में जरूर नजर रखनी होगी ईशान किशन को। अच्छे बल्लेबाज है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। अभी भी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ बड़े शॉट लगाने की कोशिश करें, सिंगल डबल पे भी ज़रूर तवज्जो दें। दूसरी तरफ हार्दिक है, वो कभी भी अपना गेयर बदल सकते हैं आगे अगर उनको लेंथ मिली तो। ये देखिए आगे लेंथ और बड़ा शॉट लगाने गए। लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींच के रखना पड़ेगा क्योंकि एडम जैम्पा की गेंद बहुत ज़्यादा घूमती नहीं है, तो लेंथ में नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी, स्पेशली हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड जैसे बल्लेबाजों के सामने। ये एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियन के खेमे की और अगर रुक करें तो अगर मैच के आसपास कहीं जाना है तो इस खिलाड़ी का खड़ा रहना बहुत जरूरी। हार्दिक पांड्या बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं, और जो चर्चा अभी हम कर रहे थे कि दोनों जो फिरकी गेंदबाज है, खासतौर पर एडम जैम्पा, युजवेंद्र चहल बिल्कुल धीमी गेंद डालते हैं, कभी कभी आर बल्लेबाज ललचा जाता है और गेंद हवा में भी चली जाती है, आप लॉन्ग ऑफ डीप पॉइंट पे आउट होते हैं। और जब एडम जैम्पा की बात करें, थोड़ी तेज डालते हैं तो दूर रखें। और एक ये खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बाद 151 मैच, स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए लगभग 147 का, ये भी है ताबड़तोड़ बल्लेबाज। तो आपको दबाव बनाते रहना पड़ेगा मुंबई इंडियन के ऊपर। कभी ये ना सोचे कि खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग और ये खिलाड़ी भी। लेंथ की बात कर रहे थे कि आप हार्दिक पांड्या जरूर अभी बल्लेबाजी करने आए हैं, आगे नहीं डाल सकते। खैर ये तो फुल टॉस थी, एक तोहफा था जो हार्दिक पांड्या ने एकदम प्यार के साथ कबूल भी किया। आप लेंथ थोड़ी पीछे रखिए, आगे नहीं, उसी पे ज्यादा तवज्जो दीजिए। मैदान बड़ा है, साइड वाली बाउंड्रीज का इस्तेमाल करिए। सिर्फ जैब ताकत के साथ, ज्यादा फॉलो थ्रू भी देखने को नहीं मिला। दोनों ओवरसीज खिलाड़ी ने इस शॉट की तारीफ की। इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद नहीं आएगी, ऐसे बल्लेबाजी करते रहेंगे तो ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच बन सकते हैं और वो मैच का रुख बदल भी सकते हैं। ये बल्लेबाज खड़ा रहेगा, स्पिनर्स को हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस लेंथ पे डालें। ये अच्छी क्रिकेट, आखिरी गेंद पे सिंगल ले लिया, 52 पे 3। ब्रो, स्टाइल दिखना चाहिए, पिंपल नहीं। Himalayan Men Pimple Clear Neat Face Wash made for men with
Himalaya Men Pimple Clear Neem Face Wash. Make no mistake about it, this is a pressure cooker situation. But incredible wrist work by Sehwag there. A lesson for all youngsters watching. Vim Jiao, what a player. What are you looking at, Dad? 4WD. Four-wheel doodle? No. Four-wheel drive. NG Gloucester. Bookings now open. हार्दिक स्ट्राइक पे गेंद चहल के हाथ में। वो लेग स्पिनर जो जिगरे के साथ डालता है, इनको डर नहीं ऊपर गेंदबाजी करने में, ये नहीं जाते वो बैकअप डिफेंसिव ऑप्शन जो कि थोड़ा तेज गेंदबाजी है। तभी तो इतने चंचल है, तभी तो इतना माहिर ये खिलाड़ी है। गेम चेंजर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। गेम चेंजर, इसमें कोई शक नहीं जतिन। और देखिए ये जो बीच के ओवर हैं युजवेंद्र चहल और एडम जैम्पा के, बहुत महत्वपूर्ण। अगर खेल में कहीं मुंबई इंडियन आसपास होता या आगे होता तो भी इन खिलाड़ियों पर काफी दबाव रहता चेज रोकने के लिए। पर अब तो रन भी है बोर्ड पर 200 और विकेट भी गिर चुके हैं 3। तो अब इनका काम थोड़ा आसान पर खत्म नहीं। लगातार आपको दबाव बनाते रहना पड़ेगा बल्लेबाजों पर, क्योंकि इसके बाद केरन पोलार्ड, कुणाल पांड्या, बल्लेबाजी काफी लंबी है मुंबई इंडियंस की। और ये आईपीएल है, यहाँ पर हमने बड़े बड़े चेज होते देखे हैं। शारजा नहीं, दुबई है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी कठिन, पर फिर भी हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, केरन पोलार्ड, ईशान किशन समर्थ हैं। मजा आने वाला। सवाल पूछा विजय शंकर ने, हमारे वो क्रिकेटर विजय शंकर ने, हो सकता है उनके भी जहन में चल रहा हो, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि पेस और स्पिन की जो कहानी है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा वो पेस वर्सेस स्पिन कैसे चलेगी, क्या ज्यादा स्पिन होते देखेंगे। क्योंकि सवाल इस प्रतियोगिता से पहले यही था कि यूएई की कंडीशंस, शारजा तो खैर किसी के लिए भी बेहतर या इकोनॉमिकल साबित हुआ नहीं है, लेकिन अबू धाबी, दुबई, ये जो मैचेस हैं, क्या वो उम्मीद अनुसार दूसरे हाफ में अलग धीमी विकेटें जहां स्पिन ज्यादा होगी, या कि 5-5 स्ट्रिप्स हैं किरण मेहरा जी, वो उतना बदलाव नहीं आएगा। देखिए बड़े ग्राउंड है तो ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको। वही कि जो आपको स्पिन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रही है, चहल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा तेज जाने की कोशिश नहीं कर रहे, स्लो डालते हैं, ललचाते हैं बल्लेबाज को, और वैसे ही विकेट चटकाते रहे। वो सारे जो लेग स्पिनर्स है काफ़ी सक्सेसफुल रहे अब तक के टूर्नामेंट में। उसके लिए बिल्कुल आज जो गेंदबाजी हुई है वाशिंगटन सुंदर की तरफ से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और चहल ये तो बहुत चतुरी गेंदबाज है, और उनके लिए अच्छे टोटल भी है उनके साथ। देखिए अभी तक तो मेरा मानना है ग्राउंड्समैन ने बहुत बढ़िया काम किया है, पर हाँ आगे चल के आपको शायद उतना घूमने वाली पिच ना मिले, पर थोड़ी धीमी जरूर होंगी। थोड़े जो रुक के आती है वही उतनी ही बहुत। 200 की जगह अगर 180 बनेंगे, थोड़ी गेंद रुकी, थोड़े 20 रन रुके, गेंदबाज के लिए बहुत बड़ा प्लस। और यहाँ पर जतिन देखिए ग्राउंड बड़ा है, अबू धाबी और दुबई। शारजा एक अलग कहानी। तो आपको जरूर पिच धीमी तो जरूर होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखना ये होगा क्या टर्न होती हैं। धीमा और टर्न होना बहुत बड़ा फर्क। तो जैसे जैसे कि टूर्नामेंट आगे जाएगा आपके सामने वो पिक्चर आती जाएंगी। अभी तो देखिए लश ग्रीन आउटफील्ड, और जो 5 और जो पट्टी हैं, 6 जो और पिच हैं, उन पर भी काफी घास पानी काफी दिया जा रहा है। ओवर की समाप्ति 58 पर 3। युजवेंद्र चहल 6 सिंगल जरूर आए, ये अच्छा मुंबई इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकवरी पार्टनरशिप की आवश्यकता है ईशान किशन हार्दिक के बीच में। क्या होगी कहानी सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की उस पर? ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ वो प्याज। प्याज या प्याज?
घर पे किंगफिशर। वाह, क्या प्लान है। मथुर के पैसे आ गए। अरे वही खाता आउट करिए, खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। वैसे मैंने बहुत बार सोचा है कि तुम्हारी चाय में ना शहर मिला दूं। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। डिसीजन पेंडिंग है, पर तुम्हारा डिसीजन अभी ले। माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ। This is Hosh. This is Josh. For many more funny videos, get on to Josh now. ये देख, सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस। वाह भाई, काश म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा होता, सारे फंड्स और उनके परफॉर्मेंस देखने मिल जाते। तो है ना, म्यूचुअल फंड सही है .com पर जा, वहाँ पे हर फंड का परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। नाइस। लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पे मत जाना, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बात तो सही है। दिखा दो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Automatic emergency braking. MG Gloucester. Bookings now open. तुम एक अकेली जान अपने एजेंट्स को बचाओगे या अपनी आवाम को? Crackdown. Streaming now on Voot Select. अब पूरा इंडिया खेलेगा और खाएगा with Dine Out, Predict and Win. Guess the winners and earn daily money to use at the best restaurants. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अच्छी शुरुआत मिली थी एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल के बैट से। फिंच आउट हुए थे। इस स्टेज पे विराट कोहली आए थे बैटिंग करने मुंबई इंडियंस। टॉप ऑर्डर में जहां पे बड़ा नाम है रोहित शर्मा का, उनका बड़ा विकेट गवा चुके हैं। सूर्य कुमार यादव एक और मैन विद सम टच फॉर्म। आज नए हीरोज देखेंगे। 11 ओवर का खेल बाकी। वॉशिंगटन सुंदर इनकी स्पेल का है आखिरी ओवर। अजाया जिस अंदाज से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने गेंदबाजों को यूज किया है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। और जो आज का रोहित काफी जल्दी आउट हो गए तो काफी फर्क आ जाता है। डिकॉक 15 गेंद खेले। अभी ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल फैन बॉक्स देख रहे हैं हम। हमारे वर्चुअल गेस्ट बॉक्स में स्पॉन्सर्स के प्रतिनिधि घर से लुत्फ उठाते हुए तरीके ढूंढे हैं किस तरीके से फैंस को अब भी मैदान पे जोड़े रखें बिना कोई रिस्क उठाए। अच्छी गेंदबाजी। और अभी हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है कप्तान विराट कोहली ने। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के जतिन। पहले 2 ओवर कराए उड़ाना से, पहले ओवर में 11 रन गए, तो उसके बाद और वॉशिंगटन सुंदर से लगातार तीसरा ओवर करवाया। ये बहुत कम देखने को मिलता है। और हम चर्चा कर रहे थे शायद अपने अनुभव वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी से शुरुआत कराएं, पर करा बिल्कुल कुछ अलग। वो ठीक है, आपकी जो भी सोच है, जिसको भी आप गेंद थमाएं उनको एक लंबा स्पेल देने को देखिए अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो। और ये आपके सामने कौन रन ज्यादा बनाएगा। 2-0 ड्रीम 11 आईपीएल में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही कड़ाकेदार बल्लेबाज, धमाकेदार बल्लेबाज। माहौल मत बनाए नहरा जी, जवाब दे। 2-0 0 ना बनाए। फैंस ये कह रहे होंगे जवाब दे, कौन बनाएगा ज्यादा। 50-50। मैं यहाँ पे नहीं बैठने दूंगा आपको। वो 50-50 की बीच की दहलीज में एक पिक करें, या बोल सकते हैं कि इक्वल, लेकिन वो होता नहीं। पिक वन। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ज्यादा रन बनाए, ये मेरा मानना है। बतौर सलामी बल्लेबाज आते हैं, ओवर भी ज्यादा मिलते हैं खेलने को। विराट कोहली नंबर 3 आते हैं और एक मैच में हमने देखा नंबर 4 भी आए।
तो ये खिलाड़ी भी रन तो बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं, पर मेरा दिल कहता है इस बार रोहित शर्मा उनसे थोड़े ज़्यादा रन बना सकते हैं। उनकी शुरुआत अच्छी रही है इसलिए नहीं, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तीसरा ही मुकाबला है, अभी तो बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। पर अभी तक का जितना मैंने माहौल देखा है, जिस तरीके से टूर्नामेंट चला है, मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ा सा आगे रहेंगे विराट कोहली से। एक और टाइट ओवर, कमाल का स्पेल वॉशिंगटन सुंदर का। पिछले पूरे सीजन से एक बार पूरा स्पेल डाला था, आज एक बेहतरीन स्पेल इनकी 63 पे 3-10 के बाद। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाएंगे। Dream 11. Make your team now. He's got on the wrong foot here. करोड़ों लोग भी तो मंगवा रहे हैं। He's calling for a second run. स्विगी पे करोड़ों लोग ऑर्डर कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद। स्विगी, व्हाट अ स्कोर। सोशल डिस्टेंसिंग में और ज्यादा डिस्टेंसिंग क्यों? स्मेल रेडी विद एक्स टिकट, अब सिर्फ 35 रुपीज में। नवदीप सैनी को वापस अटैक में। ओह ईशान किशन इतनी खूबसूरती से इस शॉट को एग्जीक्यूट किया इस यंगस्टर ने। बढ़िया शॉट यहाँ पर। ईशान किशन पहली मैच खेल रहे हैं इस साल की, इस IPL की। बढ़िया संपर्क जरूर है मुंबई इंडियन को बड़ी ओवर की। मुझे लगता है इस ओवर में आशीष रन बिल्कुल आने चाहिए, नहीं तो बहुत ही रन रेट बढ़ सकता है। दो टाइट ओवर्स डाले स्पिनर्स ने, एक युजवेंद्र चहल ने, एक वॉशिंगटन सुंदर ने। प्रेशर रिलीज करने को देख रहे हैं, लेकिन ये गो टू गेंदबाज RCB के शायद सोच बुरी नहीं, नवदीप सैनी को लेके आए हैं अटैक में। सुनते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे से। Well, we've got the chance now. Mo and Ali, things very well, very much under control for you guys. Yeah, definitely. I mean, we obviously batted really well tonight, and I feel like we've had a great start with the ball, but we've been in this position before in over the years, so it's still not over. They've got some very dangerous players, but hopefully we can do it tonight. Obviously frustrating you're not out there in the 11, but you've made some changes, so there is a different dynamic tonight. Yeah, for sure. I mean, obviously two leggies and Washi opening the bowling, just a bit of a change-up, I guess. Looking at the wicket and with the total that we posted and who we're playing against, so it's always frustrating when you're not playing, but as long as the team wins, it doesn't really matter. Well, that is the long side. We've seen a couple of batsmen perish, but that one has gone all the way. So still crucial, Moeen, for the quick bowlers or any bowler to get the length right. Yeah, for sure. As you saw, if you get good length on here, you've always got a great chance of either restricting the score or taking wickets, and hopefully we can do that. I mean, they're bound to have a couple of partnerships where they score quickly, but as long as you're taking wickets, you win games. Can I ask you, did you watch last night? I did, and that's what I mean. It's never really over until it's over. I mean, games like that, we're showing T20 cricket, it's never done until you 100% know that it's done. Exactly right. That's the point I'm making, that I'm sure all of you, while you're under control and you probably feel that everything's going your way, can change very quickly. Probably 2 overs in T20 cricket. Sure, I mean, they've got some very dangerous players batting right now and to come, so guys who we know can win games from any sort of situation, so we've just got to chip away and hopefully get a few more dot balls. Pick up wickets is key, and I think it's the only way we're going to win tonight if we keep picking all those wickets. And how are you staying upbeat, mate? The fact that you're not playing yet, I'm sure you'll get your opportunity. Yeah, I mean, it's a long tournament. I've got
many times before, so it doesn't really, you try and train the best you can and be prepared, and when the time comes, you just be ready. What has Virat said from last game to this game? Just that he wants a bit more intensity in every facet that we do, and just keep positive. I mean, we've lost one, we've won one, which we haven't really done over the years. We've always started badly, so we've started decently, and we've still got the best cricket to come with our players. So just to try and we try to forget what the past has served up before, and we're just trying to win every game as it comes. Yeah, well, he's still animated out there in the field, and I suppose when you talk about the best coming, Virat Kohli's got his best to come, and I'm sure it's only around the corner. For sure, and if we're still scoring 200 without him scoring runs, it just shows that we're in a good position. Obviously, AB is unbelievable still, and there are some top batters to perform this tournament. Thanks for your time, Moeen. Good luck, mate. Thank you. पॉजिटिव एटीट्यूड मोइन अली का, जानते हैं इनका रोल काफी बड़ा होगा इस टीम में जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे जाएगी। और उन्होंने बात की, विराट कोहली उनके बल्ले से रन नहीं, लेकिन टीम अगर 200 बना रही है, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। कॉन्ट्रीब्यूशन हर जगह से, और इसी की आवश्यकता रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। जैसे इस ओवर की आवश्यकता थी मुंबई इंडियंस को। बड़ा ओवर 77 पे 3। Do you know what's in a pack of Kellogg's granola? This has the energy to avoid the lift, and baked multigrain and yummy almonds and cranberries. Kellogg's granola every morning. It's more than just breakfast. अच्छा, स्विगी शुरू? सर, करोड़ों लोगों ने कर दिया है शुरू। स्विगी पे करोड़ों लोग ऑर्डर कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद। स्विगी, व्हाट इज फॉर? गुड बाय। खुशबू ऐसी चलती जाए कि गुड बाय ना हो पाए। Fragrances that stay for long from Engage. Zampa, दो लेग स्पिनर्स आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उतारे हैं। ईशान किशन, नवदीप सैनी अटैक में ईशान ने छोड़ा गेंद पे अपना निशान। ये और भी दूर, और भी बड़ा। ईशान किशन, मैन ऑन मिशन। कमाल की बल्लेबाजी, और दूसरा स्ट्रोक तो गॉड शॉट, काफी ऊंचा, काफी लंबा, गेंद बनी तारा। कैच की पुकार की तो है, और कैच मिला भी है। पवन नेगी, सेफ एज अ हाउस। विराट कोहली, ज़ैम्पा जानते हैं इस विकेट की, इस मोमेंट की अहमियत। बहुत बड़ा विकेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। हार्दिक पांड्या हुए आउट। आगे थी गेंद, उसको अंजाम नहीं दे पाए, और आज गेंद पीछे पड़ी 12th मैन पवन नेगी के। तीसरा उनका कैच। कमाल के हैं ये फील्डर। सारे के सारे कैचेज उतने मुश्किल नहीं थे, पर बहुत तगड़े तगड़े कैचेज उन्होंने पकड़े रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। बढ़िया ब्रेक थ्रू। हार्दिक पांड्या 15 के स्कोर पे वापस 78 पे 4 अब मुंबई इंडियंस। बचपन में सुना था, दोज हू ड्रीम बिग डू बिग। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जब लोग इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं तो कुछ ही क्यों अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मंजिलें सपने देखने से नहीं, कुछ नया सीखने से हासिल होती है, क्योंकि जिंदगी का उसूल है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। लॉग ऑन टू ग्रेट लर्निंग एंड चूज एन ऑनलाइन प्रोग्राम फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज। पावर अहेड विद ग्रेट लर्निंग। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? वो प्याज। प्याज या प्याज? घर पे किंगफिशर। वाह, क्या प्लान है।
ईशान किशन का साथ देने, लेकिन हार्दिक पांड्या की विकेट इंपॉर्टेंट समय पे एडम जैम्पा ने दिलाया है ये ब्रेक थ्रू अपनी टीम को। विकेट की पुकार थी यहाँ पर और मिस टाइम हुआ। बड़ा शॉट मारने की कोशिश यहाँ पर हार्दिक पांड्या का। बाउंड्री भी बड़ी है और बढ़िया कैच, 3 कैचेस पकड़े आज इन्होंने। तो इतने आसान नहीं होते, इतने ऊपर कैचेस जाते हैं और बड़े प्लेयर के प्रेशर होता है। और विराट कोहली बहुत खुश और उनके स्पिनर ने आज कमाल करके दिखाया। खेल भाई, किसी ने सवाल पूछा भी था थोड़ी देर पहले कि स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा सिर्फ अगर परिस्थितियां विकेट को भूल जाएं, सिर्फ इन डायमेंशंस की अगर बात करें। स्लिप पोलार्ड के लिए उम्मीद है बरकरार मुंबई इंडियंस की जब तक कैरन पोलार्ड है, लेकिन क्या जो डायमेंशंस हैं उसके हिसाब से आज जो रणनीति आरसीबी ने अपनाई है, एक नहीं 2 प्रमुख स्पिनर्स खिलाएं, साथ में वॉशिंगटन सुंदर, इन बाउंड्रीज का, स्क्वायर बाउंड्रीज का यूज करें। ये स्ट्रैटेजी दुबई में, अबू धाबी में बिल्कुल, जो इतनी अच्छी गेंदबाजी करो आप और उसके बाद आप जो बॉलर्स होते हैं उनको फायदा होता है 200 रन का जो लक्ष्य है, और आप उस पर एक आपकी कला दिखा सकते हो। और तीनों बॉलर आप देखो, जैसे सुंदर वॉशिंगटन ने जो मिश्रण किया, उसके बाद चहल ने, और उसके बाद जाम्पा, तीनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तीन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। और आज मैं मान गया वॉशिंगटन सुंदर को, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। एक तगड़ा एफर्ट चाहिए था शॉट को रोकने के लिए, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी थी ईशान किशन ने। आज फील्ड में भी हाई स्टैंडर्ड सेट किए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। गुगली गेंद, पूरी ताकत लगाई ईशान किशन ने और उससे ज्यादा ताकत लगाई देवदत्त पडिक्कल ने। कमाल का ये सेव, बूंद बूंद से ही गड़ा भरता है। और खास तौर पे जब आप डिफेंड कर रहे हो तो आपको बतौर फील्डर, बतौर क्षेत्र रक्षक अपने गेंदबाज के पीछे रहना है। अगर इस तरीके की गेंदें आप रोकेंगे तो पूरी टीम का मनोबल ऊपर बढ़ता है। ये मैदान तो ये वही है जहां बात होती है क्या लाइट्स की वजह से कैचेस लेना मुश्किल है। और नेगी ने आज कोई गलती नहीं की और उसी के चलते कंट्रोल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच में आ गए। लेकिन पोलार्ड बीच में, उम्मीद है मुंबई की बरकरार। 83 पे 4। Seriously? Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. Download Cred, baby. Download Cred. हुसूरू उड़ाना, कैरन पोलार्ड एक तरफ है, साथ में ईशान किशन। 34 गेंदे 44 रन, लेकिन ये खिलाड़ी 47 गेंदों में 70 रन बनाए थे। 2017 का ये आईपीएल था और बहुत पीछे ना भी जाएं, ये 2017 की बात ना भी करें सनी भाई, तो अभी ये सीपीएल में 28 बॉल में 70 बनाकर आ गए हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसने अपनी टीम ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स को विजयी बनाया, अनडिफीटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऐसा बहुत कम होता है, इन्होंने कर दिखाया। लेकिन आज बुर्ज खलीफा चढ़ने जितना काम है सर, बहुत बड़ा टोटल अभी भी बचा है। बिल्कुल, और अभी रिक्वायर्ड रेट 15 के ऊपर चली गई है। और इसके बाद में ऐसा नहीं लग रहा कि मुंबई इंडियंस के पास कोई ऐसा बल्लेबाज हो। कृणाल है, कृणाल पांड्या है।
और अगर 117 रन करने हैं आपको और 47 गेंदें हैं तो फिर मुश्किल लग रहा है। काम तो मुश्किल है, कुछ तो कहेंगे असंभव है, लेकिन अगर आप इस खेमे में हैं तो कहेंगे कि वो असंभव शब्द में संभव छुपा है। ढूंढिए। ये शायद दोबारा डालनी पड़े, बहुत ऊपर गई गेंद, ओवर की बाउंसर भी हो गई, वाइड गेंद भी हो गई। थोड़ा सा यहाँ गैम्बल कर रहे हैं विराट की, ये आपके डेथ स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अगर पोलार्ड को आउट कर लिया तो मैच यहीं पकड़ लेंगे। ड्रीम 11 फैंटेसी प्लेयर्स, ये खिलाड़ी अगर आपकी टीम में आज थे तो फिर आज आप बहुत खुश हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन अच्छी है मिसूरी उड़ाना की। ये वाली गेंद सीधा फील्डर के पास। मैच का हाल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। एबी डिविलियर्स, देवदत्त पाडिक्कल, एरन फिंच, शिवम दुबे, सबने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। स्लोअर वन एक बार फिर। ये देखो, फिर वही बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। एबी डिविलियर्स इस टूर्नामेंट की बात करें, वो पहले सनराइजर्स हैदराबाद की इन्होंने खूब पिटाई की थी। यहाँ मुंबई इंडियंस, ये अलग प्लेयर है सर, मैं पहले कह रहा हूँ इनका आप डीएनए टेस्ट करवाइए। ये खेल जो है ये इंसानों के लिए ये सुपरमैन है। फिर वही बैक ऑफ द हैंड स्लो वन। बहुत बढ़िया ओवर अभी तक। सिर्फ 2 रन आए हैं, 3 रन आए हैं पल्ले से, 2 वाइड बॉल। ये देखे फोरन ने जो छक्का बचाया, कैच भी हो सकता था क्योंकि वो बाउंड्री के ऊपर जाने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने वापस बॉल फेंकी। सर किंग्स के मैच में हो रहा है, द शॉर्ट रन दैट वाजंट, द कैच दैट वाजंट, लेकिन ये जो कैच है वो सुपरमैन की हम बात कर रहे थे कि एबी डिविलियर्स वो सुपरमैन है, निकोलस पूरन ने कहा आई एम ऑल्सो हियर। जबरदस्त ओवर, मात्र 6 रन आए हैं 13वें ओवर से। अब 42 गेंदों में मुंबई को चाहिए 113 रन। Saurabh, the game's about to start. कौन होगा इन और कौन होगा आउट? Dada, nothing much to think about. My 11 in, your 11 out. खुद को चैंप समझते हो? प्ले विद चैंपियंस। आपकी टीम जीतेगी या मेरी? देखते हैं माई 11 सर्किल। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, हर दिन कैश डबल करो और हर हफ्ते जीतो 1 करोड़। mivsrcb.com। डाउनलोड माई 11 सर्किल ऐप ना। इमोशन एक्सप्लोजन कर फटाफट, सिंपल सी बात बॉय, कर टकाटक पन टकाटक। डाउनलोड MX टकाटक। ये भी बहुत चतुर बॉलर हैं, वो पैर की बिल्कुल
की तरफ गेंद ताकि आपके आर्क में ना आए। ये है कल का मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स 2 मैच 2 जीत, सनराइज हैदराबाद 2 मैच 2 हार। अब यहाँ जीत की गुहार लगानी पड़ेगी, वरना यहाँ सूर्य उदय होता दिख नहीं रहा। हैदराबाद का बहुत परेशानियां हैं और दिल्ली कैपिटल्स फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ये ओवर बड़ा ओवर है ईशान किशन के लिए, चाहे वो अर्धशतक के करीब है सनी भाई, लेकिन अब चौका छक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है जैम्पा के खाते में दूसरी विकेट भी आ जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले जो ओवर थी वो बड़ी अच्छी ओवर थी। कोहली फेंका है और दूर भी फेंका है। ये खासियत है बायरन पोलार्ड को पैरों की तरफ, ईशान किशन को थोड़ी वाइड यॉर्कर की तरफ। एडम जैम्पा ये हफ्ता, पिछला हफ्ता तो ब्लॉकबस्टर रहा ही है। कल श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत सब दिखेंगे। फिर रॉयल्स और नाइट राइडर्स का मुकाबला। अनडिफीटेड राजस्थान रॉयल्स सामने नाइट्स। किंग्स 11 और मुंबई और ये होगी छक्कों की बारिश। और फिर सुपर किंग्स एंड सनराइजर्स मेरा वो सबसे पसंदीदा मुकाबला होगा, क्योंकि धोनी की टीम को करनी है वापसी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। है ना इनकी, वैसे चाहिए बेशक। अरे वाइड हुई भी नहीं। बायरन पोलार्ड के 2 गेंदें दोनों पैरों के बिल्कुल बाहर। तीसरी ओवर चल रही है, सिर्फ 19 रन दिए उन्होंने जैम्पा ने। वो बदलाव किए आज रॉयल चैलेंजर्स ने, बड़े अच्छे बदलाव किए, बड़े सोच समझ कर बदलाव किए। जानते थे कि उमेश यादव और डेल स्टेन की जो गति है वो बल्लेबाजों के लिए अच्छी है। 2 अक्टूबर को चेन्नई, 3 अक्टूबर को 2 मुकाबले। पहला डबल हेडर जो देखा जाएगा उसमें आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, एक रॉयल एनकाउंटर कैपिटल्स और नाइट राइडर्स। ये भी अच्छा मुकाबला। आंद्रे रसल वर्सेस कगिसो रबाडा। मुंबई एंड सनराइजर्स, वार्नर वर्सेस क्विंटन डीकॉक। रोहित शर्मा के सामने जॉनी बेस्टो। किंग्स 11 वर्सेस सुपर किंग्स। राजाओं की बैटल में मजा आएगा, क्योंकि धोनी के सामने रहेंगे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल के सामने होंगे अंपति रायडू फिट। एबी डिविलियर्स द कीपर संतुलन प्रदान करते हैं। ये गेंद गई है बहुत ऊपर। वाह भाई वाह, इस 6 के साथ मुंबई की शान है। इस मैच में छोड़ा अपना निशान है और नाम इसका ईशान है। वेल डन। 6 के साथ 50 के पार। 39 गेंदे 52 रन। मुंबई इंडियंस 98 पर 4। शानदार प्लेयर। और ये बता रहा है कि 2.5 मिनट का होने वाला है। ये टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। मजा आएगा दूसरी तरफ। मैं कर लेता हूँ, आपको तो ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। Dream 11. Make your team now. Lock into the new range of luxury fragrances from Engage Lamont, crafted for love. अरे हिसाब सिंपल हो गया। Yes! खाता बुक क्यूआर से ये सब आपसे पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। Oh, we need ACC. A cute crocodile. Adaptive cruise control. NG Gloucester. Bookings now open. मेरी टीम खेल रही है और आपकी माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ।
mama, yeah. Oh mama. सोशल डिस्टेंसिंग में और ज्यादा डिस्टेंसिंग क्यों? टिकट. स्मेल रेडी विद एक्स टिकट अब सिर्फ 35 रुपीज में। ग्लव, मास्क, सैनिटाइजर और हेल्थ इंश्योरेंस अब नहीं खरीदोगे तो कब? मैक्स बुपा दे रहा है 30 लाख तक का कवरेज सिर्फ 620 रुपीज पर मंथ में। विजिट करो maxbupa.com। What is this? Let's do a simple voiceover like download credit. Download credit. Get rewards for paying your credit card bills. Credit. बाउंड्रीज बदल गई, बॉल बदल गई, बैट बदल गए, शोर बदल गया, स्कोर बदल गया, अपना क्रिकेट बदल गया। अब उसे फॉलो करने का तरीका बदल देते हैं। cricket.com, cricket like never before. Power is, you only understand it when you feel it, you know? Volkswagen. Bro, स्टाइल दिखना चाहिए, पिंपल नहीं। Himalaya men pimples here need face wash. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ हुआ समाप्त और अब तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है। आप देखो ना अब सिर्फ छक्के चौकों में डील करना होगा मुंबई इंडियंस के धुरंधरों को। सनराइजर्स हैदराबाद पृथ्वी शॉप मिलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के सुपर ओवर स्पेशलिस्ट कगिसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, जॉनी बेस्टो, राशिद गरामाती खान, पांडे जी, खलील, वो कप्तान। अबू धाबी में सनराइजर्स का दूसरा मैच, दिल्ली का पहला। सामना T20 में 9 पारियों में 5 बार आउट किया है पोलार्ड को। स्ट्राइक रेट 130 का जरूर है पर 5 बार आउट करना। और आज कप्तानी अच्छी लगी सनी भाई मुझे कोहली की। अभी देखिए 15वां ओवर और 17वां ओवर करवाएंगे यूजी चहल से। जैम्पा का 1 ओवर बचा है, सैनी के 2 ओवर बचे हैं, इसुरु उडाना का 1 ओवर बचा के रखा है। आज जो गेंदबाजों को घुमाया है ना, नियर परफेक्ट, बहुत अच्छी तरह से। पर उनकी अभी जो बॉलिंग अटैक है वो ये बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक लग रही है। देखिए डेल स्टेन एक बड़े महान टेस्ट खिलाड़ी है, टेस्ट बॉलर है, पर उनका अगर आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का परफॉर्मेंस देखें तो उतना अच्छा नहीं है। और T20 में तो मार पड़नी है। उमेश यादव की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी टेस्ट क्रिकेट में होती है या 50 ओवर की क्रिकेट में होती है। ये शायद आउट निकल गई उनके ऊपर से गेंद। और पीछे एक और अच्छा फील्डिंग एफर्ट आज दिखा है कंसिस्टेंटली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। अच्छा क्षेत्र रक्षण, शुरू उड़ाना है जी। आज हमने पवन नेगी से कुछ जबरदस्त करतब देखे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास, यहाँ पे भी रोक लिया है चौका। वेल डन, बहुत अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छा एफर्ट। और हर एक कप्तान ये चाहता है कि 100% एफर्ट होनी चाहिए फील्ड पर। दिस इज इनक्रेडिबल, शानदार छक्का ईशान के बल्ले से। लेग स्टंप के बाहर जरूर थी पर उसको फिर भी पिटाना था। तो देखिए उन्होंने आगे का पैर निकाल के हटा के देखिए कितनी अच्छी शॉट मारी है। अब यही जरूरत है मुंबई इंडियंस को। पिछली ओवर बड़ी अच्छी ओवर थी उड़ाना की, तो
इस ओवर में मेकअप करना है, इस ओवर में इनको 15 या 20 रन करने, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो करीबन 18 की है। ऑस्टन के शायद बॉल बाहर फेंक दें, ये बहुत काम ऐसा करते हैं। 50 रन के बाद 218 का स्ट्राइक रेट हो जाता है। 2018 से हम ईशान किशन को देखे तो हैरान था सनी भाई मैं कि इनको शुरू में नहीं खिलाया, सौरभ तिवारी को खिलाया। शायद वो नेट में फॉर्म बेहतर रहा होगा सौरभ का। इंटेंजिबल्स जो हमें और आपको बाहर से शायद नहीं दिखते, वो टीम बता सकती है कि क्यों किसको एक दूसरे से आप पहले पिक कर रहे हैं। चाहल वर्सेस पोल, ये तो गेंद ऊपर ही गई थी और नीचे थे और ये इनकी खासियत बिल्कुल, या तो दूर फेंकते हैं ऑस्टन के या फिर वो पैरों की तरफ, ये इस तरह पैरों की तरफ। ये तो वानखेड़े स्टेडियम है सनी भाई, आईपीएल हो रही है लेकिन मैंने ये मैदानों को मिस कर रहा हूँ। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, अलग माहौल था। ये सारे जो स्टेडियम अपने दिल के करीब है ना, भारतीय स्टेडियम्स। और एक बार आउट हो सकता है। क्या अटेम्प्ट किया है, ब्रिलियंट अटेम्प्ट। 10 में से 10 नंबर उस अटेम्प्ट के। 112 पर 4-15 के बाद मुंबई इंडियंस। क्या कर रहा है? ओपनिंग करने जा रहा हूँ। हैं? ओपनर हूँ ना। ये बैट किसका है? बैट तो तेरा है। तो जिसका बैट उसकी बैटिंग। चल जाएगा, पैंटम मत बन, चल फील्डिंग कर। Dream 11. More the big hits, the larger your wins. That's why size matters in your mutual fund. Invest in Sundaram Blue Chip Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Simply superb. ईशान किशन बल्ले का चेहरा खोला, यॉर्कर गेंद का प्रयास किया था नवदीप सैनी ने। इसके पहले जो ओवर उन्होंने किशन को की थी, ईशान किशन को 2 बड़े छक्के मारे थे, तो इसलिए यॉर्कर और दूर बल्ले से दूर ये गेंद फेंकी थी उन्होंने। और अब किशन का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अच्छी शुरुआत, फिर भी बहुत सारे रन बनाना। यही तो कह रहे थे हम कल कि बहुत सारे रन बनाने हैं, और फिर बन गया राहुल तेवतिया। कि यहाँ पर कल की बाउंड्री की डिस्टेंस और आज की बाउंड्री के डिस्टेंस में बहुत फर्क है। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल पूरी बात से मैं आपके सहमत हूं, लेकिन अब वो हो गया कि वो जो राहुल तेवतिया ने किया, मतलब हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं राहुल तेवतिया कहते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने तो अपने वो ट्विटर हैंडल पे भी लिख दिया, होपिंग फॉर 2020 टू डू अ राहुल तेवतिया, कि 2020 जो ऐसा साल है जिसमें बड़ी परेशानियां रही हैं, सारे विश्व भर में दुख रहा है। Hopefully we make a comeback and make us all happy. To all the Rahul Tewatias out there कि जो हार नहीं माननी, never give up, never give in, never give up.
ईशान किशन एक और युवा खिलाड़ी, फाइन लेग, स्क्वायर लेग सर्कल में वही मारने का किया प्रयास। एक ओवर में 5 छक्के। इस आईपीएल में 3 ऐसे ओवर हो चुके हैं जिसमें 30-30 रन गए हैं। एक डाला जॉर्डन ने, एक डाला एंगीडी ने और एक डाला शेल्डन कॉटरेल ने। और क्या हल्ला बोला राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया ने। जी हाँ, जबरदस्त हिटिंग, बहुत मजा आ गया देखने के लिए। क्योंकि पहले जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि वो छक्के मार सकते, चौके मार सकते, ऐसा नहीं लगा। और फिर एक ओवर में 5 छक्के। यही तो क्रिकेट की गेम है, कुछ नहीं कह सकते। क्या दूसरे रन के लिए आप आएंगे वापस? हाँ, नीचे से अंदाज में लड़े हैं ईशान किशन, पूरे नंबर हैं वो लड़ाई के। राहुल तेवतिया ये देखिए 17वें ओवर तक 23 गेंदों में 17 रन और फिर 8 में 36, 8 गेंदे 36 रन। ये है इस खेल का, कहते हैं पराक्रम, कि इट्स अ ग्रेट लेवलर सर। अभी आप जीरो हैं, अभी सब आपकी निंदा कर रहे हैं और जीरो से हीरो तक का सफर मात्र 8 गेंदे, सिर्फ 8 गेंदे और आत्मविश्वास। संजू सैमसन के साथ जब उनकी साझेदारी थी तो संजू सैमसन ने 2-3 बार सिंगल लेना मना किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वही बल्लेबाजी के एंड पर रहे, स्ट्राइकर्स एंड पर। और फिर वो कॉटरेल की ओवर ने सारा गेम पलट दिया। ऐसा नहीं होता T20 क्रिकेट में, अनलेस कि आप नंबर 10-11 की किसी बल्लेबाज के साथ खेल रहे हो। तो प्रमोट किया गया था उनको। कैरन पोलार्ड का स्ट्राइक रेट आखिरी 5 ओवर में 188। यहाँ पे 188 से कम चलेगा नहीं। लेकिन फर्श से अर्श तक का सफर, व्हाट अ स्टोरी, फेरी टेल। ये खेल बहुत महान है। ये ऐसे कमबैक्स में विश्वास जताता है आपको कि जब सब कुछ लगे कि खत्म हो चुका है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, देयर विल बी ऑलवेज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मजा आ गया सर। इसीलिए अब क्रिकेटिंग विजडम कुछ भी कहती हो, आदमी के जहन में एक बात जरूर रहती है कि 25 गेंदों में 81 भी शायद बन सकते हैं, शायद यहाँ कुछ अद्भुत काम हो सकता है। Just don't give up. गेंदे 81 रन, कैरन पोलार्ड, आजमी फौलाद, इनके लिए मैदान कोई छूटता है बड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल, और इनकी आखिरी 4 ओवरों की स्ट्राइक रेट 188 है। यहाँ पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और स्ट्राइक होगी पोलार्ड के पास। 16वें ओवर से आए 10 रन, अब 24 गेंदों में चाहिए 80। You only understand it when you feel it, you know? सुरक्षा हर पिच पर, ताकत लंबी पारी खेलने की, परफेक्ट फिट, क्वालिटी टेस्ट। मैच से पहले ये सारे चेक्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक वैसे जैसे घर की छत चूज करते समय। तो बस ले आइए GSW कलर ऑन प्लस किसी, जो दे आपके घर को मजबूती और सुरक्षा। GSW कलर ऑन प्लस, सुंदर छत सालों साल।
20 रन प्रति ओवर चाहिए। पहली गेंद, ये इनको एरिया पसंद है, बॉलर के बगल में मारना इनको पसंद है। छक्के भी जब मारते हैं स्पिनर को तो सीधा ही एरिया टारगेट करते हैं। जिस तरह से ज़ाब्ता गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा गेंद को घुमाते नहीं है, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, तो हाथ खोलने का मौका नहीं दे सकते। चहल ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हैं और हवा देते हैं, गति नहीं देते। गति आपको बल्ले से बढ़ानी पड़ती है। पैर पकड़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ज़ब्ता की गेंदबाजी के हिसाब से क्या आएंगे पैर पकड़ने। लेग स्टंप पे ऊंची तो बहुत गई है और छटक गई। अब तक अच्छा दिन जा रहा था पवन नेगी का, ये वाली गेंद छटक गई और बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी किस्म के हिट्स चाहिए मुंबई को मुकाबले में वापस आने के लिए। पैर पे नहीं आए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की, हल्की सी थोड़ी धीमी गेंद डाली, मौका भी बनाया, लेकिन फील्डर पवन नेगी जो अच्छे फील्डर है, अक्सर अच्छे कैच पकड़ते हुए उन्हें हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे गलती कर बैठे। कैच भी छोड़ा और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भी पहुंचाया। 6 रन मिले कारण पोलार्ड को। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का। 10 रन आए 2 गेंदों से। क्या इस ओवर में भी 30 रन आ सकते हैं? कल रात वाली क्या कहानी होगी? पीट हो सकती है। किरण पोलार्ड है स्ट्राइक पे। यह खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। अद्भुत, इम्पॉसिबल शब्द इसके लिए नहीं है। सीपीएल याद आता है सबको, क्या जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक रेट रहता था 200 के ऊपर। जबरदस्त फॉर्म में वो फॉर्म नजर आ रहा है। ये 3 गेंदों में दिखा दिया कि मैं पोलार्ड हूं, पोलार्ड नहीं। कमाल का ये शॉट, 97 मीटर का, ये बहुत ही गगनचुंबी छक्का। एरन ज़ैम्पा दबाव में गेंद सुखा रहे हैं, कहां डालेंगे? यॉर्कर का करेंगे प्रयास, दूर रखेंगे, डालेंगे गुगली, बिल्कुल ऊपर। 2 की मांग है, स्ट्राइक पे रखना चाहते हैं अपने आप को पोलार्ड। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रणनीति, ज्यादा बॉलें खेलना चाहते हैं पोलार्ड। ये वो मौका पवन नेगी के लिए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। थोड़ा गीला गेंद हाथ से छटक गया। आसान नहीं बनते इस प्रकार के कैचेस भी। आज कमाल के 2-3 कैच आए हैं इनके पास, पकड़े भी हैं, पर यही इस खेल की विडंबना, कभी ऊपर कभी नीचे, और इस बार फिर ऊपर। लगातार बार बार कड़ा करार किरण पोलार्ड का एडम ज़ैम्पा के ऊपर। इस ओवर से पहले बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी ज़ैम्पा ने, बहुत अच्छी तरीके से एक बढ़िया तेज गति के जो रन बनाते बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को आउट किया अच्छी लेंथ से। लेकिन ये ओवर में काफी गलती कर चुके हैं। लाइन की बात करें, लेंथ की बात करें, और उस पर खामियाजा भी भुगता। और सामने कौन? पोलार्ड। ये पोलार्ड खराब गेंदों को तो क्या अच्छी गेंदों को भी बहुत बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर है। मुंबई इंडियंस के बहुत वक्त से मैच विनर रह चुके हैं। देखना ये होगा अगला ओवर तेज गेंदबाज से कराते हैं या देते हैं युजवेंद्र चहल को। और उससे पहले आखिरी गेंद, हवा में गेंद, अच्छा कैच पकड़ना होगा युजवेंद्र चहल। मौका एक बार फिर छूटा। कैचेस छूटते हैं तो मौके दूसरी टीम के पास रहते हैं। 149 पे 4। भेज दिया उसको हिसाब। भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। Make no mistake about it, this is a pressure cooker situation. But incredible wrist work by Saywag there. A lesson for all youngsters watching. Vim Jao, what a player. We're here. YDI. Oh, what's YDI? You deserve it. MG Gloucester. Bookings now open.
ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी दूर, ये कितना अच्छा संपर्क है, ये तो फ्लैट सिक्स है। फंसाने की कोशिश की थी वहां पे युजवेंद्र चहल ने, पहला ही गेंद जड़ दिया छक्का। शुरुआत छक्के के साथ, क्या एक और बड़ा ओवर देखेंगे? क्या कमाल का शॉट, अपने आप को इस बार रोक दिया और ऑफ साइड पे ये लगाया शॉट। सामने की तरफ सबसे बड़ी ताकत रहती है मिड ऑफ से लेके मिड ऑफ, मिड विकेट इनकी ताकत, लेकिन यहाँ पे मिड ऑफ और कवर के बीच में गए और गए बहुत दूर। कमाल का ये शॉट, कमाल का ये छक्का। लास्ट के 3 ओवर में आरसीबी ने बनाए थे 47 रन, यहाँ पे आपको 47 चाहिए 17 गेंदों में। ये मिस टाइम है, 2 की मांग है और 2 मिल जाएंगे। स्ट्राइक रखेंगे किरण पोलार्ड, 3 स्पिनर खिलाए, बड़ा मैदान है, छक्के लगेंगे लेकिन विकेट भी मिलेगी। देखिए एक विकेट मिलते ही पूरा खेल बदल जाएगा, तो आप विकेट को ढूंढते रहिए। फेयर प्ले, पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड। मुंबई इंडियन अभी तक सबसे ऊपर, सनराइजर सबसे नीचे, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये ऊपर नीचे है, तो आप अंक तालिका में भी देखेंगे और फेयर प्ले में भी देखेंगे। इरफान, आप चाहते थे कि डेथ ओवर्स फिर की गेंदबाज करें, आपकी तमन्ना पूरी हो गई है आज। दो की मांग और बिल्कुल आशु भाई, और डेथ ओवर स्पिन गेंदबाजी मैं चहल से देखना चाहता था, क्योंकि ये टीम में, आरसीबी की टीम में अगर किसी चीज की कमी नजर आती है, बहुत सालों से वो डेथ गेंदबाजी की, मॉरिस अगर आएंगे तो उससे वो थोड़ा और ज्यादा बेहतर होगा। सैनी ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के साइंस दिखाए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक जो 2 ओवर रहती है वो किसी से करवाने होंगे। क्यों ना अपने बेस्ट गेंदबाज जो विकेट टेकर है उससे करवाए। मार तो खाएंगे अगर डेथ में गेंदबाजी करेंगे, लेकिन ये ऐसे गेंदबाजी जो आपको मैच भी जिताएंगे, विकेट भी चटकाएंगे। देखिए 1-2 ओवर तो 16, 17 ओवर, 18 ओवर भी, एक ओवर तो चहल को कई बार करते पाया गया और सक्सेसफुल भी रहे हैं, सफल भी रहे हैं। और जहां तक आरसीबी की डेथ गेंदबाजी की बात है, देखिए कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ों की चर्चा ज़्यादा हो रही होती है, पर भूलिए ना किसी गेंदबाज को इतना सेटल भी नहीं होने दिया है, चाहे विदेशी गेंदबाज ही क्यों ना हो, कि लगातार उन्हीं खिलाड़ियों के साथ गए नहीं है 3-3 साल। बिग हिट का प्रयास, कितना अच्छा संपर्क है, जड़ दिया छक्का। यह मुकाबला जो है अलग रंग ले रहा है, रोमांच बना हुआ है। ये पोलार्ड और किशन जबरदस्त तरीके से गेम बनाते हुए 19 गेंदों में 47 पे खेलते हुए, और इस छक्के के साथ किशन पहुंचे 76 पे। बल्ले पे गेंद इतनी अच्छी आई नहीं थी, एकदम निचले हिस्से पे लगी, फिर भी वो फॉलो थ्रू कमाल का, जिससे ताकत मिली और छक्का भी। विराट खुश नहीं वहां पे, ऑफ साइड पे खिलाए कहते। मैं बिल्कुल सहमत जो विराट कोहली अभी कह रहे हैं कि कट मारने दें या गुगली डालें दूर वाली कवर्स के ऊपर से मारने दें, ये बेहतर, नतीजा भी बेहतर। देखिए किरण पोलार्ड के पास वो पावर हिटिंग है, पर ईशान किशन बड़े स्ट्रोक तभी लगा सकते हैं जब गेंद इनके पाले में हो, इनके पास हो। गीला गेंद है ना, चहल उस तरीके के गेंदबाज हैं कि बिल्कुल ऊपर डालें, जो आप चर्चा कर रहे थे कि पैर पकड़ के सिंगल दे दें। तो आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत है या कट खिलाएं या ऑस्टन के बाहर दूर डालें। पोलार्ड ने बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था, पर ईशान किशन को खिलाफ थोड़ी चूक कर गए चहल, और यही इस खेल का मजा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े गेंदबाज भी जब आप डिफेंड कर रहे हो, रन बनाने को रोक रहे हो दूसरी टीम को, तो दबाव में आप आ जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ईशान किशन की कमजोरी क्या है, कहाँ पे आप कम मार खाएंगे। देखिए अगर सेट बल्लेबाज है तो वो तो सब जगह खेलने की कोशिश करता है। ईशान किशन को आप कवर पॉइंट वहां पे खेल लगाने की कोशिश करिए, वहां पे मार पड़ती है ठीक है, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग जोन जो लेग साइड है वहां से दूर रखिए। बॉलर के सर के ऊपर और छक्के के साथ और शतक भी पूरा किया। आखिरी 12 गेंदों में अब 31 रन चाहिए, 171 पे 4। पता है केलॉग्स ग्रेनोला में क्या? इसमें लिफ्ट ना लेने की नहीं, और अब एक मल्टीग्रेन और मस्त आमंड्स एंड क्रैनबेरीज। हर सुबह केलॉग्स ग्रेनोला, ब्रेकफास्ट से बढ़कर। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचिए सर। टीवीएस रेडियन में PTFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900।
नवदीप सैनी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 19वां ओवर, यहाँ से 31 रन चाहिए। ये अगर ज़्यादा बड़ा ओवर नहीं होता तो उड़ाना के ऊपर काफ़ी कम दबाव रहेगा। विराट स्कोरिंग एरिया जो है देखिए आखिरी 2 ओवरों में सामने और डीप मिड विकेट का एरिया है, वहाँ पसंद करते हैं शॉर्ट पिच गेंद, या अगर कोई तेज गेंदबाज यॉर्कर का प्रयास करता है हाफ वॉली में तब्दील हो जाती है तो सामने बहुत बढ़िया तरीके से मारते हैं। इसीलिए पोलार्ड के सामने वाइड यॉर्कर एक सबसे बेहतरीन आपके पास विकल्प। एक्स्ट्रा बॉल, एक्स्ट्रा रन, हर रन का फर्क रहेगा। रन नहीं दे सकते इस तरह। देखिए वाइड तो हुई, धीमी गेंद डालने का प्रयास था। और अगर आप बात करें पिछले 2 ओवर में बने रन 49। ओवर नंबर 17 और 18 ये नीली लाइन काफी दूर भागी और मैच को रोमांचक बनाया। किरण पोलार्ड 53 रन 20 गेंदें। शुरुआत में 10 गेंदों में महज बनाए थे 11 रन, आखिरी 10 गेंदों में 42 रन। हर गेंद पर चौका प्लस 3 और ज्यादा 43। ऑफ स्टंप के बाहर डाले लेंथ गेंद तो बेहतर। धीमी थी गेंद और मेरा यह मानना है खुशकिस्मत रहे, ये पाला है ईशान किशन का, उनके रडार में थी ये गेंद। अगर संपर्क होता तो दिक्कत होती। ताकत है नवदीप सैनी की, लेंथ गेंदबाजी, गति भी है, गेंद धीमा है, माफ कीजिए गेंद गीला है। यॉर्कर डालना हर गेंदबाज चाहता है पर मुश्किल है यॉर्कर डालना। थोड़ा भी अगर आप आगे पीछे हुए तो आप जा सकते हैं सीमा पार। तो जो आपको आता है उस पर नजर डालें, उस और रुक करें। लेंथ गेंदबाजी अगर करें तो कहीं बेहतर, और अगर धीमे भी डालने जाए तो दूर रखें किरण पोलार्ड से। जी हाँ, रीच उनकी है, दूर दूर की गेंद को मारने में समर्थ है, पर अपने आप को बतौर गेंदबाज आपको मौका देना वो शायद कहीं बेहतर मौका। और यहाँ पे पोलार्ड के सामने तो मैं कहूँगा सबसे ज्यादा विकल्प उनसे दूर रखें गेंद। जितनी कम वो गेंद खेलेंगे उनके पूरे पावर के हिसाब से वो ज्यादा बेहतर, तो आप ज्यादा अपने आप को चांस देंगे। थर्ड मैन पीछे रखिए, वाइड यॉर्कर अगर डालने की कोशिश है वो बेहतर है। थर्ड मैन पीछे, इसका मतलब वो प्लान हो सकता है फाइन लेग ऊपर, स्क्वायर लेग ऊपर, पॉइंट और कवर, ये 4 फील्डर तैनात, डीप मिड विकेट रखा हुआ है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और थर्ड मैन। इसका मतलब वाइड यॉर्कर की पूरी गुंजाइश। गिरनी ठीक चाहिए। स्लोअर बॉल, बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन मौजूद है। युजवेंद्र चहल टीम के लिए रन बचाते हुए, ये अच्छा बॉल था, दूर रखा, धीमी गति की गेंद थी। और अच्छी बात ये थी, भले ही यॉर्कर नहीं लेकिन फील्ड के हिसाब से यहाँ पे सैनी ने गेंदबाजी की है। वो पूरी जो ताकत है पोलार्ड की, एकदम फौलाद की तरह, अगर वो आधी ताकत भी लगती है गेंद पे तो गेंद बहुत दूर जाती है। तो आप क्या करें, अभी जब सेट हो चुके हैं उनसे बचने की कोशिश करें, बाहर रखें। वही सोच थी सैनी की। ईशान किशन के सामने भी यही प्लान होना चाहिए। नवदीप सैनी इकोनॉमी रेट 9 के करीब, और ये आंकड़े बेहतर होते जाएंगे जितना ज्यादा खेलेंगे। उतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन अभी उनका ये थोड़ा सा एग्जाम है, चैलेंज है तो सेट बल्लेबाज के सामने। मेरा मानना है एक बार फिर ऑफ स्टंप के आसपास लेंथ गेंद, कवर्स और मिड ऑफ पर बल्ला चलता नहीं है ईशान किशन का, मिड विकेट में मारना पसंद करते हैं। बिल्कुल आगे डालने गए, गिरी इस बार, पर ये जोखिम भरा गेंद होता है जब गेंद गीला हो। जो गेंदबाज गीली गेंद से बिल्कुल आगे यॉर्कर डाल सके तो क्या कहने, पर निरंतरता आसान नहीं। स्ट्राइक रेट देखिए, जहां वो ग्रीन जोन है, हल्का सा रूम ऑफ स्टंप के बाहर मिलता है, 263 का स्ट्राइक रेट हो जाता है। और यहाँ पे आप उनको नहीं गेंद करना चाहेंगे, जितना दूर आप रखेंगे वो 164 हो जाता है। जो वाइड यॉर्कर की बात आप इरफान आप कर रहे थे, थर्ड मैन खिलाड़ी पीछे लेके, तो वहाँ पे मौके कम रहेंगे, क्योंकि इनके रडार में अगर गेंद आई इस समय सेट होने के बाद तो फिर वो स्टैंड में जाएगी गेंद। और ये तो बचने वाली बात है, दूसरा आपको आउट भी करना है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज 9 गेंदें खेल चुके हैं, उनमें इतनी काबिलियत है कि 27 रन बना सकते हैं, तो कहीं से एक विकेट की भी दरकार होगी। उम्मीद होगी कप्तान विराट कोहली को, नवदीप सैनी को, और विकेट कैसे आएंगे। दूर रखिए, ताकत मत दीजिए, चाहे वो वाइड यॉर्कर या स्लोअर वन, ऑफ स्टंप के एकदम बाहर।
अच्छा प्लान है नवदीप सैनी के पास। फुल टॉस गेम, बॉलर के सर के ऊपर से यहाँ पे एक ही मिलेगा। ये बुरी गेंद नहीं है, और निखिल भाई इसलिए बुरी गेंद नहीं है, अगर ये स्टंप में यॉर्कर डालने की कोशिश करते और फुल टॉस होता तो फिर गेंद जाती बहुत दूर, क्योंकि ये ऑफ स्टंप के बाहर जो उनकी सोच थी यॉर्कर डालने की, इवन तो यॉर्कर नहीं हुआ फिर भी रन नहीं मिले ज्यादा, बाउंड्री नहीं गई, छक्का नहीं गया। बढ़िया सोच नवदीप सैनी की। बल्लेबाज दूसरे आए हैं सामने, गेंद है गीला, गति है इनके पास। 176 पे 4। क्या की गेंद रहेगी, ये तो इतनी अच्छी तरीके से टाइम नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद ईशान किशन क्योंकि सेट है सीमा रेखा के बाहर, बॉल को फेंक दिया है। क्या शानदार बल्लेबाजी। खराब रणनीति गेंदबाज नवदीप सैनी द्वारा। यॉर्कर डालने का प्रयास गीली गेंद के साथ, और कहीं आसपास भी नहीं यॉर्कर के, उतना अच्छा संपर्क नहीं, फिर भी गेंद गई सीमा पार, और कोई मौका नहीं कप्तान विराट कोहली के लिए। शानदार ताकतवर स्ट्रोक था, 145 किलोमीटर प्रति घंटा पे लो फुल टॉस गेंद को सामने मारना दर्शाता है कि किस किस्म की ताकत है इस बल्लेबाज के पास। 100 रन की साझेदारी हुई है। सामने मारने शायद गए नहीं, थोड़ा स्लाइस हुआ, गए अपने वही मिड ऑन मिड विकेट की दिशा में थे। महज 48 गेंदें। आखिरी गेंद अगर किरण पोलार्ड होती तो शायद मैं ये गुफ्तगू नहीं करता। थर्डमैन पीछे रख के बाउंसर आप डाल सकते हैं, गीला गेंद है, आपके पास गति है, अगर आपने बल्लेबाज को चकमा देना है। बाकी तो आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। यॉर्कर, स्लोअर वन, मेरे लिए दो विकल्प, या बाउंसर या ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ गेंद। क्योंकि यॉर्कर गिरा नहीं, दो गेंदें डाली, दोनों तो फुल टॉस थी, एक पे एक रन आया, दूसरे पे छक्का। क्या नवदीप सैनी हार्ड लेंथ पे वापस आएंगे क्योंकि गेंद गीली हो रही है। ये मैच कमाल का, कल हमने देखा तेवतिया ने क्या जबरदस्त पारी खेली, मैच हारा हुआ मैच जिता गए राजस्थान रॉयल्स को। यहाँ पे भी किशन की कमाल की पारी, पोलार्ड की कमाल की पारी, लेकिन यहाँ पे नवदीप सैनी क्या कमबैक करेंगे। स्लोअर बॉल बॉडी के अंदर, एक ही रन वहां मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे ईशान किशन। 183 पे 4। और इंश्योरेंस के टेढ़े गेम्स में आज खेलेंगे कमीशन का अटैक। अफोर्डेबल इंश्योरेंस की ओर लपक पड़े खिलाड़ी, आधे नंगू चंगू मंगू, और ये चली कमीशन की गोली और बंद कर दी इन सबकी बोली। ओहो, इन्होंने तो एगो चूज किया। यूज किया जीरो कमीशन का जेट पावर, और बत्तीसी का प्रदर्शन करते हुए सीधे पहुंचे इंश्योरेंस के टावर। कार इंश्योरेंस के टेढ़े गेम में मत फंसिए, डायरेक्ट एको पे आइए, पैसे बचाइए। कार इंश्योरेंस, डायरेक्ट एको।
उड़ा इरफान किधर की तरफ जा रहा है मुकाबला? आशीष, कहाँ जाएगा मुकाबला ये? शायद ये तो रन आउट हो गया, लेकिन ये जोखिम भरा रन लेना जरूरी था क्योंकि स्ट्राइक पे अब आएंगे किरण पोलार्ड। लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा खतरे का मामला हो सकता है किशन के लिए। Stand by, guys. Stand by. खतरे का जरूर मौका था वहां पे, खतरे का मामला था, लेकिन ईशान किशन खतरों के खिलाड़ी है, पहुंच गए, तेज गति से भागे। और आपने सवाल पूछा निखिल भाई, 18 गेंदों में 5 रन चाहिए उड़ाना, इन्हें आरसीबी में लिया गया है क्योंकि उनके पास वो वेरिएशन है, स्लोअर वन है, बहुत ज्यादा तेज गति के गेंदबाज नहीं है। मैं बैक करूंगा ये 18 रन डिफेंड करने के। दुबई में एक मैच हुआ था जब मैं सनराइज हैदराबाद के लिए खेला था, ऐसी ही कोई सिचुएशन थी, हम मैच जीते थे। यहाँ पे क्या वो लेफ्ट आर्म गेंदबाज के काम करेंगे? मुंबई 20-30 रन अगर चाहिए होता आखिरी ओवर में तो 2011-2012 में वो 20 रन बना के मुकाबले जीते हैं। अब देखना है कि किस तरीके से कौन कौन से वेरिएशन डालते हैं। अभी तो बॉलों पे 2 सिंगल आए हैं। कल शाम को जबरदस्त मुकाबला हुआ है, कल शाम को जबरदस्त मुकाबला होगा। दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, राशिद खान, और दूसरी तरफ युवा कप्तान श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में बढ़िया शतक लगाया था, उनको रोकने की कोशिश होगी। और आशीष, जल्दी से आप किस तरफ कह रहे हैं मुकाबला जाएगा? खूबसूरत स्ट्रोक, छटक गई हाथ से, 6 रन। अब चाहिए मात्र 11 रन और 3 गेंदें बची है। यॉर्कर डालने का प्रयास, ऑन थे तैनात लॉन्ग ऑन के बाउंड्री पे। कैचेस काफी छूटे हैं, ये देखिए यॉर्कर डालने का प्रयास, बल्ले पे आई नहीं ईशान किशन के गेंद, पर फिर भी गई सीमा पार, आसान नहीं था ये। खुश, एक और ट्विस्ट खेलने लिया, पहले पवन नेगी के हाथ से छटकी थी गेंद, इस बार गुरकीरत मान, पर वो मौका आसान था। ये मान साहब के लिए मौका बिल्कुल आसान नहीं, मेरा ये मानना है धीरे गेंद, क्योंकि आपकी ये ताकत है। नवदीप सैनी जब कर रहे थे गेंदबाजी, हम चर्चा कर रहे थे लेंथ गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप तक खिलाएं, और मजा इतना आने वाला है क्योंकि आपको सुपर ओवर में दिखेंगे बड़े बड़े तगड़े बल्लेबाज। आरसीबी से दिख सकते हैं आपको एबी डिविलियर्स, यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, तो बताएगी कौन आने वाले बल्लेबाजी करने। लेकिन अक्सर आपको बड़े बड़े हिट लगाने के लिए दोनों टीम से यही बल्लेबाज देखने को मिलते हैं। क्या मैच हुई है, क्या जबरदस्त वापसी की है मुंबई इंडियंस ने। बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत की थी आरसीबी के गेंदबाजों ने, उसके बाद जैसे ही कायरन पोलार्ड जो बन के आए मैदान में, पूरी तरह से मैच अपनी तरफ ले गए। ये चौका हुआ, अगर छक्का होता तो मैच जीत जाते, लेकिन सुपर ओवर अब आने वाला है, इसका मतलब मैच अब भी बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ,
और विराट कोहली भी ये जानते हैं 89 रन बनाया। आखिरी 5 ओवर में शानदार साझेदारी रही किरण पोलार्ड और ईशान किशन के बीच में। 99 रन बनाए ईशान किशन ने, लेकिन अभी भी इस मुकाबले का रोमांच है बाकी। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 की टीम में। Dream 11. Make your team now. वो कहते हैं ना, किस्मत कभी भी पलट सकती है। नरगिस, मुझे वापस घर आना है प्लीज। नरगिस, मेरी वाइफ मिसिंग है। यहाँ अंदर तुम्हारी बीवी की बिगड़ती तबीयत, चारों तरफ पुलिस। तुम पुलिस की नजरों में एक भागे हुए मुजरिम हो। जानते नहीं तुमने किन लोगों से पंगा लिया है। बहुत खतरनाक लोग हैं। कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड। आपके पास विकल्प हैं ईशान किशन। आप जो आता है वो करें, अपनी ताकत पर टिके रहे। इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे हैं ईशान किशन और समा बांध दिया शाम को। जिस अंदाज से इन्होंने 99 रन बनाए हैं, बड़ी हिट लगाए स्पिनर के खिलाफ, तेज गेंदबाज के खिलाफ। भाप लेते थे कि कौन सा गेंदबाज किस लाइन या किस लेंथ पे करेगा, उसके हिसाब से बल्लेबाजी की है और अपनी टीम को लगभग मुकाबला जिताया। और अभी भी ये मुकाबला जीवित है। सुपर ओवर हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड आए हैं मुंबई के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। रोकेगा कौन? क्या हाथ में गेंद देखेंगे नवदीप सैनी के? बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी नवदीप सैनी। विराट कोहली के जहन में 3 गेंदबाज जरूर आए होंगे, चाहे आप चहल की बात करें क्योंकि वो भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सुपर ओवर क्या उनके लिए जायज है? फिर उड़ाना, जिन्हें स्पेशल एबिलिटी जो आखिर में गेंदबाजी स्लोअर और उसके लिए लिया गया आरसीबी ने, क्या वो डालेंगे? लेकिन नवदीप सैनी के साथ ही मैं जाना चाहूंगा और शायद विराट भी। इस समय कप्तान विराट कोहली के दिमाग में चल रहा होगा, डगआउट आरसीबी के दिमाग में चल रहा होगा, कितना बड़ा स्कोर, 6 गेंदों में कितने रन बनाने देने हैं, कि कौन करेगा चेस। नवदीप सैनी के ऊपर रहेगा दबाव, कहां डालेंगे? हाथ में सूखा गेंद है
क्या यॉर्कर का प्रयास करेंगे, धीमी गति की गेंद का प्रयास करेंगे। स्ट्राइक पे आशीष, इरफान, किरण पोलार्ड को पहली गेंद का सामना करना चाहिए या हार्दिक को? मैं मानता हूं किरण पोलार्ड। जो आपने माना और जो होना चाहिए वही आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गेंद सूखा जरूर है निखिल, पर फिर भी मेरा ये मानना है नवदीप सैनी को किरण पोलार्ड को ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ गेंद डालनी चाहिए। और थर्ड मैन पीछे, थर्ड मैन अभी भी आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर दिख रहा है। अगर आप लेंथ गेंद डालना चाहते हैं तो पीछे रखें थर्ड मैन। क्या बाउंस से डालेंगे, ब्लॉक कर करेंगे? नहीं, बढ़िया यॉर्कर, बहुत बढ़िया शुरुआत की है। अच्छी लेंथ, आसान होता नहीं है एग्जीक्यूट करना उसे, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से नवदीप सैनी ने यॉर्कर नेल किया यहां पे। थोड़ा तो गेंद अब गीला हुआ होगा जब घास में गया है, क्योंकि सूखा गेंद आया था तो उन्होंने वो करने का प्रयास किया जो कम करते पाए गए हैं या उतने अच्छे नहीं हैं उस चीज में। जब गेंद गीला होता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रिजल्ट आपके पक्ष में गया है, फिर भी मैं ये कहूंगा थर्ड मैन ऊपर था। लेंथ गेंद डालें, बैक ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ पर मुझे लगता नहीं वो सोच है, क्योंकि थर्ड मैन फिर ऊपर है। ऑस्टम के बाहर अगर बल्ला लगाया बल्लेबाज ने तो उधर आपको 4 रन प्राप्त हो सकते हैं। और मेरा करती है, मतलब फुल टॉस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे पोलार्ड को भी उसी बात का ध्यान रखना होगा। क्या फुल टॉस आएगी, सिर्फ टाइम करने को देखें। अगर वाइड है तो उस ऑफ साइड के हिसाब से, स्टंप में है तो फिर अपना जो ताकत है उस हिसाब से। कोशिश तो की थी, ये अच्छी गेंदबाजी है। इससे पहले जब छक्के मार रहे थे तो टाइमिंग के साथ जो पिछला गेंद देखेंगे सब कुछ झोंक दिया था, जोर से मारने चले गए, इसीलिए सर की पोजीशन हट गई। जी हाँ, बिल्कुल आगे गेंद चूक गए। बहुत बड़ा फर्क हम अपने दर्शकों को बता दें, जब सुपर ओवर हुआ है तो गेंद दूसरी आई है, सूखा गेंद आया है। जब गेंद गीला होता है तो गेंदबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है बिल्कुल आगे या यॉर्कर डालना। अभी तक नवदीप सैनी की तीनों गेंदें बिल्कुल आगे गिरी हैं। इरफान खुद सुपर ओवर आरसीबी के खिलाफ खेले हैं, कितना दबाव रहता है, क्या रणनीति रहती है? मेरी रणनीति एकदम साफ थी, फाइनल का इलाका फैन वॉल इस समय देख सकते हैं, उंगलियां क्रॉस हैं, आप मन्नतें मान रहे हैं। मुंबई इंडियंस, उधर आरसीबी, इतना करीब ये मुकाबला है। आप चाहते हैं कि इस किस्म के मुकाबले होते रहे, तभी तो मजा आएगा ड्रीम 11 आईपीएल में। हो गई दे किरण पोलार्ड, क्या लगेगी एक और बाउंड्री, गिर पाएगी एक और यॉर्कर। लो फुल टॉस और कैच तबाह बैठे। गुरकीरत मान के हाथ में इस बारी कैच नहीं छटकेगी। गेंद पीछा करती हुई गुरकीरत मान का, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की गुरकीरत मान ने। एकदम कंफर्टेबल हाइट पे ये गेंद आई थी, बढ़िया गेंद। चौका जरूर मिसफील्ड से हुआ था, गलती थी। यहाँ पे लोग फुल टॉस पूरी तरह से जान लगा नहीं पाए, बड़ा मैदान वहां पे, और इस बार कोई गलती नहीं की। पोलार्ड को आउट करते हुए नवदीप सैनी 5 गेंदों में बने हैं 6 रन। क्या बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की है, वेल डन नवदीप सैनी। एक गेंद अभी भी बाकी है, 6, 1 विकेट के नुकसान थे।
हार्दिक पांड्या सामने है, एक गेंद क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करेंगे। अगर चूक होती है, यॉर्कर नहीं गिरती तो बड़ी हिट लग सकती है। मिस, 6 रन डिफेंड करने होंगे। अगर नवदीप सैनी डाल सकता है 7 रन, अगर नवदीप सैनी इस किस्म का ओवर डाल सकते हैं तो जसप्रीत बुमराह सामने मुंबई से डालेंगे। उनकी शानदार गेंदबाजी रहती है, मुकाबला होगा बहुत रोमांचक। बिल्कुल 8 रन बनाने होंगे और क्या जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की है, पूरी तरह से गेम में वापस करवाई है वापसी आरसीबी के नवदीप सैनी ने। जसप्रीत बुमराह वार्म अप करते हुए हजारों लाखों गेंद अभ्यास में डाली है। एक जूता रखे कि सटीक यॉर्कर गिरना चाहिए, वो समय, इस समय के लिए वो अभ्यास किया गया है। दबाव में किस तरीके से अपनी टीम को जिताना चाहेंगे। ये वो 6 गेंदें जो 7 रन में मुंबई इंडियंस से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक सवाल रहेगा, क्या ईशान किशन को आना चाहिए था? 2 से 3 गेंदें ऐसी थी जहां पे बड़े शॉट लगा सकते थे। यहाँ पे चौका जरूर आया, फुल टॉस मिस किया, फिर लेंथ भी मिस किया और यहाँ पे भी अगर ठीक से बल्ले पे आती, गैप में आती तो रिजल्ट कुछ और होता। ये लेंथ तो हार्दिक पांड्या की लेंथ है जहां पे बहुत दूर मारते लेकिन बहुत तेज मारने गए, गेंद को चूके। ये पूरा ओवर आरसीबी के खाते में गया। अब होगी गेंदबाजी की बारी बुमराह की, किस तरह से विकेट की सोच रखेंगे, लेकिन साथ ही में बल्लेबाजों को यह ध्यान रखना होगा आरसीबी के कि अपनी विकेट ना गंवाए, क्योंकि 2 विकेट गिरती है और 8 रन के अंदर आप मैच हार जाएंगे। इसका मतलब आप थोड़ा संभाल के खेल के वो गेम निकाल सकते हैं। बैटिंग के लिए कौन आएगा? एबी डिविलियर्स, विराट? मेरा मानना एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को आना चाहिए, क्योंकि आपको रन चाहिए 8 और ज्यादा विकल्प और है नहीं। एरन फिंच फील्ड में हमें दिखे नहीं है, चोट के चलते पवन नेगी ने की फील्डिंग उनकी जगह। आपके पास इस खेमे में और बड़े हिटर कौन है? शिवम दुबे। तो मेरा ये मानना है शुरुआत करेंगे एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, उसके बाद शिवम दुबे आपके इकलौते विकल्प रह जाते हैं। और बड़े हिटर से भी ज्यादा आशु भाई, निखिल भाई, सबसे ज्यादा जरूरत है इस 8 रन बनाने में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की। और इन दोनों से बेहतर पूरे आईपीएल में आपको कौन क्रिकेटर दिखेंगे जो आंखों में इशारा करके बहुत बढ़िया तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, 1 रन को 2 रन में तब्दील कर लेते हैं बहुत आसानी से। और बुमराह के सामने तो उसकी बहुत ज्यादा दरकार होगी। इससे बड़े ही शॉट नहीं, स्मार्ट क्रिकेट की भी जरूरत होगी 8 रन बनाने में। जी हाँ,
एबी डिविलियर्स और विराट जोश के साथ और होश भी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये मैदान भी पड़ा है। मिस्टर 360 अच्छे फॉर्म में है। आज उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और शतक जड़ा, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी। बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बड़ी बड़ी हिट्स लगाए हैं, तो एक तरीके से अच्छे लय में है। और खासतौर से जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन साथ में जोड़ीदार कौन होगा? जी हाँ, विराट कोहली सामने से लीड कर रहे हैं। चाहते हैं वो 2 पॉइंट। लीग का स्टार्ट है, 2 पॉइंट मिलेंगे मुंबई से। महान बल्लेबाजों में अगर कोई शुमार होगा किनका नाम, तो वो है ये 2 बल्लेबाज, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स। सुपर वी क्या जिताएगा मुकाबला सुपर ओवर में? मौका है, कौन सा एरिया टारगेट करेंगे? जसप्रीत बुमराह क्या डालने की कोशिश करेंगे? यॉर्कर, थर्डमैन का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में है। हाथ में कम से कम स्टार्ट में सूखा गेंद। एबी डिविलियर्स इस शाम को अच्छे फॉर्म में है और शतक जड़ा है। रणनीति बनाने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा जरूरी। बहुत बढ़िया गेम। कोलाटी वहां पे तैयार थे, पता है कि दोनों बहुत बढ़िया तेज गति से भागते हैं, तो बाउंड्री लाइन पे पूरी तरह से नहीं खड़े थे, थोड़ा आगे थे, इसीलिए जल्दी से गेंद पे आए। लेकिन यॉर्कर कमाल का नेल किया एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई मौका नहीं दिया एबी डिविलियर्स को। लो फुल टॉस जरूर हुई। एबी डिविलियर्स की भी यहाँ पे सोच नजर आ रही है, जिस तरह से बल्ला नीचे आया, वो सोच रहे थे 1 या 2 रन के बारे में। देखना है कि अब विराट को कहां डालेंगे। क्रीज के एकदम कोने से जाके वो एंगल बना के यॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब 5 गेंदों में 7 रन चाहिए। पहली गेंद पे सिंगल, आउट नहीं हो सकते। देखिए मुंबई इंडियन ये मुकाबला तभी जीत सकती है जब आप 2 खिलाड़ियों को आउट करें, नहीं तो 5 गेंदे 7 रन अगर सूझबूझ से खेले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाज, तो बहुत मुश्किल जसप्रीत बुमराह के लिए। विराट कोहली मेरा मानना जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ही अगर आपके पाले की गेंद मिले तो अलग बात है, सिंगल लेग के एबी डिविलियर्स को दें। बाउंड्री लाइन के अगर फील्डर आप नजर डालेंगे तो पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़ा आगे की तरफ है। इसका मतलब साफ ध्यान कर रहा था, बहुत करीब हो सकता है। ये क्या लगा है ग्लव, अपील तो किया, जी हाँ, पॉल राइफल ने उंगली उठा दिया, लेकिन रिव्यू लेना चाहेंगे क्या एबी डिविलियर्स? शायद चर्चा कर रहे, रिव्यू लिया है। फेयर डिलीवरी, टीवी बैक टू डायरेक्टर, फेयर डिलीवरी, into the control please, when you're ready. Stand by. Flight line, one more time please.
bat. No bat. Go to the on-field umpire, please. जी हाँ, दबाव में पॉल राइफल भी वो अपील के चलते आउट दे दिया, लेकिन कोई भी संपर्क कुछ भी नहीं था। विकेट नहीं गिरी, लेकिन यहां पे हुआ डॉट बॉल, कोई रन नहीं। लेकिन जो पहली 3 गेंदों में सोच थी दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल या डबल की, अब वो सोच बदलनी पड़ेगी। एक बड़े शॉट की यहां पे दरकार। बाउंड्री की है खोज आरसीबी को। टॉप एज कैच इट की मांग है, बाउंसर में फंसाया था और चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर की बाउंड्री है या अगर चौका है तो 2 रन चाहिए, छक्का है तो मुकाबला खत्म। ये सोच एकदम कमाल की थी जसप्रीत बुमराह की। बाउंसर पे चकाया था, बीट किया था, दूसरी बार वापस शॉर्ट बॉल डालने गए और कई हद तक बीट भी किया, लेकिन भारी किनारा लगा। गेंद बाउंड्री लाइन से पहले गिरी, मिला चौका जिसकी दरकार थी आरसीबी की टीम को, एबी डिविलियर्स को। और जसप्रीत बुमराह भी जानते थे कि गेम में थे, क्या फाइन लेग का फील्ड है, अगर यही गेंद डालनी थी तो पीछे रख सकता था, गेंद सीधी हाथ में जाती, लेकिन वो रात गई बात गई। लेकिन अगर मगर तो चलता रहता है T20 में है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि शायद बड़ा स्ट्रोक ना देखें एबी डिविलियर्स। दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत जबरदस्त करते हैं, बड़ा ग्राउंड है। अपने आप को बैक करते हैं, जिस चीज में माहिर हैं वही किया। लास्ट बॉल 1 रन, क्या डालेंगे गेंद अब, सारी फील्ड ऊपर। मेरा ये मानना है, मेरी पसंदीदा गेंद लेंथ गेंद, क्योंकि यॉर्कर देखिए रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है। बोल्ड करना विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को इतना आसान नहीं। बाउंसर आप 2 डाल चुके हैं, तो मेरा ये मानना है लेंथ गेंद, बैक ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ गेंद, थोड़ा आगे वाला लेंथ गेंद, तो आपका शायद मौका बेहतर बनेगा। गेंद हवा में जा सकती है, बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक लगाने जाए तो, क्योंकि यॉर्कर तो मेरा मानना है इस समय सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए विराट कोहली के खिलाफ, पहली बात। और दूसरा 1 रन चाहिए, अगर रन चाहिए हो 3 या 4 तो बात एक अलग। एबी डिविलियर्स तो पहुंच जाएंगे। दूसरे छोड़ पे क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा आगे खड़े हो तो एक मौका बन सकता है अगर संपर्क नहीं होता। लो फुल टॉस गेंद और सुपर वी ने जिता दिया मुकाबला सुपर ओवर में। आरसीबी को मिले 2 अंक। बहुत मेहनत से मिले ये 2 अंक। पहले जिस तरह से बड़ा स्कोर लगाया था आरसीबी के बल्लेबाजों ने, लग रहा था जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत की थी आरसीबी ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन किस तरह से पोलार्ड ने, ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, उसके बाद स्कोर को लेवल किया विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने एकदम आसानी से मैच जिताया। नवदीप सैनी की भी तारीफ करनी होगी, वहां पे अंडर प्रेशर बढ़िया गेंदबाजी की, बड़े बड़े तेज तगड़े बल्लेबाज थे पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, उन्हें रन ज्यादा बनाने नहीं दिए, सिर्फ 7